All right. Well, I guess I'm live again, accidentally. But anyways, this stream is more important. It's not just fun and stuff. However, I still need to send the link on Discord so that people can join, because I'm not the only one who would be interested in something like this. Plus, I might be wrong about a bunch of things, and I would want Discord to correct me when I'm wrong. My Discord people. Alright. Hold on. You're on the Discord, by the way. What is this, Jenna? What the? Oh my god, why would you send that on Discord? This stream is important. Oh my god. You just broke down my entire argument before I even gave an argument. Come on. What are you doing, man? What is this? Alright. Cancel. Fuck off. Alright. Oh shit, I didn't mean to do that actually. But alright, it is what it is. Anyways, what's up guys? Thanks for joining the stream. You can join the Discord. Link is in the description. First link in the description. I saw this video and I want to talk about this video because it's an important video. It's an important thing. Am I audible? Is the audio fine? Bhavishya, kya hal hai? How are you, man? Thanks for joining the stream. Is the audio fine? Yo, Janam. What's up? Dude, in this video, I'm about to make an argument. Alright? Hi, bhai, kya hal hai? Badhiya, Nikhil. All good, man. How are you? I'm about to give an argument, but Janam, you sending this photo, this breaks down my entire argument. What is this photo? Anyways. Now, I'm going to speak in English. Alright? What's up, Chestos? How are you, man? So I'm going to speak in English because it's sort of a response video, what I'm doing right now to this video. It's kind of a response video. However, this video is not in defense of anything because something indefensible has happened in our country, which is horrible. There's no chance in hell that I'm going to attempt to defend that. I titled the stream Shame for India. I don't remember what I said. Global shame. So what I meant to say was, like, India is being shamed around the world, and rightfully so, because, because of the argument in this video. I like these guys. I watched their content. Parotha and chili paneer. That's nice, man. Angrezi, yes. God damn. Can you give a disclaimer first? Trigger warning. Jesus. Grape is punishable by hanging in Islam, but here, nothing happens to women, only to men. Even the woman is guilty. Solution to this: if any woman, whether married or unmarried, goes along with a man with or without her consent, she should be hanged. Wait. Solution: if any woman, if whether married or unmarried, goes along with a man with or without her consent, should be hanged. Okay, with a separate man who she's not married to, I understand. Both should be hanged. It shouldn't be allowed even if a woman goes by consent. God Leader of the Indian National Lockdown Political Party. Child marriage is a solution to rape and other atrocities against women. On Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She had been ganged by 7 men during her trip. Something has happened to us that we would not wish on anyone. 7 men aid me. They have beaten us and robbed us, although not many things, because what they wanted was to Amy. We are in the hospital with police. It happened tonight here in India. Sure, Chestos. With or without consent. What the fuck? True. And that's my whole point. That's the point I'm trying to get to. So these guys are and preach. I like their content, all right? So they're talking about India. They're not talking about that one incident. They're not talking about a state. They're not talking about a location. They're not talking about a certain type of people. They're talking about India. Now, when you hear something like this, you might feel like saying, dude, that's not the whole nation. Everyone understands that. I'm sure that even they understand that. But they're quoting people who are, political leaders, this and that, this or that. Whatever the ground reality we think is, that is how you understand people around the globe, right? Because it's a democratic society.
we have elected the people, or this and that, whatever. So all the popular people in power, we have somewhat elected them. Maybe they win, maybe they don't. That's a different thing. We have still accepted them as, people in power. So, yeah. This incident happened in the state of Jharkhand. Her husband, who was with her, was beaten up badly. The story led to a lot of outrage and condemnation. The authorities swung into action. 3 of the accused have been caught. 4 others are on the run. Now, this is not the first such incident in the country. Chances are it won't be the last. Every 18 minutes, a woman is raped in India. This is data from the government of India. And this incident has sparked a fierce debate on social media about women's safety and women tourists. 5 years, 63 countries, 170,000 kilometers. This couple began their world tour half a decade ago. They boarded their bike. He's 63, she's 29. But their journey took a horrible turn last week. The woman and her husband were on a biking trip in India. They were traveling from West Bengal to Nepal. On their way, they stopped in Jharkhand. ये पलकी ने बेड़ा गर कर रखा है, इसका पति पसंद है मुझे. Wait, what? You talking about that girl? It was around 5 p.m., so they decided to spend the night there. They set up a temporary camp and were preparing to go to bed. That's when 7 men entered their tent. They beat the couple, they robbed them, they raped the woman, and threatened to kill the duo. At around 11 p.m., the couple flagged down a patrol van. The patrolling team couldn't understand what they said, but they looked visibly injured, so the van took them for treatment. That's when the couple told the doctors about the rape, prompting the police to jump into action. 3 of those men have been arrested, and 4 are still on the run. The woman is a dual national. The Brazilian embassy was informed, and so was the Spanish embassy, as the couple used Spanish passports to enter India. Over the weekend, the 28-year-old took to social media. She put up a video on her Instagram page. It was in Spanish. She talked about her ordeal. She showed the bruises on her face and how glad she was to be alive. Her husband posted a similar video. The videos are not on their page anymore. But No, there's another thing. Pati patni dono journalists hain. All right. Now the thing is, I think this couple made a video about, we love India, we love the people here. That was a horrible incident. So they made a video of something like that. Now you have to think about it from the perspective of the West, from the perspective of other countries. So if someone from our country goes in some other country and something that horrible happens, and if those people make another video, no, I love this country, this was something horrible, some people are horrible, like they are everywhere, but I still love this country and people from this country. You're gonna think that, someone pressured you into making that video just to save face. And rightfully so. So, anyways. it sparked a fierce debate. Is India safe for women tourists? No. India's not even safe for Indian women. Ask a local Indian woman if she feels safe in India. There's a rape every 18 minutes, and I'm sure the number is probably higher than that. Yeah. But we'll get to that later. Over the weekend, Again. Unfortunately, it's hard to properly argue with that. Because there's some truth to it without a doubt. So again, it is shameful, but it is rightfully so, no? And sometimes I feel US is so full of itself that it will not even try to understand other places. I don't think they're from US. I think you're right. However, it doesn't make anything else right. Does it make sense? So I know you can give examples of the horrible things that have happened in US or in other countries. Horrible things happen everywhere all the time. That doesn't change the fact of the video. That doesn't change the fact of the crime. That doesn't change the fact of the ground reality or the political leaders or the famous people we have, right? Indians and foreigners shared their stories. They all had one thing in common: how they faced sexual harassment or have been a witness to it. One such Now, post- I think if you look up rapes in the US, you'll get this figure, 442,000. If you look up it will be 31,000 cases were reported. In the US, 4 lakh cases were reported, 442,000. There's a clear argument that a lot of rape cases go, unreported. That's fair. That happens, right? That being said, that big of a difference. So what you are saying is US has, what, a quarter of the population India has, and like over 10 times the rape cases? So I get that argument. I don't see why is that argument even useful. Also, the nuance to that is the definition of rape is much more broad in the US compared to in India, which again we were talking about consent and everything, right? got a response from the chief of India's National Commission for Women. Rekha Sharma commented on the post. She questioned why the person didn't report it and asked them to not defame the whole country. But was the tweet defaming Wait, what? harassment or have been a witness to it? One such post got a response from the chief of India's National Commission for Women. Rekha Sharma commented on the post. She questioned
And the level of sexual aggression I witnessed while living in India for several years was unlike anywhere else I've ever been. Once, a total stranger, a British woman, asked to sleep in my bed and pretended to be my girlfriend on a train ride because a man walking in the hall had. Okay, मैंने पूरा miss कर दिया. I completely missed it. The videos are not on their page anymore, but it sparked a fierce debate. Is India safe for women tourists? No. No, India's not even safe for Indian women. Ask a local Indian woman if she feels safe in India. There's a grape every 18 minutes, and I'm sure the number is probably higher than that. Yeah. But we'll get to that later. But we know numbers is definitely higher when it comes to the US, right? Again, but what's the point of that? Over the weekend, Indians and foreigners shared their stories. They all had one thing in common: how they faced sexual harassment or have been a witness to it. One such post got a response from the chief of India's National Commission for Women. Rekha Sharma commented on the post. She questioned why the person didn't report it and asked them to not defame the whole country. But was the tweet defaming India, or are these heinous incidents doing that? In 2023, a Korean vlogger was harassed in Rajasthan. That same year, a Dutch tourist was murdered and stabbed in Goa. In 2018, a British tourist was in Goa too. In 2016, an American woman alleged she was ganged in a hotel in the national capital. In 2013, a Swiss tourist was ganged by 6 men. They were later sentenced to life in prison. And it's not just foreign tourists. Indian women have faced the brunt as well. Every day, an average of 90 rapes are recorded. In 2013, the country amended its rape law. It broadened the definition. It brought in new punishments for sexual assault and stalking. Yet, it hasn't changed much on the ground. This latest incident could lead to more policing, more awareness, stronger condemnation, and more conversation both on social media and off it. But the fact of the matter is, every 18 minutes, a woman is raped in India. We will need much more than conversation and half-baked measures to deal with the issue. I'm going to say this. You want to know the funniest parts of the story? And it's funny to say that, but The funniest part of the story? there's a funny part. These people travel everywhere on motorbikes. They traveled through Afghanistan and then Pakistan and then arrived in India. Do you understand how fucked up your country gotta be for you to feel safe in Afghanistan And Pakistan. and then end up in India, and that's when you get attacked? आज ये कोई क्यों नहीं आया? Not sure, man. All right. That's an interesting point. It's not exactly correct. It's not exactly true. I'm sure there were many tourists who were extremely safe in India, but not very safe in Pakistan or Afghanistan, right? I'm sorry, but it's a very low effort video till now. I don't care about the video. I don't care about the video. It's more about the argument, right? Again, it is a horrible sight. You know, someone is traveling from Afghanistan, traveling from Pakistan, and then this happens to them in India. It's horrible. It's a horrible sight. Of course it is. But that doesn't mean that a tourist would feel safe in Afghanistan and Pakistan and not in India. So, yeah, it's kind of a jump. It's quite a jump. Now, A leap, as they call it. they did pitch a tent outside of a city after being seen by a bunch of people. Not exactly the safest thing you could do. And honestly, some tourists, when they travel to some places, they don't really take too many liberties to protect themselves. But does that make what happened here okay? No. I'm just telling you guys watching at home, when you're a foreigner in a lot of these countries, okay, especially these poor, less developed countries, everybody notices you because you just stand out like a sore thumb. And you look like you got money. So they're going to pay attention to you. Some of them are going to follow you. It doesn't make it okay, but you got to just be aware. When you pitch a tent just outside the city, most people are going to know exactly where you are. So, not exactly the safest habit of living. I understand they wanted to travel freely and not spend too. It's just not smart in some places. So that's one thing to talk about. But the other thing is, India, in terms of its culture surrounding this topic, is pretty twisted. I'm not sure about that. What happened? Why shame India? You know the news, right? You know the news that that rape to that Spanish girl. I don't know who there was. The Spanish couple. I don't know. Whatever. Tourists, right? Their views on what constitute grape are crazy. These are some things that came out of not just grapists over there, but also politicians. Okay. That's my issue. Like that's where we should take the blame, right? Or the other things they're saying, they're not very culturally aware about India, right? That's clear. But when we see statements like these from politicians, of course we should be aware of that. Should be wary of that. All right, so these are elected officials, leaders who make the laws, who enforce a lot of these things. Let's listen. All right, he's a grapist. Okay. When being graped, she shouldn't fight back. She should just listen in silent and allow the grape. And then they'd have to drop her off after doing her, and only hit the boy. You can't clap with one hand. It takes two hands. A decent girl won't roam around at 9 o'clock at night. A girl is far more responsible for a grape than a boy. Boy and girl are not equal. Housework and housekeeping is for girls, not roaming in discos and bars at night doing the wrong things, wearing the wrong clothes. About 20% of girls are good.
Okay, so if you're listening to the statement of a rapist, it's like asking Osama bin Laden how's the civilization of West. So I think that's just stupid. Your stream was low. Oh, I'm sorry, man. Hold on, let me see if I can fix it. What is here? Dude, I don't care about this right now. Not at all. Let me fix it from the settings. All right. Hold on, just give me a second. I'll come back to check. I think it must be much better now. I'll come back to Hindi right after this segment because, just in case. Poor and less developed, poor people are the problem. है ना ये यूएस वाले जीडीपी पे दम पे बाप समझते अपने आप को. First of all, like I said, I don't think they are from the US. So I think if someone is criticizing our country for some fair reason, come on, but isn't that a valid reason to be criticized for? No? Now, of course, compared to the US has many more rapes than in India. And it's not the ratio, it's the absolute number, which is horrible. It's like the worst thing. But that's not something to enjoy. That's not, oh, look, there are so many more rapes. No, it's not something to enjoy. Good Lord. Let's go to somebody else. This is a defense lawyer. If my daughter or sister engaged in premarital activities and disgraced herself and allowed herself to lose face and character by doing such things, I would most certainly take this sort of sister or daughter to my farmhouse, and in front of my entire family, I would put petrol on her and set her alight. About a grapist, he says, only 5 to 6 people are not the culprits. The victim's daughter is also as guilty as her grapists. She should have called the culprits' brothers and begged for them to stop. This could have saved her dignity in life. Can you clap with one hand? I don't think so. I guess that's a line over there. One second. Why are you reading the statements of the people who have done horrible things? I've heard this like twice now. Who are in prison. It's like someone kills someone and you're like, so you go and ask them, oh, do you think killing is okay? Of course they're going to say yes because they have somewhat justified it. Not killing is a stupid example. Stealing, I mean. Can you clap with one hand? And that doesn't mean the same thing. Good Lord. It doesn't mean the same thing here. It is not that women do not like grape. They like sometimes. They willingly. That is the psychology. Outwardly, they show some displeasure, but inwardly, they do not. Why are you reading it like that? Because it was written like that. Read it. Goddamn. Read it. It's not that the women do not like grape. They like some... Rasemwak Paitra says, no one commits grape intentionally. It happens by mistake. Sawaji... The incident should be criticized, but deducing the reason being poor people and less development, what the hell? I think they're talking about generally, or at least in their view, I guess. I'm not sure about the numbers. I haven't done the research. I think in their view, it's probably like these things happen more in the countries which are developing, which are underdeveloped. Yeah, I think it would be like this. I don't even care about that part. Police infra and law order implementation is a problem. Shame on Indian people. Yeah, people make the country, G party. Grape is punishable by hanging in Islam. But here, nothing happens to women, only to men. Wait, hold on. Paikra says, no one commits grape intentionally. It happens by mistake. Like, these are politicians. Just saw your thumbnail. I feel really bad for the entire nation as I am from Ranchi, Jharkhand, where this incident actually happened. Not people, I mean who does disgusting things. I mean, but this is the issue. This is a politician who is elected by people, probably, and if not elected, accepted as a politician by people, who has some media coverage, and he would say something like that, no one commits rape intentionally, it happens by mistake. Do not generalize, Mohan, don't say that again. Don't say what again, S? Don't say what again? Whether you like it or not, the elected people, the famous people, do become a spokesperson of a community. For example, like Baba Ramdev, for example, right? He is a very big voice in yoga. A lot of people who practice yoga do not like him, probably.
But that doesn't make sense. That doesn't matter, because whenever you think yoga, that is the biggest personality connected with yoga, right? So the correlation definitely happens. Sawaji party. Grape is punishable by hanging in Islam, but here nothing happens to women, only to men. Even the woman is guilty. Solution to this: if any woman, whether married or unmarried, goes along with a man with or without her consent, she should be hanged. Both should be hanged. It shouldn't be allowed even if a woman goes by consent. So, Like, who is this? I don't even know who is this. He is Joffrey. Do you know who this is? Abu Azmi. Abu Azmi from Samajwadi Party. Yeah, I don't know who that is. Rape is punishable by hanging in Islam, but here nothing happens to the woman, only to men. Even the woman is guilty. Solution is this: any woman, if whether married or unmarried, goes along with a man with or without her consent, should be hanged. Both should be hanged. It shouldn't be allowed even if a woman goes by consent. Naam suna hai. So you've heard of the name, all right? He is Abu Azmi, Samajwadi Party MLA from Mumbai. All right. So when you're electing people like that and they're making statements like these, the people who are electing these people will be judged with these standards, because people have elected these people. So that's why shame on people can be said. I said not all people who does disgusting things like you. What are you talking about, man? MNS people slapped him. Sure. Like, and the people who are making statements like these, are they winning in their places? So again, understand the reason why I'm bringing up all these quotes. These aren't nobodies. These are leaders of political parties. These are members of political parties. And when you have this kind of mindset that not only permeates throughout the culture, but is openly espoused, you can understand why a lot of this happens and is normalized. A lot of people who come forward are shamed for it. A lot of the women. Now, the point I'm making is, when someone is looking at a country from outside, that's what they're going to do, right? They're going to look at these people and they're going to, of course, judge the people who have elected these people based on their opinions. Whataboutism karunga, lekin I have just one thing to say: Donald Jr. Trump. Once again, but Joffrey, it doesn't matter. These guys are not even from America. So that does basically nothing. And it's already a whataboutism. So why does that matter? See, if we're doing that out of our feelings, which is good, but we shouldn't point fingers at other people out of, if we are in our feelings. Abu Azmi ki bahu Aisha Takia hai. All right. Women who have this happen to them have no recourse because they're never going to be taken seriously. So even though they're trying to be more progressive, unfortunately, a lot of times the culture hasn't caught up. Yes, and what did Donald Trump say? Grab her by the pussy or something like that, right? He didn't say it in a press conference or something like that. Of course not. But yeah, if you're talking about, the mentality and this and that, things can be said. Yes, true. My point is, when someone criticizes us for things like these, even though there are skeletons in everyone's closet, that's not the point. It doesn't matter. The point is how to clean yours, right? To the ideals of some of the leaders. And I think at least one of the steps, or maybe one of the first steps would be accepting criticism like this. I think so. Now, definitely I have things to say against this. But what's the point of arguing at these points? Former CBI director. If you cannot stop a grape, you enjoy it. Like, come on. Like, how are you going to defend that? India is a good country, but this is not acceptable. It is happening since long ago. Government should take strict actions on these types of issues. I think it's much more than a governmental issue. I think it's a societal issue as well. Ashitaki ne bhi gali di hai isko. All right. So, but with things like this, but hold on. I don't know about their sources. All right. I don't know. I would highly doubt a bias. These people have nothing to do with India, nothing to do with our country, right? God damn. Leader of the Indian National Lokdal political party. Child marriage is a solution to rape and other atrocities against women. Even in the Mughal era, people would marry off their daughters early to save them from atrocities of the Mughals. So this is what annoys me. It's not that they're making the video. Of course, videos like these, I think, should be made.
what should annoy you, like, we have people like these, right? I think we got it. All right. So And I mean, more so than even that CBI director. And even the child marriage thing, I don't support it. No, nobody in here supports it, right? Nobody in the first world of India supports that. But I can still understand, okay, so he's coming from a extremely conservative place, and that's how he sees the world. All right. But the fact that majority people might elect someone like that, that's the issue. that's just some of them. There's a lot more. You'll see them under posts. You'll see a bunch of Indian, especially dudes, just clamoring and celebrating this. Now, a lot of people don't agree with this. Now, that's completely not true. That's completely not true. You wouldn't see a bunch of people celebrating this. That's not true. I highly doubt that. Geoffrey, I would want your opinion on it as well. Is that true? Geoffrey made all right, what is this? I don't think you're helping Geoffrey face. Rape is consensual inside Haryana's rape culture. Yeah. Talking on government today in Maharashtra, Deputy CM Ajit Pawar saved a person from big case Mocha and told it in public rally. So how you want the government to do something on it? And the crime was sex business. Talking on government today in Maharashtra, Deputy CM Ajit Pawar saved a person from a big case Mocha. What do you mean by Mocha? I don't get it. And told it in public rally. So how? All right. It's a huge country with a huge population, but it's prevalent enough. Prevalent. It's there. Yeah, I never know how to say that word. I always say it wrong. Doesn't matter. It's just a lot. It's a lot of grape. That's another word to say. So, but again, now if you want to keep talking about that, then you got to look at the US as well. You got to look at the US. Like, okay, I just did a Google search. I don't know the fucking numbers, right? Now I'm sure in India a bunch of rapes go unreported. I'm sure, but I'm sure that happens in the US as well. Already, US has like a quarter of the population of India and has more than 10 times the rapes in 1 year. What are you talking about? you just got to know what countries you're going to. Taj Mahal looks cool. Don't mean you need to see it. Same goes for US. All right? And if you're going to go there, you're going to be harassed. This is not my opinion. This is every tourist who's ever been there who's a female. And So here's the thing: if you go into the US, there are different places, different states, right? Different communities. If you go in a community which has very high crime in there, you're gonna the risk you'll be taking would be higher of any crime, any sort of crime. So again, that's a stupid argument. It's a type of case which applied on big criminals who are sent out of district, something like that. The video I sent you basically shows that people in villages of Haryana vehemently, I don't even know the word, agree that rape is fault of both woman and man. That's why I'm saying we should accept this kind of fucking criticism, man. That's why I think a couple of points are stupid, sure. And then you see there's a pinned comment, right? And hold on, I'll read the comment. And even men, they get harassed, not because of rape or anything, but because of money. People follow them down the street, ask them if they need a ride, if they need to be taken somewhere, they need a haircut. People are always trying to make quick buck because money is money. No, hold on. Again, if you go to the places like that, you'll have if you go to, I don't know, Cyber Hub, Gurgaon, if you go to any place which has a lot of money going around. But then again, you are coming from the West to see a place which is like the West. No, you want to see the culture. You want to see those people where a lot of people are poor and they're gonna need money. And that's what they're going to do. And that will happen anywhere around the world. You go to Pakistan, you go to Afghanistan, you go to any other country which is extremely poor. And these places are much poorer than India, I think. You're going to feel the same harassment, if you want to call it that. Sure. People are, poor, and that's how they make their money. That's a lot of people. So that happens all the way around the world. So you have to understand, a lot of places in the world, as unsafe as North America might seem, or some places, you have no idea how much worse it gets out there for some of you. So I would highly recommend against it. And I'm very comfortable saying that. Do you want to go visit India? Yeah, no, there's nothing wrong with that. If he's comfortable saying it's not recommended to go around India, I mean, there's nothing wrong with saying that. Especially when you get to see things like that. It's literally never on my list. No? Never. Yeah, nah, I'm still here. It's not like I don't like the food culture or something, but outside of that, there's no reason for me to want to go. But I'm going to read one more thing for you guys. This one is pretty dark. Oh, that was not dark enough? No. Jesus. A woman who went to India to cure her depression was raped and found hanged upside down in a forest. Now, all right, one last thing. I think that is quite important.
if you're gonna pick individual cases, let's talk about Ed Kemper. Let's talk about him, a serial killer who would kill women, a serial killer who, in the end, killed his own mother, decapitated, took her head off, and then did oral sex. I don't know if you even can call it that. Let's talk about Ed Kemper. Let's talk about people like that. And hold on, you know what you do? You make web series about those people, which is actually, it's a really good web series, Mindhunter. You make web series about that people, and Ed Kemper is one of the most liked character from that web series. So if you want to talk about individual cases, if you want to talk about individual extreme cases, you have it all around the world. They do not seem serious talking about sensitive issues. That's their way. However, they, I think. Again, I think on their part, they're doing a good job, man. They're doing a good job making a video like that of a topic like that. It should be talked about, definitely. And they're also much further away from the issue than we are. Ed Kemper से तो क्या जी फटी थी mind में. True. Ed Kemper, yeah. I mean, the portrayal of Ed Kemper, he's one of the favorite characters from the show. So if you want to talk about extreme cases, let's talk about Ed Kemper. Let's talk about Charles Manson. Let's talk about all the weirdo people you have there. Let's talk about, if you want to talk about US, let's talk about we have no school shootings in India. How about that? No one is going around a school and killing young kids. How about that? We don't have that. What else we don't have? We don't have people marching down the fucking parliament like they did for the White House. We don't have that. The diversity is India is so extreme. It's like it's almost more diverse than Europe, right? Hey, okay, hal chal. All good, man. All good, Shakti. How are you? Two adjacent states in India can be more different than two countries in Europe. Obesity. Yeah, well, we don't have obesity, but again, a lot of people don't have a lot of money too. So, हरियाणा में घुसने नहीं दे रहे, पार्लियामेंट कब जाने देंगे? So, horrible things happen all the way across the globe. So, again, stupid point to bring up, I think. Cops revealed that legal. We also have IBC +1 for India. How are you, man? How are you doing? That Skromain was lured by two men who raped her before bringing her body. She was only identified by the clothes she was wearing. All right. At any rate, you can make all the faces you want. You can make all the faces you want. The thing is, West is no better in this. Now, once again, I don't want to do this argument. Because what's the point of having this argument? Because whether it happens in the East, whether it happens in the West, or North or South, or it happens in Mars, it doesn't matter. We have horrible things all around the globe. Like, it is not even an argument I would want to go and win. Oh, look, I showed them. Opioid addiction. Yes, that's another thing. Big pharma drugs. Yes. We don't have these things. But again, because of things like these have happened in our country, unfortunately, more things will also happen in our country. It doesn't mean if someone talks about it, which start pointing fingers to others. Good day, what's up, Nilesh? And chat किसने objectify किया? अब औरत को no one is objectifying anyone. These guys made a video about this case, and I think it's good to make videos about this case. I think this should be talked about more. Just like, but once again, when I understand their point. If you're so far away in the West, you don't know anything about India, right? If you're so far there, you're gonna look at popular people, political leaders, these people to make your judgment, right? Because you understand it's a democracy. So you think these people are being elected, and why are they being elected? They're being elected because of these. Yes. So that leader from Samajwadi Party, whoever he was. Now I don't know his name, but I'm also not extremely politically active. Play GTA 5, man. Why do you do this all the time? I'll play for sure. What was I going to say? So they don't know how big that politician is, how publicly loved or hated that politician is.
थोड़ा ज़्यादा हो गया. India is one of the most secular and secure country. Hello, Joffrey and Deepak. Don't get offended, but most of such crimes happen in North India. Even if you open Mumbai Police Diary, such crimes done by people coming up from Bihar. And my point is, it doesn't even matter, man. Like, these things happen, and I'm not going to be offended by that. And also, somebody said this, right? This is the most popular controversy in our country right now. And again, I'm still going to be speaking in English, because it's we're talking about global things now. I mean, about this case, right? This case, here's what I liked about it. All the different people who are coming in and commenting about it are speaking against, saying something bad for women. Like, you just never say something bad for a female. That's what everyone is saying. And I think that's great. That's the best thing about that controversy, right? I don't care about that controversy right now. I don't like... once again, yes, I'm not offended because of the North India thing. The thing is, look, it's very easy for me to even come and say, look, I don't do anything like that, right? No one from my family has done anything like that. No one from my community, no one I know has done something like that. It's easy for me to say that. Nilesh, this is the thing. Anything happens in Maharashtra is blamed upon Muslims, and if the culprit is Hindu, then immigrants from Bihar. I'm not sure. I mean, even in this case, I don't think anyone is talking about communities, right? And maybe there's some truth to that. Maybe. I don't know. I don't see the point in that. Like, those people are doing that, these people are doing that. We are living in the same country, man. I mean, the main point I'm trying to make is the culture, and India is so extremely diverse. It's weird. You cannot speak for the entire culture. It's just not possible. That's how diverse India is. That's how big India is, without doubt. Jai Hind, Jana. The point is, I don't see this reality where, in the culture that women are being blamed for rape. I don't see this reality around me. No, I do not. But I cannot sit here and say, oh, that is not a reality in our country. I think there are in some parts, and I don't know how big the proportions are of people who have this reality in their mind. So anyways, I think that's even I wasn't going to talk about it in this, I think I sound too serious. I didn't plan to sound this serious when I was, making the thumbnail, when I was starting the stream. I didn't plan to sound this serious, but being a Bihari citizen, these two Afro people should react to murder as a little grape. They'll shut down their channel. Fuck off, Vivek. I think yes, buddy. Or kya hal chal? Joffrey, bro, check your facts, bro. Not Hindu Muslim, but people coming from majority from UP and Bihar. Once again, this saying that is fair if you're trying to look for some. If you're trying to look for... yes. Mere claim, I give data that most crimes are committed by them. Alright, so Joffrey is saying that you made the claim, now the burden of proof sits upon you. Anyways, what was I gonna say? Is there something left to say? For me, it's weird because I see their point. That's how we judge other countries, right? When someone by the way, hold on. Half of this modern India is inspired by the West. We know that. So, Maharashtra policemen have fed this into Maharashtrian people's head. All right. Literacy rate is least among those states, so doesn't that justify crime rate is high there? Maybe, yeah, makes sense. I don't think it's just one single thing. Is probably, even if it is one single thing, then literacy rate would impact a lot of other things, which would, I think high crime is the best identifier of high crime is the more disparity,
extremely rich and extremely poor around the same area. So I think that makes that predicts higher crime. That's what I've heard. I don't remember where I heard that from. Anyways, I just wanted to get to this comment. Lastly, I'm Indian from Kerala state. I never looked down on any woman wrongly in my life, but when I go out with my mom for a walk, my fellow countrymen just stares at her like hungry hounds from hell. Now, my guy, there's nothing wrong with commenting this. I'm just saying, when you write something like this, hungry hounds from hell, you almost sound like there's definitely a type of rhetoric you are using. No, nobody talks like that. Hungry hounds from hell. Nobody really talks like that. It makes us very uncomfortable. I'm sure it does. One day, when she walked without me and one guy on a motorcycle tried to, I can't say the R word because it is my mom, I am uncomfortable using that, but the reality is he tried it. And when she fought back, he ran with his motorcycle. This happened not in the darkness of night, but on a sunny day, on the middle of the road. When she complained to the police, the answer from police will make you appall. They asked my mother for evidence for the attempted thing. But my mom never gave up. She investigated herself. After some investigation, she found a CCTV footage from a nearby convenience store. She collected it and went to the police and gave them evidence. The judge ordered the arrest for the perp, whatever you call it. Then he was arrested by the police and go to jail for his actions. I was there in court for the hearing. The judge was woman. She emphasized with my mom and gave maximum sentence. Perpetrator, I guess, right? Told the police that they are useless, corrupt officers. After sentencing people from the prep side, most importantly, my wife came and told my mom that please reach settlement and take down this case because they had 2 girl childs. Yes, you hear me. He have 2 girl childs. You be the judge. So again, this is a very particular type of rhetoric, and especially when he says, "I've never looked a woman wrongly in my life." Like, what do you mean wrongly? That's a real question. What do you mean wrongly? Now, there's one clear definition, I would like to, do things to her without consent. I don't care for consent. That's definitely wrongly, right? But you guys know, wrongly, looking at someone wrongly can mean different things in India, right? And these guys just replied, these stories are insane. I hope your family stays safe. So I somewhat get their point as well. Anyways, that's it, man. I think I'm done. Whatever the comments are left. You made a claim. Give data. All right. Literacy rate, got that. Kerala is most literate state of India, but you all know the cases. मेहुल भाई, मैं कल की स्ट्रीम देख रहा था. तेरे स्ट्रीम को बंद होने के बाद तब तू ने उसमें एल्विश का जो अकाउंट देख रहा था ना, वो उसका सेकंड वाला है. उसका रियल अकाउंट तो एल्विश यादव है ही है, वो जो देख रहा था. ऑलराइट, ओके, उसका व्लॉग था. ऑलराइट. आई रेड a TOI story a few days back. Let me find it. I'll share. Sure, man. Also, my cousin is in Mumbai police. I have some insights as well. Okay. There are some many cases like murders and rapes, but we North Indian doesn't get access to that news. All right. You reacted to Dhruv's Ladakh video. I'm gonna get to it now. आज upload करी उसने. I'm gonna get to it now. एक स्टोरी से क्या होगा? Statistics though. True, because of language barrier. Makes sense. Anyways, the point is, the final point is, I think I understand their point completely. When you can judge people based on their political leaders that they choose. I think that's fair. Even though I don't live in a world like that. But yeah. But some of the points that they made in the end were definitely, I think they were just stupid. Because if you want to pick extreme cases, India doesn't even come close to the US, to some of the Western countries. India doesn't even come close, right? We don't have people like, what's his name, the Dahlia killer. We never had people like Jack the Ripper. We didn't have those people. All right, so extreme cases, it's not even close. Absolute number of rape cases, it's not even close compared to the US. So trying to make it seem like, it's the entire country like that, it is wrong. I get why you might think that. It is just wrong. No, this video will probably never reach them.
But I still, maybe because I want to see some big Indian creator make a video like this, a much better video like this, which should be, a response type of video to this. But anyways, I guess I can stop with the English now. I'm done with this topic for now. And yeah. Alright, anything you guys want to add to this? If you don't get access, then how did you get to know? Acha, Shubdeep. Everybody is human. Everyone have right to live, but still don't stand with... Fuck off, Shubdeep. Fuck off. This is not the time. This is not the time for your jokes, alright? Alright. Dude, you're gonna keep your fucking... what do you call it? Persona. Till the end, na? Kya ho gaya? Arey wo yaar. The case. The tourist who got raped. You know that, right? Anyways, ठीक है, बहुत हो गई English. Now I'll get to this. नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने लद्दाख में 30 Too fucking loud, man. बहुत ज़्यादा. आराम से. ध्रुव भाई. So, हजार से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया. इन वीडियोस को देखिए. before getting to this, जो जॉफरी ने मेरी थी. 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा. क्या कहता है फिर उनकी दोनों में रजामंदी. कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों बातें जिस बातें से जो से कहना मेरा. लड़का लड़की गलती उनका ब्लरी हट गया. हेलो भाई साहित्य, क्या हाल है मेरे भाई? है तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है? लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं. हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है. लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी, जब भी तो रेप होया है. रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं. लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसा लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है, इस वजह से रेप होता है. इस ध्रुव की वीडियो मत चलाना, मैं जा रहा. तो तू जा रहा है तो इसकी वीडियो ना चलाऊं? हिंदी बोलो, हिंदी में आ गया भाई. I don't know. I think it was a response video to those guys. So I just felt like talk in English for that matter. In January 2018, चला जा भाई. 10 rapes in 10 days in Haryana seemed to shock everyone. And once again, सबने पूछा, इतने रेप्स क्यों होते हैं यार? घटना ये बार बार हो रही है और होती ही रहेंगी आगे भी, क्योंकि ना लड़कियों पे दबाव है ना लड़कियों पे दबाव है. ये है एक संसार का रूप कि चलता रहेगा, चलती रहेंगी बातें. Say hello to rape culture. Social attitudes that normalize rape, we've got plenty. The first pillar of rape culture is blame the victim. It's your fault. Always your fault. I think जब बहुत ज़्यादा लोग ये चीज़ करते हैं ना कि लड़कियों की भी गलती होती है, I think they're trying to say now again this is me being the most charitable, like charity level of 110% in the interpretation, and I never say 110%. I think it is really stupid to say anything over 100%, but yeah, this is that. I think they can't make the difference between fault and responsibility, and responsibility for your own safety versus responsibility for something that happened. I think they fail to make that distinction. ऐसा क्या बोला उसने जो तूने इंग्लिश में रिस्पॉन्स दिया? अरे ऐसा कुछ नहीं बोला यार. I just felt like उसमें it's just how I should, because it's like a response video. So if it's a response, it's gotta be in the language who you're responding to understands, right? देखो जैसे हरियाणवी की वीडियो वी ऑल कैन अंडरस्टैंड, बट अगर ये तेलुगु या मलयालम में होती तो शायद कोई सजेस्ट भी ना करता. दैट्स व्हाट लैंग्वेज बैरियर इज. नहीं, आई डेफिनेटली थिंक यार जो ये वायलेंस और ये सारी चीज़ें नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हैं. आई थिंक सो. इवन दिस लाइक जो अभी यूट्यूब पे हो रहा है, वी हैव नेवर सीन दिस इन एनीवेयर अराउंड द इंटायर कंट्री, राइट? जो अभी जो रिसेंटली लड़ाइयों वाली कॉन्ट्रोवर्सी हो रही, सब हो रहा है. वी कैन ऑल्सो वॉक इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, ठीक है? शो ऑफ मत कर. जींस की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से लड़के और लड़कियों की दोनों की गलती रहती है, क्योंकि लड़कियां हमारा फन में घूमती रहती है सड़कों पर. लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जब तभी निकलना चाहिए. मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं. He also speaks in English. आपको कैसे बात करूं? अचानक कोई किसी से कुछ अगर रजामंदी से कोई बात नहीं, कोई किसी से डायरेक्ट बात करेगा. अगर लड़की Like there's a part of me which wants to go in on those guys, even though as I said I like their content, I like those guys, but there's a part in me which is like, oh, this, look at that, look at this, look at that. But all of that would be whataboutery. So what's the point?
पॉपुलेशन भी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है. हाँ, और दैट डेफिनेटली अफेक्ट्स. यप. Haryana, 4 men allegedly abduct and gang rape 23-year woman in Faridabad. डैम भैया, ये 7 साल के बच्चों का कैसा माइंडसेट है यार. अगेन, बच्चे तो माइंडसेट है कि पैदा नहीं होते. इट्स द कम्युनिटीज अराउंड इट. भाई, यू सेड ओके. College student abducted in Gurugram, raped inside moving car. Hello, Paul. How are you, man? Initial probe reveals that victim was abducted from her house at night, brutally raped. When you okay, अच्छा, ये एक छोटी सी चीज़ है. इट्स अ लिटिल थिंग, नोबडी केयर्स अबाउट इट. बट अभी इस वीडियो में जस्ट पहले इसने बोला कि ऐसे कैसे कोई उठा के ले जाएगा. एंड नाउ यू सी एन आर्टिकल जहाँ पर उसको घर से उठा लिया था. इट्स लाइक यू आर एंगेजिंग इन दैट आर्गुमेंट कि ऐसे कैसे कोई उठा के लेता है. देन यू आर सेइंग कि नहीं, घर से भी तो उठा सकते हैं. दैट्स अ स्टूपिड आर्गुमेंट. यू डोंट इवन एंगेज विद दैट आर्गुमेंट. इस वीडियो में शुभदीप भी है. साउथ इंडिया में खुद को मज़े दिलाने के लिए बनवा लेते हैं, नॉर्थ इंडिया में समझ जाओ. और और का भी जब फरीदाबाद में है ये सब हो रहा है, पुलिस में तो चलो ये मानते नहीं हैं. अब एंड ऑल कहाँ भी फरीदाबाद में ये सब हो रहा है, पुलिस में तो ये मानते नहीं. खैर, उन्होंने यार मेरे ख्याल से अब तक लड़ाई तो करी नहीं, तो टेक्निकली मे बी दे हैवंट डन समथिंग इलीगल. आई डोंट नो. That deserves a slow clap, but I'd rather not, because clapping is what a lot of people in Haryana seem to compare rape to. आपस में तालमेल होते हैं, लड़की लड़कों की जब भी ताली बजती है ना, ताली नहीं बजती एक हाथ से. This is Haryana's Mankawa. And it was last week, tomorrow to be, and it doesn't matter, man. I think these things are much more serious. Village. Days after a 17-year-old girl was raped here. But even as she recovered from her injuries in hospital, her neighbors questioned her character and blamed her for getting raped. देखो जी, ये बलात्कार नहीं है. लड़का लड़की गलती कर रहे हैं तो लड़के को खाली भागीदार माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं. ये कौन सा कानून? लड़की का भी गलती होता है इसमें. एक लड़के की अकेले की गलती नहीं हो सकती. ये भी आए गुड़िया से दूसरा ना बोलिया, मारो बाप बेटी में कोई संबंध है? Fuck off, Shruti. और मैं गलत हंसाते यार, मेरी ऑडियो आज बेटर होनी चाहिए. Is it any better? My audio, is it any better, guys? Like, legit question. और मुंह पे मारे थापड़े, और मुंह पे नहीं थापड़ मारेगी तो दूसरों मार के को 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए, उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जाता. क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजा बंदी. मियां बीबी दोनों राजी होते हैं तो क्या करेगा मुलाकात जी, बीच क्या करेगा? Just in case you've forgotten, they're talking about how a woman consents to being raped, and when they're not denying the rape, they're blaming the victim for it. पंचायती कानून दोनों को सजा देती थी, लड़के को लड़की को भी. और ऐसा कानून, ये सरकारी कानून है, लड़के वाला फंस जाता है, लड़की वाला फ्री हो जाता है. You see, not everyone likes how India's rape laws work. Next up on the rape culture checklist, our honor lies in your vagina, aka control the women. If you manage to get born as a आज क्या लिया है गले में जो ऑडियो बेटर आएगी. अरे यार, मैंने ज़बरदस्ती ना इस माइक की इनपुट वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा रखी थी. ये बहाना दे दूंगा मैं इस बात का. डीप थ्रोट लेके आए हो क्या? girl in Haryana. शिवदीप, डू यू नो व्हाट डीप थ्रोट लेना means nothing wrong with my throat, right? And trust me, it's getting tougher. Sex ratios dropped from 866 to 831. But yeah, as I was saying, if you do manage to get born, agency leaves your newborn body faster than you can shout patriarchy. And before you know it, your vagina becomes a site of honor. The site of your entire family's honor. जेंट्स में और लेडीज में फर्क होता है ताकत के अंदर, ठीक है. वो अपने आप को कमजोर समझती है, सोचती है कि मैं मेरी समाज में बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मेरे को मेरी ससुराल वाले या मायके वाले या कुछ कहना दें, ठीक है. वो इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए है, और वो अपने आप को बचा के रखती है, और जो उसकी वास्तविक अधिकार हैं उनसे वंचित हो जाती है. Honor makes people do weird things in Haryana, like kill their own family. यार, उस भाई ने शिवम ने एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यार. शिवम ने यार 3 बार 40 रुपये भेज दिए 3 दिन में, रोज ये बोलते कि GTA 5 खेलो. शिवम भाई, मैं खेल भी ली तो बंद कर दे भेजना. अब खेली तो है GTA 5. धीरे धीरे करके GTA 5 जो खरीदी थे ना, उसके पैसे निकल जाएंगे सारे ऐसे. शिवदीप, नो हेट, बट हरियाणा वाले केरला पे कमेंट नहीं करें तो ही ठीक है. भाई, क्लोरोफॉर्म जब तक मार्केट में है तब तक आई एम नॉट जेल. ये बंदा इंटरव्यू के लिए हरियाणा नहीं गया, कुछ और करने गया है. लड़की की Dude, मैं ये वीडियो शुरू करने वाला था, and I was like, you know, मैं एटलीस्ट क्लिप निकाल के I'll tag those guys if they see it or not. It's like, you know, their thing. It doesn't really matter. I'm gonna do my part. मैंने जैसे ही लाइव स्ट्रीम ऑन करके डिस्कॉर्ड खोला, मुझे डिस्कॉर्ड पे ये दिखा. मैंने जनम, oh my god, you just ruined my entire argument, man. I was gonna make an argument. You just ruined the entire argument, like sending this on Discord. Anyways. लड़की की अलग बात होती है सर.
लड़का लड़की का डिफरेंस होता है करके आएगा तो घर वाले डांट देंगे, ऑफिस में लड़की तो करके आएगी ना, तो सारी तरह घर वाले लड़की की ज्यादा बोलती। लड़की अपने मन से तो कर रही है, तो अपना उसका इज्जत कहाँ जा रहा है? वो तो नहीं मानते ना, वो तो नहीं मानते ना, वो सोचते हैं कि हाँ भाई इन्होंने कर लिया, लड़की करती है तो गलत है, लड़की करती है तो सही है। बस उनकी थिंकिंग ऐसी है, बहुत गुस्सा है। Basically, honor is like a cheat code to control women. In the name of protecting their honor, भाई फिर से देखना, क्या बेचता हूँ सिर्फ एक नहीं है। Expaquiao. What are you talking about, man? men can do anything they want. Diminish their agency, make their decisions. Sorry, अरे नहीं डिलीट करने की कोई बात नहीं है bro. I was just messing with you, man. I'm just क्योंकि ये स्पेसिफिकली मैंने भी जस्ट अभी कुछ 5 मिनट पहले डिसाइड करा ना ये स्ट्रीम करूँगा. I saw that video and I'm like, you know, I'll stream this. And जैसे ही मैंने स्ट्रीम करा मैंने कहा, oh, I should put it on Discord. I'll take a clip out of it. I'll tag those guys. I should at least, you know, let you guys know that I'm live. मैंने जैसे Discord खोला and boom. मैंने कहा, oh my god. Hi bro, क्या हाल चाल? All good, Jayesh. All good. How are you, man? Control their lives. जितनी मेरे भाई है ना उनकी सुनी जाती है, इतनी मेरी नहीं सुनी जाती. किसी भी मामले में अगर मैं कुछ किसी मामले में अपने घर में बोलूँ तो पहले उनकी होती है, उनसे ऊपर कुछ नहीं. मेल को ही ज़्यादा मानी जाता है कि लड़की तो कुछ नहीं होता, इसको कैसे ना कैसे निपट लेंगे इससे, तो फिर वो मेल का ही बहुत बड़ा भारी रहता है. लड़कियों को बाहर निकलना चाहिए, जब कोई काम हो जाए तभी निकलना चाहिए, नहीं तो घर में रहना चाहिए. हाँ. और लड़कों को काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए. Yup, that's how ingrained honor is in people's minds. तो ऊपर ही होगा जनानी. यार बट ये चीज़ है ना, यू नेवर रिजॉल्व दीज इश्यूज इस तरीके से. ऐसे यू नो एक यार आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली चैरिटेबल व्हेन आई एम लिसनिंग टू पीपल. आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली चैरिटेबल, so I'll be charitable to them as well, right? This is the culture they've grown up in. We completely think it's wrong. We don't agree to that at all. But if you want to fix them, make them better, which, you know, make them more like us, you're not going to do it like that. Make a, you know, again, I don't even care about the quint people. I'm not even saying that they did anything wrong. But you're not going to fix that by making a documentary like this and technically attacking them. India's most peaceful country, duck all. ये सब चाइना से पैसे लिए हैं बैड प्यार करने के लिए. True. तो नहीं चाहिए आ गया किसी बड़ी किसी नहीं चाहिए. पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई करने के बाद बराबर का हो जाएगा. ये आप सोचते हैं सिनारे क्योंकि आजकल की लड़कियां बहुत आगे जा चुकी है. हमें लगता है कि लड़कियां लड़कों के बराबर है, किसी भी चीज में लड़कियां लड़कों से कम नहीं हो सकती. लड़कियां लड़कों से बराबर है? नहीं. हां सॉरी बराबर है. अच्छा. बल्कि लड़कों से भी ज्यादा ऊपर है. अच्छा इसलिए कह रहे थे बराबर नहीं है. But are we really teaching them that? A car directed girls older than They probably don't even know they got shot in a documentary. Well, the camera is right in front of them. आज दीपक भैया नहीं आए क्या? यार दीपक से बात नहीं हुई मेरी. I'll ask him. 10 years to not wear jeans and not use mobile phones because apparently wearing provocative clothing like jeans invite attention and ultimately lead to rapes. बहुत लोगों का ये मानना है कि इसमें रेप के केसेस में लड़कियों की भी गलती रहती है. आपको क्या लगता है? हाँ इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती हैं तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के, तो इस वजह से. The Sarva Khap Jat Panchayat said girls should be married at the age of 16 so that they don't need to go elsewhere for their sexual needs. This way rapes will not occur. हां रेप के केसेस में लड़कियों की गलती. हाँ बोलने के लिए भी चाइना से पैसे दिए. सबके आगे भी बीजेपी जीतनी चाहिए. इस विलेज में कांग्रेस है. ट्रू. फक या मैन. ट्रू. ये होती है कि वो मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाती है, बाद में मतलब उनमें बुरी संगत का वो होता है असर होता है. There's no dearth of things to blame for rape. From a Khap leader blaming chow mein to a former chief minister saying child marriages are the remedy. From friendship causing rape. रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं, पर पहले हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए और फिर हमारी फ्रेंडशिप का फायदा उठाते हैं लड़के. To accusing women of talking men into raping them. लड़कियों की ये गलती रहती है, लड़की है ना जैसे जाती है तो है ना वो ज्यादा लड़की है ना खुद भी बोलती है, जब तो ये लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी तभी तो रेप होया है. Everything in Haryana can be blamed for rape. एक सेकंड, हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी और आंसर? लाइक बच्चों से हमको सिर्फ ये दिख रहा है कि आसपास से क्या सिखाते हैं, क्या बातें होती हैं. डोंट एवर ब्लेम किड्स फॉर दीज थिंग्स. बच्चों को क्या पता? Except the rapists and the state's rape culture. When this is what we teach. 90% लड़कियां सहमति से जाती हैं, आगे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं तो हंस का शिकार होते हैं, तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके अपराधी व्यक्ति मिल जाते हैं. Fucking hell, I got it, motherfuckers. Fuck you all, I got it. Did you see what that guy just did? Honestly, जब मैं 14 साल का था मैं भी प्रोवोकेटिंग क्लोथिंग के लिए लड़की को ब्लेम करता था फॉर क्रेप्स. प्लस मेरे फ्रेंड्स को भी बहुत इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं दे, मेरे फ्रेंड्स भी कोई बहुत इंटेलेक्चुअल आंसर्स नहीं दे पाते थे. Alright, I'll get to it. But hold on, I fucking got. Oh my god, I fucking got it. It's a great fucking extension of the logic. ऐसा लग रहा तीर चलाने वाला हूँ ऐसे करके. Alright, so what that guy just said, ये जो पिछले वाला बंदा था, he just said कि ये जो लड़के होते हैं ये हवस का शिकार होते हैं. ये लड़के ये हवस का शिकार होते हैं. You are again separating those guys who have done a bad thing from
from a feeling, desire, whatever you want to call it, and blaming that. Same way, what this guy would do कि हाँ मैं हमारे community में यहाँ पर बहुत होता है but मैंने नहीं किया. You expand that logic. You can say North India में होता है, South में नहीं होता, East में नहीं होता, West में नहीं होता, यहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता. That was my entire point. There's no point in doing that unless you're, क्या कहते हैं? What is the fucking word? When you bifurcate things, not bifurcate. There's a better word for it. Doesn't matter right now. So the only point on doing that is when you're doing it, just say you come to a solution. देखा ये आदमी हैंड जेस्टर्स में हाथ दिखा रहा है, सिंबल्स ऑफ कांग्रेस पार्टी. अगर बीजेपी का होता तो लोटस दिखाता. ट्रू. सर्वे लेना मतलब विवेक तू 14 से 15 का ही गया, लेकिन मोस्ट पीपल विल डाई दैट 14-year-old ब्रेन. ट्रू, फेयर इनफ. के लोग मिल जाते हैं तो हज का शिकार होते हैं, तो 90% लड़कियां जाति सहमति से हैं और आगे जाके भाई सर बताऊँ तो लड़की को देख के फीलिंग्स तो आती हैं, पर वैसी नहीं कि पागल हो जाए. जानम मेरे भाई, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट. हवस का शिकार तो नीलेश भी है, बट वो ग्रेप नहीं करता. दैट्स सेल्फ कंट्रोल. नहीं, हम किसी को देखते हैं, हम that's the point of feelings and urges, because we are humans, we have different feelings, we have different urges, right? हमें कोई attractive इंसान दिखता है बहुत ज़्यादा, we feel sexually attracted. That's fine, that's okay. It doesn't mean we should harass them. Again, that's self-control. But I'm agreeing with Shavdeep for a change. Sometimes जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था किसी पे, you're angry at someone, you want to kill them. You don't do that. You want to hit them. You don't do that. So yeah, it's simple as that. So I see somewhat of the argument जो कहते हैं ना कि it is accepted in the society, because there are some things which you wouldn't do for urges, but there are certain things which you will do for the urges. So I can understand their perspective as well, who are saying that this is accepted in the society because people do it based on urges, and there are the things people don't do based on urges. So I can understand that argument as well. Not necessarily that I agree with it, but I understand it. This is what they learn. लड़कियों दोनों की गलती होती है. एक आशेतारी कभी तो कुछ होता है, लड़कियों की वजह से भी होता है, लड़कों की वजह से भी होता है. दोनों की बराबर गलती होती है. अभी तो ये है कि भैया सीधा लड़कियों को ब्लेम करके लड़कों को इनोसेंट नहीं बोल रहे. यू नेवर नो. ग्रेव्स खाने की होती हैं, करने की नहीं. राजकुंद्रा, जय शेट्टी. Where social attitudes are such, where the victim is blamed, the woman controlled, her consent ignored, her choice rejected, where tradition breaks the law, but we teach them to the young. Is it any surprise then that rape is deemed consensual? And it's not just the story of Haryana. It happens in all of India. In Maharashtra, the victim blaming. In Tamil Nadu, the honor killing. In Uttar Pradesh, the rule of the khap. And our leaders, wherever they are. This is the main thing. The fucking leaders, man. Yes, कहीं पे शक्कर गिरी होगी. Sugar attracts ants. तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता. The list goes on. Oh my god. Yeah, I know the Joffrey. Also, still, I read about some bashing patriarchy. Mera first, what the fuck? After talking to you all, am I gonna fucking lean more left now? I don't think so. When I read about someone bashing patriarchy, मेरा first instinct opinion हमेशा in favor of patriarchy रहता है. Thanks to my upbringing. However, थोड़ा सोचने और logic के बाद, places where I am wrong and biased, it fucking still happens with me. Yo, से तो क्या हाल है मेरे भाई? Sure, rape culture may seem more pervasive in some places, more evident on certain faces, but make no mistake, it is all around us. So the next time you ask, इतने rapes क्यों होते हैं यार? Remind yourself that the answer is right here, staring you in the face. Hold on. You're not at all charitable to the left, Nalish. How, Joffrey? How? Not very much, at least. When have I been uncharitable? आने दो सिद्धांतों एक खड़े रहो.
What do you mean I'm not charitable to the left? Even when जब ये वाली भी पूरी बात हो रही थी, सारी वीडियोस मैंने देखी थी, कौन सी, जब ध्रुव राठी made the video on the dictatorship thing, I was extremely charitable. From now on I will point out every time, sure man, sure, I want you to. कीबोर्ड मर गया मेरा भैया है. लेकिन would you also disagree, जब ये ध्रुव राठी वाली बात हुई थी, जो वीडियो थी डिक्टेटरशिप वाली, I think I was extremely charitable. I think that's what I said. I think everyone on the right who made a video regarding this made a bad point by saying that we are not in dictatorship already, while Dhruv's point was actually कि भाई हम ऐसे चलते रहेंगे तो Dhruv is not left. Dhruv is not left? What is Dhruv? And who is left then? Do I not know any leftists? जॉफरी एंड सिद्धू, भाई आज दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल दो एंड 36 बराती से हमारे साथ हो जाएंगी. भाई कैमरा हिल रहा है यार, मैंने पैर मार दिया गलती से. ये ले सेंट्रिस्ट है, पहले भी बोला मैंने. Who's on the left? Who's more on the left? Go on. And also, I have been extremely on the left when I've talked about consent and things. No? Honor killings in Pakistan. Vimo. This guy, I've seen his reels. I've never seen him, right? Have I seen him on stream? I don't think so. Ishan. I know Ishan. मैं तो रेड बुल हूँ, इंस्टिगेट करके आई गिव यू विंग्स. वाई इज मनुस्मृति कंट्रोवर्शियल? आचार्य प्रशांत एक्सप्लेन्स. ओ यार, मुझे ये रणवीर का भी देखना था. मैंने एक ना वो देखा, कोई पॉडकास्ट इंट्रो टाइप की चीज़. एंड एक सेकंड, डू यू थिंक आई एम मोर चैरिटेबल टू द राइट देन आई एम टू द लेफ्ट, जॉफरी? Yes. You follow Vimo on Insta, Nilesh? I follow him? All right. अच्छा, तो मुझे बता रहा है, पूछ रहा है. I don't know. I might have followed him. Yes, I'll give reasoning why. Sure, man. Hold on. Let me see. Vimo. Yep, I follow him. True. I can also give reason. Then give reason, Shivdeep. I thought Vimo only made videos about rationalist topics. I didn't know he did politics though. मैंने इतना देखा नहीं. Apparently God is outside the universe. God is fair. Now, see, I think his content is all about gods, right? You are 180 degree left and 0 degree right. All right. Okay. So that's how I know I'm good. You know, people who are on the left would say I am criticizing the left more, and people on the right would say I am criticizing the right more. Actually, you know what? That fucking happened. That actually fucking happened. जो मैंने वो स्ट्रीम करी थी ध्रुव राठी वाली बात पे, उसका सारा यही था. जो भी स्ट्रीम चलती है उस पर कमेंट्स ऐसे ही आते हैं, या तो तुझे आईटी सेल ने पैसे दिए, लाइक आई रिसीव्ड अ कमेंट कि मुझे आईटी सेल ने पैसे दिए, या फिर कि मैं अंधभक्त हूँ, ऐसे टाइप के. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. इस ओआईसी लेफ्ट लीनिंग, जॉफरी? कर लगेगा कि नंबर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब है. नमस्कार दोस्तों, पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से ज्यादा लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया. इन वीडियोस को देखिए. भाई चलो, बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय. सुनकर लगेगा कि नंबर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब है कि पूरी यूनियन टेरिटरी की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सब एक जगह पर इकट्ठे थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने. 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे. एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन. जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती,
जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान फैसला किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट Yo, Dhruv, क्या हाल है bro? अनशन शुरू I'm going on an indefinite fast until our voices करने are के लिए heard. आमरण अनशन जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। 21 दिन का अनशन जो एक आमरण अनशन बन सकता है। सोचकर देखो अगर देश के किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दबाया जा रहा है न्यूज चैनल्स के द्वारा, ये बहुत ही शॉकिंग है देखना। प्रोटेस्टर्स की आखिर क्या डिमांड्स हैं इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है। यही कहानी देश के कोने कोने में आज के दिन रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, ये वही माफिया है जिसने हसदेव के जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सवाहा को तबाह करने पर तुला है। ये वही माफिया है जिसकी वजह से जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तर काशी की सुरंग गिरी और जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। ये माफिया जिसे अगर रोका ना गया तो ये देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किए थे वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया है और आइस टूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो रामोन मार्क्सेस से अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं यहाँ पर। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाए। करंटली सिर्फ 1 MP लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 MP। Hold on, indefinite fasting क्या होती है? Dragon strike is what it means in right. The real meaning of भाई ये क्या है? कैसे कैसे सर्विस वेबसाइट्स हैं? Indefinite. What is exactly means? Duration period as indefinite. You mean people have not decided? I know the meaning of indefinite. But does that imply fasting till death? Is my real question. Anyways. Wherever I say anything, even with proof, you don't believe it fully, but throw away argument that left maybe वैसे लोग होंगे. You didn't even check the people who won creator awards and laughed off. So what do you want me to do? That's what I say. All awards are fucking bullshit anyways. Sonam Wangchuk. So when did I throw any argument off? When I said most awards right वालों को मिले हैं, I laughed it off because I probably believed you. I think I said ke what's his name? Ranveer Alabadia. I think I said he doesn't show much political leaning. कितना मैंने देखा है भाई। आज मैं साइबर सिटी में था अंडर सोशल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम था अबाउट पेन इन पीरियड्स बाय सिमुलेटर। मेरी कॉफर की 15% पर ही अब मेरे को पता चला पीसी हिम्मत होती है इनमें यार। माय रीजंस वाज सेम एज जॉफ्री। So Akshadip, tell one of them. Aside, hold on. What do you mean? I laughed it out. What would you have me do besides it? Neil bhai, desi dude bach gaya. Desi dude? I don't know who that is. Word कहाँ से सुना? और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले ये 6 शेड्यूल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, देश के आदिवासी लोगों को। इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। इन्हें ADCs और ARCs भी कहा जाता है और ये बेसिकली इलेक्टेड में 0 MPs। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर। यही कारण है कि थ्रू आउट द ईयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित। नहीं जानते तो बताना, में रामोन मार्क्सेस से अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं यहाँ पर। पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाए। करंटली सिर्फ 1 MP लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 MPs। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले ये 6 शेड्यूल क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, देश के आदिवासी लोग। What was the point that Shubdeep? What was the point of that Shubdeep Singh? Me as a boy who doesn't have any women in my life, what do I do with that information?
इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। इन्हें एडीसीज और आरसीज भी कहा जाता है और ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज हैं जिनके पास पावर है ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपने सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आज के दिन ये 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में। अब आप सोचोगे कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं होते, तो लद्दाख के लोग इसकी क्यों डिमांड कर रहे हैं? इसके पीछे 3 मेन कारण है दोस्तों। पहला, ये बात सही है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल नहीं देखने को मिलते, लेकिन हर एरिया की अपनी नेचुरल बायोडायवर्सिटी होती है। सोनम जी ने कई बार समझाया है कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसीडर करते हुए बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। आई थिंक मेरा कोई दोस्त यूज़ कर रहा था, मेरे को कूल लगा, मैंने भी उसे यूज़ किया, थोड़ा सा सेंसिटिव सेंसो वर्ड facing the wrath of nature in the face of climate change. अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेचुरल डिजास्टर्स। नीलू भाई, वैसे आप समझ रहे हो ये हमारे दुग्गल साहब कुछ ज़्यादा ही अगेंस्ट बीजेपी वीडियो, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि इलेक्शन इज़ अप्रोचिंग। मतलब इसका इस वीडियो से तो कुछ लेना देना नहीं है ना इस बात का। और दुग्गल से, डू यू मीन दुग्गल इज ध्रुव और नमस्कार दोस्तों, समवन एल्स? क्यों मेरे ख्याल से ध्रुव को कहते हैं ना शायद दुग्गल साहब। फार्मर्स वर्सेस मोती जी, इंटरनेट विल नेवर बी द सेम। आई थिंक दिस वाज द बिग वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, राइट? आई एम नॉट श्योर यार, ये तो जनरली ऐसी वीडियोस बनाता ही है ना, लेकिन ध्रुव राठी तो लद्दाख वाला रीजन इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज द थर्ड पोल अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। लद्दाख का इकोसिस्टम काफ़ी फ्रेजाइल है। हाँ, आई हर्ड दैट। या थप्पड़ नहीं मारना होता ना फिर विवेक, अगर थप्पड़ ना मारो होता तो आज होती। ट्रू। शब्दी मुकुल को भेज वहाँ, एटलीस्ट देन ही विल रिस्पेक्ट मी। मोस्टली जोक्स और स्नैक्स के स्ट्रीम पर से लोग ये वर्ड फेमस हुआ है। मोस्टली जोक्स और स्नैक्स कौन है अब? किस स्ट्रीम से है तो मेरे को लगा। क्या बात हो रही है पॉल? डिड आई कम्प्लीटली मिस समथिंग? कल इलेक्शन की डेट्स आ रही हैं। यो दुग्गल इज एड होमोनिम यूज्ड टू अटैक थ्रू नेम कॉलिंग है। ऑलराइट dude, but hold on. You accuse me of ad homs when I'm fucking around with you. एक बार आप श्याम शर्मा की वीडियो भी देखो। हाँ, देखिए मैंने उसकी वीडियोस, अभी ये कंप्लीट करूं। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इन सब की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, लद्दाख की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। एनसीएसटी के अनुसार लेह में करीब 66.8% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, कारगिल में 83% और कुछ एरियाज में तो 99% तक जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। आज के दिन लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर है क्या? खुद ही सोचकर देखिए। अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी। लोगों को 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी। जम्मू एंड कश्मीर पहले फुल स्टेट हुआ करता था, 2019 के बाद से उसे डाउनग्रेड करके 2 अलग-अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। यही चीज जेएनके के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कही थी। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। इसमें भी मेरी कोई सलाह नीले जेटली, मैंने दुग्गल एक्सप्लेन किया। यूज़ नहीं, यूज़ ऑफ एड होम्स, व्हाट डू यू मीन? अरे कोई गेमर है जो काफा यूज़ करता है। ओए सो जा, ADJD लेते तो मैं मना करता। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो फिर भी अपनी विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो वो हक भी छीन लिया गया। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर की फुल स्टेट हुआ करती थी, लद्दाख की तरफ से 4 MLAs होते थे, लेकिन आज के दिन ये नंबर 0 बन गया है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है, जिसे आप वोट दे सकते हो, जिसे आप चुन सकते हो। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार से भी पावर छीनने की जबरदस्त कोशिश करी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन लद्दाख से तो पूरा का पूरा हक ही छीन लिया गया है। स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सको। इससे ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिर्फ एक MP दिया गया है। यही कारण है इन सारी डिमांड्स के पीछे। ओके, रेड वालों के पास आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो उसे दुग्गल बोलते हैं। इनका मैसेज हिट्स लाइक 2016-18 में जो लोग रैंडमली रात को बोलते थे सोना। हाँ, वो जो टेक्स्ट नहीं आता था, तो उठा हुआ है सोना। व्हाट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? आई हैव नो आइडिया। लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो ताकि हम अपने ADCs ARCs को चुन पाए, हम अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाए। स्टेट लेवल पर हमें फुल स्टेटहुड दो, और वो नहीं देना तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो कि हम अपनी सरकार चुन सके। और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 MPs दो, नहीं तो ये डेमोक्रेसी के नाम पर क्या नाटक चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इससे फर्क नहीं पड़ता आप मेरी रीजनिंग से एग्री करो या ना करो, क्योंकि आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद डिमांड उठाई थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की। आखिर क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी अब इस डिमांड को पूरा करना नहीं चाहती? ये कारण बड़ा दिलचस्प है और काफी प्रेडिक्टेबल भी है अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स समझते हो तो। क्या है ये कारण, इसकी बात आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गहराई से समझना चाहते मोदी जी ने तो वॉर रुकवा दी करके एड्स चला रहे हैं। ध्रुव वीडियो में भी ना बनाया LMAO। ओ भाई, तुमने वो देखा भाई? वो किसी सीरियल का क्लिप आ रखी थी। फक, किसी सीरियल की क्लिप आ रखी थी। उसमें सीरियल में वो लड़की बोल रही थी मुझे पता था मोदी जी कुछ भी करके मुझे वापस लेंगे, समथिंग लाइक दैट। डिड यू गाइस सी दैट? डज एनीवन नो अबाउट इट? स्टेट कम्स अंडर गवर्नमेंट एंड UT कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, हैं? कुक FM पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा। भारतीय संविधान अनकही
अच्छा एक बात बताओ नीलू भाई, बीजेपी के अगेंस्ट कितने प्रोपेगेंडा चलते हैं, कितने ही गोदी मीडिया चलाते हैं, बोलते हैं कि, लेकिन आज तक आपने कोई यूट्यूबर या फिर यूट्यूब जो अगेंस्ट बीजेपी है उसके अगेंस्ट अरेस्ट देखा है? मैंने नहीं देखा यार। पिंद्रा भाई वेलकम, बट दैट डजंट मीन ना कि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो गलत हैं या फिर प्रोपेगेंडा हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट कुछ कह रहे हैं, उसका मतलब नहीं है ना। यही कहानी इसमें डिटेल में समझाया है कि हमारे देश का ये महान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान एक्चुअली में कैसे बना, क्या इतिहास था इसके पीछे। कुकू एफएम को अगर नहीं जानते, ये एक ऑडियो परदेसी रूल विद साइन जो JNK में रहता है उसे आप जो पंजाब में है वो अरेस्ट करने आ गई। हाँ आई नो देसी रूल्स विद साइन, मुझे याद आ गया। अरे आप ये बताओ, ये डिक्टेटरशिप नहीं है यार? ऐसे मिनट में ना चीज़ों को लेबल मत करो डिक्टेटरशिप से, बहुत जल्दी जा रहे हैं। मोदी का ऐड है, कोई सीरियल नहीं था। अच्छा ये ऐड थी, ओह माय गॉड। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ लगी है। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है, पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। कैसे भी हो वापस लाएगा वो, भरोसा रख। माँ, मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी 7 समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं। इज दिस बेस्ड ऑन समथिंग? मोदी जी ने वो रुकवा, इज दिस बेस्ड ऑन समथिंग? बेस्ड ऑन द मूवी एयरलिफ्ट? सेम TN में भी स्क्विंट के साथ। ऑलराइट, अरे आप ये बताओ। हाँ ये हो गया। हेलो मुकुल, मुकुल आया? ओ बिंद्रा भाई वेलकम। विच पार्टी डू यू वोट फॉर? मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन वॉर। वेट नो, अच्छा ये सच में उसकी बात कर रहे हैं? ऑल ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस? यस, व्हाट द फक, इज देयर एनी ट्रुथ टू इट? प्रेस कॉन्फ्रेंस को औकात It's real. Okay, what is it based on, man? साहित्य क्वेश्चन पढ़ के जवाब देना होता है। नहीं दूंगा मुकुल, मैं वोट नहीं करता यार, वो नहीं रुकवाई, वो रुकवाती। बट जोक, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हंसी नहीं रुक रही। उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत मेरा परिवार। It's a little weird to say कि शो के मतलब उनके वो बच्चा गाया है वो लेके आएगा। मोदी जी ऑक्सीजन बनाते हैं। चैट तो पढ़ मेरा, तो क्या नहीं पढ़ा मैंने। पठानकोट टाइगर का जॉइंट मिशन था अंडर मोदी जी सुपरविजन। सबने मिलकर वॉर रुकवा दी, फीलिंग प्राउड इंडियन। इट्स प्रोपेगेंडा, इट्स रियल। ओके, वॉर नहीं रुकवाई, मोदी जी ऑक्सीजन बनाते हैं, चैट तो पढ़ मेरा। पर उन्हें इंडिया ले आए। पाक की बस पर भी इंडिया के झंडे थे, लेकिन हाँ तो खैर वो तो मतलब अगेन घूम के आ रहे हैं ना, तो हाँ ऑलराइट आई गॉट इट। तो वहाँ से कुछ लोगों को वापस लेके आए होंगे ना अपनी कंट्री में। ऑलराइट भाई, इट्स रियली बिग डील। इंडियन स्टूडेंट्स वर ट्रैप्ड इन यूक्रेन एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स व्हिच हेल्प्ड रेस्क्यू द स्टूडेंट्स। आई एम बैक जेसन। एक बार इंजीनियर एक्सप्लेन की ध्रुव राठी वाली वीडियो प्लीज़। इंजीनियर एक्सप्लेन, ठीक है यार, देखते हैं। कहाँ था बिंद्रा वैसे तो? मैंने जो डिस्कॉर्ड पे फ़ोटो भेजा है वो देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला टैग भी पढ़ना। अभी देखता हूँ, जेल में हूँ। इट वॉज रियल, बट कोई डेवलप कंट्री होती यही करती। हाँ इट्स यार वो है ना कि इट्स again it's very much a single person, not even a single party, it's very much a single person thing, right? वो लेके आएगा, it's very much that. India is extremely powerful. India has very good relationships with Russia. India doesn't have anything, I think, against Ukraine. India has been in the middle of the conflict. India hasn't taken any official side, so of course कोई भी बड़ी कंट्री के लोग, yeah. Anyways, Jason go back. Jeffrey,
there were no commercial flights, right? अच्छा, इसकी बात तो कह रहा है इट वॉज रियल, बट कोई डेवलप करनी होती तो यही करती। जेल में हूँ, एक बार देख भी। अरे भाई देख लेंगे, रुको तो सही, सब कुछ देखेंगे। दिस वन जॉफरी क्या ये अच्छा पहले पढ़ना है। Details of parties that took money from corporates via electoral bonds as disclosed by SBI to Supreme Court. CPIM did not take a single penny. What is CPIM? I don't even know that. मेरी तो ये दिक्कत है ना भाई, मुझे तो पॉलिटिकल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। India is the 4th most powerful country in the world. Yep. और भारतीय जनता पार्टी ने holy fucking shit, how much is it? 11,500 करोड़। All right. बिल्कुल सही। ये देख, गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने भी 70 लाख तो लिए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ओके, मार्क्सिस्ट। ऑल राइट, ओके। ठीक है, अच्छा ये देख लिया था। Only because BJP बाकी सबकी माँ की बीप। Who the duck is अमित शाह? Who the duck is oh fuck what BJP? Alright. जाफर भैया दिख नहीं रहे हैं? माँ, मैंने कहा था ना कैसी भी सिचुएशन हो। By the way, ऐसे पहले भी एयरलिफ्ट ऑपरेशन हुए हैं, हाँ ऑफ कोर्स, बट उसको मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं किया है। चेक कर लो। एयरलिफ्ट तो हाँ पूरी मूवी आई थी ना, मतलब बहुत टाइम बाद आई है, बट हाँ आई नो होती है यार ये चीज़ें। तो बहुत इलेक्शंस के लिए बॉन्ड्स निकलते हैं, बिग कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस निकालती हैं। आई मे बी रॉन्ग बट दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। यार एक चीज़ कहूँगा भाई, अभी कसम से कह रहा हूँ, कौन से भाई साहित्यिक जॉफरी किडनी स्टोन में डिलीवरी से भी ज़्यादा पेन होता है। गूगल कर ले। आई स्टिल वेयर इट इवन आफ्टर ऑपरेशन। डोंट गिव मी द वुमन कार्ड। औरत जात मदर जात। 2015 list of evacuation operations carried by India. वॉर रुका दी तो कुछ आता ही था। टू बी फेयर 2200 होते आ रहे हैं यार। 2020 में भी हुआ है, 2015 में भी हुआ है, 2006 में भी हुआ है। अरे हाउ आर दे इंजीनियर एक्सप्लेन। भाई मेरे रुक तो जा साहित्य, एक चीज़ तो समझे, फिर उसको देंगे ना इन चीज़ों पे इधर उधर। अभी तो मेरे ख्याल से वही ख़त्म नहीं हुई थी ध्रुव राठी की वो ये वाली फार्मर्स वाली वीडियो। होल्ड ऑन। Operation Ganga, an evacuation mission to bring back all the Indian citizens currently stranded in Ukraine. Russia and Ukraine are currently at war. Russian military launched a series of attacks in Ukraine recently. Yep. 2020. Not all भी लिखा है चूतिया। जबरी तू थोड़ा सन की है यार साहित्य। मुझे एक बात बता। Hold on. What are you responding to? अपने मम्मी को आने देते हैं बेशरम। अच्छा so किस बात पे कह रहा है? क्योंकि आई हेट व्हेन पीपल फाइट ईच अदर फॉर पॉलिटिक्स। आई रियली हेट इट। भाई हम जैसे कॉमनर्स सो टू स्पीक, व्हेन दे फाइट ईच अदर ओवर पॉलिटिकल पार्टीज और इन सब चीज़ों के, आई थिंक दिस इज रियली स्टूपिड ऑफ अस। हियर्स समथिंग व्हिच एवरीवन शुड रियलाइज। दिस इज माई ओपिनियन। मोस्ट पीपल ऑन टॉप डोंट गिव अ फक अबाउट यू और मी। Most people on top do not give a fuck. And it's fine, you have a preference कि मुझे वो पसंद है, मुझे वो पसंद है, मुझे वो पार्टी पसंद है, मुझे वो पार्टी पसंद है. It's fine, it totally makes sense, right? Everyone will have their preferences. हर किसी के अलग तरीका होता है जीने का, हर किसी का अलग तरीका होता है सोचने का. It's fine. But fighting each other over it, like I think that's extremely stupid. मैंने कुछ बोला भी नहीं, इसको कहाँ से सन की नीलेश। भाई नीलू, या तो आप ये पॉलिटिकल
चीज़ें हटा दो या तो थोड़ा लड़ाई बढ़ जाएगी। क्यों क्यों भाई क्यों? दला वर्सेस राजवीर का पोल डालते मेरा मोदी जी की मेरी मोदी जी की रात की आरती का टाइम हो गया है, थोड़ी देर बाद आता हूँ। राइट सो हाँ हो है 2006 में हुआ था। इट वॉज इन इसराइल लेबनान का जब हुआ था 1990 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2011 में हुआ था, 2015 2016 तो इवैक्यूएशंस हुई हैं, ऑफ कोर्स हुई हैं, लाइक यू नो नॉट द फर्स्ट टाइम। ओके बिंदी आजी साहित्य तेरा क्लेम फर्स्ट हो गया, स्क्रीन पे देख ले। व्हाट? I find it very healthy discussion, Sahitya bhai. But it will only be healthy if you're not attacking each other. These people on the top, do you really think they give a shit about you? They don't. Till now. True. But Modi knows जो दिखता है वो बिकता है. True, true, true. भाई बात तो सच्ची है, जो दिखता है वो बिकता है. That's true in itself. अरे नीलू भाई एक बार आप इंजीनियर एक्सप्लेन चलाओ भाई, ये कंप्लीट करके मैं फिर चलाता हूँ। जौहरी भाई को दिखाओ। ओके थोड़ा देख ले, इधर भी शुभदीप को मिस कर रहा हूँ मैं भाई, चैट देख लो ब्रो। अरे लड़ाई रुकवा रहा था यार मैं सॉरी भाई, मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा जो को एक रिकॉग्निशन देगा। अरे वाह, और मुझे पता है तू क्या किस रिकॉग्निशन की बात कर रहा है। फक ऑफ। जो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स मौजूद है ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, फिक्शन हो या सेल्फ हेल्प हो। डाउनलोड करके खुद ही ट्राई करके देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक को इस्तेमाल करने से आपको एक बहुत बड़ा 70% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ट्रू 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 नीरज भाई दिखता तो रोज लेकिन दिखता तो अरे तुमको दिखता हूँ ना यार। ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को सिर्फ शेड्यूल देंगे। ये देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। सितंबर 2019 में पहली बार था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने रेकमेंड किया था लद्दाख को शेड्यूल में किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। लेकिन इस वीडियो जो इसकी हम बात कर रहे हैं साहित्य, इस वीडियो से तुझे कोई इशू है इस पर्टिकुलर वीडियो से? 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की इलेक्शंस होनी थी लद्दाख में और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शंस के 15 दिन बाद वो इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी ने इलेक्शंस को 15 सीट्स के साथ जीता, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022 दो और प्रोटेस्ट देखने को मिले। Fuck off Shruti, I know what you're talking about. लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती है। I know your joke man. ऐसे बिल्कुल नहीं समझा नहीं मैं भाई। बड़ा नीच मूव है टू प्रॉमिस समथिंग एंड विन इलेक्शंस ओवर इट एंड जस्ट रिफ्यूज टू डिलीवर इट। हाँ बट अगेन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज प्रोबेबली डू दैट राइट, बट हाँ यही कारण कि आज ये इंडेफिनिट फास्ट आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जाए, जैसा आपने देखा पिछले कई सालों से बार-बार लोगों ने अपनी डिमांड्स उठाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है डिमांड पूरी करने में? ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो पूरा देश इधर-उधर उलट-पुलट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है मोदी सरकार का बीजेपी का करने में। आखिर उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में खुद लिखा था ये करेंगे। क्या कारण हो सकता है यहाँ पर? एडीसीज के फंक्शंस के बारे में एक लाइन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, स्क्रीन पर देखिए। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिसडिक्शन। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। नोटिस किया आपने? लैंड्स, फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी लद्दाख की जमीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की जमीन ये बीजेपी फेल हो गई, मैं भी मानता हूँ। इस पे थोड़ा फोकस होना चाहिए जो थर्ड टर्म होगा शायद मेरे हिसाब से। राइट शायद मैं तेरे को बहुत सुनाता बट मतदान जनरल होते हैं। राइट stopping rape in India is very difficult because huge population, a lot of our young and unemployed, and internet is free. People watch a lot of adult content all day, mainly in rural India. See foreign girl. In their village, they can't control. It's not that they can't control, they choose not to control. They choose not to control. Man, if you say they can't control, then you're saying they're basically helpless for their impulses. They're not. Whenever is someone जो भी decide होता है is old enough to take responsibilities for their actions, they can control and then they choose not to. So, that's the only disagreement I have on that. जमीन को लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ की हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना ना सिर्फ वहाँ के लोगों से उनका अधिकार छीनना होगा बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। लद्दाख एक बेहद सुंदर लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियाँ इतनी अनोखी हैं जैसी दुनिया में कहीं और नहीं। दुनिया की सबसे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कि स्नो लेपर्ड या टिबेटन एंटीलोप। यहाँ की लेक्स का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ है कि देखकर यकीन नहीं होगा कि इतनी सफाई भी कहीं हो सकती है। और अगर आप कभी लद्दाख गए हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ के लोग कितने भोले और कितने साफ दिल के। इन लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, ये मॉनेस्ट्रीज और ये फेस्टिवल्स इतने बेहतरीन है कि दुनिया भर
से लोग आते हैं इन्हें देखने। मतलब शुभदीप सुनाता मुकुल मंजल +1 रील्स 36 बरादरी वही है। जफरी शुभदीप बिंद्रा मुकुल टॉप 4 चैटर्स ट्रू। तेरी पक्चौरी की वजह से जॉफरी को कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं करेगा चैट में। I know I can drink 5 beers, but I choose to drink 8. Cheers. Vivek, yes, but I didn't want to interrupt. +1 मुकुल ऐसी क्या बात हो रही थी? शिवदीप इधर, अच्छा ये टॉप चैटर सॉरी ना, ऑलराइट। मुकुल लव यू ब्रदर। मेरा मानना है कि हर इंडियन का ये कर्तव्य होना चाहिए लद्दाख जैसी एनवायरमेंट और कल्चरल डाइवर्स प्लेस को बचाए रखना। ऐसी जगहें हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, लेकिन हमारी सरकार आज के दिन इन अनमोल रत्नों को किस तरीके से ट्रीट कर रही है उससे सरकार की नीयत के बारे में बहुत पता चलता है। आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, सिविल वॉर की हालत में है और प्रधानमंत्री मोदी वहां जाने तक को तैयार नहीं है। लेकिन मणिपुर की इस हालत के पीछे भी एक कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का कारण है, जिसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल काटा जा रहा है, कितनी ही रील्स लोगों ने बना ली उस जंगल को बचाने के लिए, लेकिन माइनिंग के लिए उसे ओपन अप कर दिया सरकार ने। किसको फायदा मिल रहा है उससे, जनता को या सिर्फ ऊपर बैठे प्रधानमंत्री के मित्रों को? ये कहानी सिर्फ लद्दाख मणिपुर या हसदेव की नहीं है दोस्तों, यहाँ एक बड़े स्केल पर कोशिश की जा रही है देश के जंगलों को बेचने की, देश के पहाड़ों को बेचने की, देश की जमीन को बेचने की। और इस सब कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का फायदा सिर्फ ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। अभी भी कनेक्शन नहीं समझ में आया तो यहाँ क्लिक करके ये वाला वीडियो देखो जाके, पूरा फंडा ढंग से समझ में आ जाएगा। ओके मेक सेंस। हाँ, कौन सी वीडियो कर रहा था साहित्य? बिंद्रा जी मीम है, आप जेल में हो आपको नहीं पता चलेगा। ऑलराइट, तुला के बोल रहा है। मिसिंग अमित भाई, होप हिज लिवर इज डूइंग वेल। ट्रू। Jeffrey gentlemen, one coder suicide because of job pressure. Chestos, what do you mean by that? What are you implying? मोदी जी के लिए कर्म अब अप्लाई होगा। Alright, मेरी पूरी चैट लेफ्ट है जफरी। Just whenever I thought you wouldn't stoop any lower, Chestos. Exactly, just what are you implying by that? Why do you say that? कभी नहीं। कौन सी वीडियो गई थी यार तूने? इंजीनियर एक्सप्लेन्स ना, ENG एक्सप्लेन्स था वो, के इंजीनियर एक्सप्लेन्स दुर्बराठी। हाँ, रियलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया। यार ये वीडियो हमने पहले नहीं देखी क्या? अगर आप भी ऐसे ट्वीट करते हैं या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप एक्चुअली में ब्रेन वॉश हैं। आप इस लेवल पे ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो कितना सच है। आप उस चीज के बारे में बिना सोचे बिना वेरीफाई किए उसी को सच मान लेते हो, और इसीलिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। ये जो वीडियो है इसको हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो का जो आउटकम है वो क्या एम किया गया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलग। Jeffrey, I got your back, brother. Chess. शिवदीप मिल मत जाइयो, रजत भाई को फोन कर दूंगा। लाइंस बनाई थी जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। राइट में दिखती है चैट, हमारी स्क्रीन पे राइट में दिखती है चैट। ट्रू। जफर भाई ध्यान से देख ये वीडियो कहाँ पर जाएगी। पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये लाइन से जीतेगी, लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया। इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहाँ पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद हाथ देंगे मुझे मार दूंगा साहित्य। अरे भाई कुछ किसी और को फोन करके बुलाते हैं। कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़ेंगे कि शक्ल देखो, शुभदीप कैमरा को देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़ेंगे। जस्ट व्हाट आर यू डूइंग मैन? और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपका कहना है कि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में बीजेपी ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके धांधली की और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऐतिहासिक फैसला देते हुए बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बीजेपी ने धांधली की है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके इलेक्शन किए जाते हैं तो उसमें जो नतीजे होते हैं उसको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है, और इसीलिए इस ईवीएम को लाया गया था ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें ये दिखता है, साफ साफ दिखता है कि बैलेट पेपर का जब इस्तेमाल हुआ है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाए। लेकिन एक मिनट, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं आपने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक ईवीएम है, और ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम को हटाना चाहिए। और अब आप ये कह रहे हो कि जब बैलेट पेपर इलेक्शन हो रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आसानी से नतीजे बदले जा रहे हैं। तो अगर ईवीएम हैक हो सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम को यूज करके इलेक्शन जीत रही हैं, तो जब आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीती थी तब क्या वहां पे ईवीएम हैक नहीं हुआ था? तो दो स्ट्रैटेजी आप अपने व्यूअर्स बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम? क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि बैलेट पेपर सही है या फिर ईवीएम सही है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ये तो क्लियर होता है कि दो स्ट्रैटेजी अपने व्यूअर्स के साथ ही चीट कर रहे हैं। उनके व्यूअर्स भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम बैलेट पेपर को सपोर्ट करें या फिर ईवीएम को सपोर्ट करें। लगता है दो स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो कभी बीजेपी में जाते हैं कभी आरजेडी में जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारा जो अगला पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। होल्ड ऑन, just those analyst bro, it's latest news, you can search किया है बुढ़ा बोल रहा हूँ
This is true news. It might be true news. I'm asking, what are you implying by that? What is the purpose of you mentioning that? Is my भाई तू देख पहले नहीं. We do things like this. We do things. We stop. We understand something. We try to understand something. Then we move forward. अगर मैं पहले पूरी वीडियो देख लूँगा ना 28 मिनट की, तो मैं पूरी वीडियो में जाके एक बात नहीं बोल सकता, because I'm not making a video. I'm reacting to it. I'm trying to understand it. तो रोक के देखनी पड़ेगी. If I watch the 28 up to 28 minute mark, उसके बाद मान लो कोई 7 मिनट पे कोई चीज़ थी जो कि शायद मुझे पसंद नहीं आई, बट एंड में I wouldn't remember it. कोई 15 मिनट पे चीज़ थी जो मुझे बहुत पसंद आई हो, in the end I wouldn't remember it. तो I have to stop it in between. I can't afford 300 करोड़. वीडियो सही बनाई है बंदे ने, by the way, no doubt. The visual concept, the visuals look good. Yeah, sure man. Oh, you can please help me. इसके बाद इसकी पहली भी देखो प्लीज यार. पहली we gotta go point by point. Even in this point, I don't exactly understand the real problem. क्लियर कर दिया, और ये सीधा 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35. पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर डिवाइड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो का जो आउटकम है वो क्या एम किया गया था. Let's dissect it. शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से. हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई. इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी, जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35. पार्टी के वोट्स को देखकर ये बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी. लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया. इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और ये सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहां पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया. इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए, की शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए. और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई. इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. तो आपका कहना है कि चंडीगढ़ के मेयर, तो ये ईवीएम और उसकी बात नहीं हो रही. लाइक ही इज अ जर्नलिस्ट, न्यूज़ रिपोर्टर. आई डोंट नो व्हाट ध्रुव राठी identifies as professionally. He just is bringing something to light. It's not necessarily saying कि ये सिस्टम हटा देना चाहिए, वो रख देना चाहिए, वो सिस्टम हटा देना, वो रख देना चाहिए. And the second thing he does, वो जो आप वाली बात है, that's what about it. So what's the point of doing that? कोई चीज़ गलत है तो गलत है, रिगार्डलेस कौन कर रहा है, चाहे वो आप कर रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है. मे बी हिज पॉइंट इज कि ध्रुव राठी इज क्या कहते हैं, हैज़ डबल स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर आप, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ बीजेपी. फेयर इनफ, दैट्स अ फेयर पॉइंट, बट दैट इज not exactly related to this point that he's making right now, because it's like dictatorship in India. So it's not exactly about Dhruv Rathi, it's about dictatorship in India. कि वो है या नहीं है. भाई वो मान रहा है कि गलती किया है बीजेपी. नहीं भाई मेरे, वो भी एक ये भी एक टैक्टिक होता है. ये भी एक टैक्टिक होता है कि तुम अपनी कोई वो चीज़ जल्दी से बोल के निपटा दो, एंड उसके बाद तुम वो सब करो, राइट. तो ये वाला जो पॉइंट था ना, इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बिलीव दैट, यू जस्ट से कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, ये चीज़ पहले भी हुई है, अभी हुई है, जो भी कर रहे हैं सारे गलत है, ख़त्म बात. भाई वो आपसे फंडेड है पहले की वीडियो. यार मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, मुझे पता है लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, मुझे पता है ये चीज़. उसके बाद ये देखो, नहीं मेरे भाई मेरी बात समझ, ये वीडियो है रियलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप इन इंडिया, है ना. यहाँ पर ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई पॉइंट ही नहीं है. वो वीडियो ध्रुव राठी ने बनाई थी. इसको अगेन एड होमिनम कहते हैं. एड होमिनम क्या होता है कि मेरा और तेरा कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तू आर्ग्यूमेंट को छोड़ के मुझे क्रिटिसाइज़ करे. अब इसने डायरेक्टली ध्रुव राठी को वैसे क्रिटिसाइज़ नहीं करा, बट ध्रुव राठी को एज अ पर्सनैलिटी अगर तुम क्रिटिसाइज़ करो तो एड होमिनम ही है. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू डिक्टेटरशिप इन इंडिया, वेदर वी हैव डिक्टेटरशिप और नॉट. समझा? ठीक है, आप आगे देखो. देन यू आर नॉट इवन लिसनिंग मैन, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू वॉचिंग मी वॉच दिस. बिल्कुल मुक्कल, बट एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ. मैंने बहुत सारे चैट मिस कर दी, एक और चैट देखता हूँ. ड्रिंक वाटर सिद्धू, तब तक सारे लाइक करो. अरे नहीं करेंगे सिद्धांत. Bro, this is the news. I'm just sharing this. What is the problem in sharing any news? Because you're lying that you're just sharing it, because you're definitely implying something. So at least don't lie, man. अब सॉरी मांगो भाई, रिटर्न अपॉलॉजी. सतीश बिरादरी हमारा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा. सिद्धू भाई, दारू में ला के पी सकते हैं क्या वाटर? भाई वो मान रहा है कि गलती है. आई थिंक यू मीन दोगला. हाँ भाई वो आपसे फंडेड है. हाँ, आई एम जस्ट सेइंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इन जॉब वर्ल्ड. आई हैव गॉन थ्रू दैट एंड आई एम सेइंग दैट टू बी रेडी. नॉट एग्जैक्टली, दैट्स नॉट कमिंग फ्रॉम अ फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, क्या कहते हैं उसको, केयर टू से द लीस्ट. तो मैं इसको वीडियो भी फंडेड बोल दूँ, ख़त्म. ठीक है, आप आगे देखो. बिल्कुल प्रूफ साहित्य कह रहा है. प्रूफ साहित्य 6-7 दिन पहले वाली स्ट्रीम देख ले, सारे पॉइंट्स हैं.
भाई बियर पीने से पथरी निकल जाती है पर 4 दिन पहले तो मैंने ये चैनल डिस्कवर करा है, अरे वाह, मतलब नए लोगों को मिल रहा है चैनल। फंडेड प्रूफ क्या है? बहुत सुना है ये आर्गुमेंट। यार मेरे भाइयों मेरी बात समझो, कसम से कह रहा हूँ, जस्ट एक दूसरे की तरफ ना एक अटैकिंग मोड, लाइक अटैक मोड, श्वेताब गंगवार सब्सक्राइब श्वेताब, लेकिन एक ये अटैक मोड से एक दूसरे की तरफ बात करना बंद करो फॉर सम पार्टीज। दिस पार्टी लीडर्स डोंट गिव अ फक अबाउट यू मैन, सबको कह रहा हूँ, दे डोंट गिव अ फक। आपस में ये बात करो, ठीक है तुझे ये पसंद है, तुझे मुझे ये पसंद है, ठीक है, मे बी आई एम राइट अबाउट सर्टन थिंग्स, मे बी यू आर राइट अबाउट समथिंग, इट्स ओके टू बी रॉन्ग, ऑल ऑफ अस आर रॉन्ग एट सम पॉइंट्स इन आवर लाइव्स, इट्स ओके। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अच्छा बाय द वे साहित्य, इस बात पे भी शायद मैं डिसएग्री करता हूँ तेरे से, क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है, या तो लेफ्ट नहीं, मैं तेरे से डिसएग्री नहीं कर रहा एक्चुअली, या तो लेफ्ट वाले बोल देंगे गोदी मीडिया, राइट वाले बोल देंगे सोरोस की मीडिया, या फिर यहाँ से फंडेड वहाँ से फंडेड, या तो दोनों मीडिया फेयर हैं या फिर दोनों फेयर नहीं है। प्रूफ तो हमारे पास दिखे नहीं, एक बार चेक तो कर। प्रूफ इंजीनियरिंग एक्सप्लेन दे रहा है, एक बार वीडियो देख तो सही, बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड है भाई तेरा जॉफरी। भाई मुकुल को पथरी है, नीलेश ब्रो दिस इज योर थिंकिंग, आई कांट डू एनीथिंग, आई जस्ट शेयर न्यूज़। नो यू आर नॉट न्यूज़ रिपोर्टर जस्ट डोज, यू डोंट जस्ट शेयर न्यूज़, दैट्स अगेन लाई। This is you are sharing this news in regards to your last argument with Joffrey. Come on man, we all understand that. भाई मुकुल बता तो नहीं है, हाँ बिंद्रा स्टोन के अलग से पैसे मिलते हैं, मैं बस पूछ रहा हूँ, उसने मुझे सन की बोला था तो मैंने कुछ नहीं बोला। यप श्योर मैन, अच्छी बात है, नहीं बोला। फक पॉलिटिकल पार्टीज बिकम IPC, ट्रू। ऐसा कि माँ की BJP इज़ द बेस्ट, ट्रू। एक बार चेक तो कर, देख रहा हूँ। साहित्य मदान कौन सा क्लास में हो? लीपा लेन टैबलेट, ओके, कंप्लीटेड 12/12, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू ब्रो। हाँ वी आर कंटिन्यू, जस्ट यार चैट पढ़ लो एक बार। हाँ टॉक अबाउट द इशू एंड थॉट्स विदाउट कीपिंग पॉलिटिकल पार्टीज, without keeping political, I completely agree नीलेश। साहित्य अरे भाई चैट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, चैट हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम वैसे ही पढ़े। चैट तो तुझे कभी नहीं लगता कि नीलेश इतना क्यों डिसएग्री करता है तुझसे? मेरे को तो बहुत सेंस लगता है तेरे आर्ग्यूमेंट्स में। ये चैट पता नहीं क्या क्यों डिस्क्रिमिनेट करती है इलेक्शंस में बीजेपी ने बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके धांधली की और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ऐतिहासिक फैसला देते हुए बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल सही, मैं भी मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बीजेपी ने धांधली की है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल करके इलेक्शन किए जाते हैं तो उसमें जो नतीजे होते हैं उसको मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है, और इसीलिए इस ईवीएम को लाया गया था ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं जिसमें ये दिखता है, साफ दिखता है कि बैलेट पेपर का जब इस्तेमाल हुआ है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाया। लेकिन एक मिनट, जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूं, आपने कहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक ईवीएम है, और ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है, इसलिए ईवीएम को हटाना चाहिए। और अब आप ये कह रहे हो कि जब बैलेट पेपर इलेक्शन हो रहा है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आसानी से नतीजे बदले जा रहे हैं। तो अगर ईवीएम हैक हो सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम को यूज करके इलेक्शन जीत रही हैं, तो जब आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन जीती थी तब क्या वहां पे ईवीएम हैक नहीं हुआ था? तो दो स्ट्रैटेजी आप अपने व्यूअर्स बताइए कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बैलेट पेपर या फिर ईवीएम? क्योंकि आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि बैलेट पेपर सही है या फिर ईवीएम सही है। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ये तो क्लियर होता है कि दो स्ट्रैटेजी अपने व्यूअर्स के साथ ही चीट कर रहे हैं। उनके व्यूअर्स भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम बैलेट पेपर को सपोर्ट करें या फिर ईवीएम को सपोर्ट करें। लगता है दो स्ट्रैटेजी नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो कभी बीजेपी में जाते हैं कभी आरजेडी में जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हमारा जो अगला पॉइंट है उसके अब तुम ये देख लो, जो फर्स्ट पॉइंट का इसने समरी दी, तो समरी क्या है कि ध्रुव राठी कंफ्यूज्ड है और मतलब ऑडियंस को कंफ्यूज कर रहा है। समरी ये है कि भाई इसने एक अच्छा पॉइंट आउट करा है कि भैया फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, उसका जवाब शायद हमारे पास नहीं है कि क्यों नहीं हो रहे या फिर कैसे होंगे, है ना। साहित्य मदन टाइपिंग मिस्टेक, ब्रेन वॉश भाई आर्गुमेंट्स दे कब से बस अटैक कर रहा है, ओके, जस्टिस फॉर निर्भया। फरवरी 2024 तीन अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को देश भर में कंडक्ट करवाएगा। तो ध्रुव राठी जी का कहना है कि ईवीएम आसानी से चोरी हो जा रहा है, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर इलेक्शन करवाने वाला है? ध्रुव राठी जी ने बिल्कुल सही बोला, कोई गलत बात नहीं बोला, ईवीएम बिल्कुल चोरी हुआ था। बट जो ईवीएम चोरी हुआ था वो रियल ईवीएम नहीं था, बल्कि वो डेमो यूनिट था। डेमो यूनिट का मतलब कि वो ईवीएम इस्तेमाल किया जाता है लोगों को ये बताने के लिए कि आप ईवीएम में वोटिंग कैसे करोगे। अगर आप लोगों ने कभी वोट दिया है तो जब आप पोलिंग बूथ पे पहुंचते हो तो वहां पे आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाया जाता है कि आखिर वोट कैसे डालना है, और उसी डेमो यूनिट को चोरी किया गया था, ना कि असली यूनिट। तो ध्रुव राठी सही फैक्ट तो दिखा रहे हैं लेकिन वो पूरा फैक्ट नहीं दिखा रहे हैं, और इसे कहा जाता है ओमिशन, जिसमें एक व्यक्ति अपने हिसाब से फैक्ट का सिर्फ कुछ ही पार्ट दिखाता है और इसे कुछ लोग सिलेक्टिव डिस्क्लोजर दिखाते हैं। खैर चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते। लेकिन जो डेमो यूनिट था, वाज इट लाइक नॉट वर्किंग एट ऑल और वाज इट वर्किंग और नॉट? क्योंकि इसमें इम्प्लीकेशन ये है ना, उसको चुराया था टू फिगर आउट हाउ दिस वर्क्स एंड हाउ यू कैन मे बी हैक इट, आई डोंट नो, दैट्स द इम्प्लीकेशन। तो क्या वो वर्किंग यूनिट थी डेमो के? वो ऐसे ही मतलब कुछ प्लास्टिक का बॉक्स रख दिया कि देखो ऐसा बॉक्स होगा, तुम यहाँ पर क्लिक करके वो कर सकते हो। अगर वो है तो इंजीनियर एक्सप्लेन्स का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर वो जो डेमो यूनिट थी वो इतनी डेमो थी कि उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थी, वो असली में काम भी नहीं कर सकता था, तो द पॉइंट इज़ कम्प्लीटली वैलिड इंजीनियर एक्सप्लेन्स का। अगर वो डेमो यूनिट
वुडंट वर्क एट ऑल. लेकिन अगर उस डेमो यूनिट को चुरा के यू कैन गेट एन आइडिया कि भाई वो चीज़ हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर हाउ यू कैन मैनिपुलेट समथिंग, देन हिज पॉइंट इज़ नॉट वैलिड. दैट इज़ द रियल इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर, कि डेमो यूनिट वर्किंग पॉसिबिलिटी उसकी थी या नहीं थी. ये नहीं है कि वो डेमो यूनिट थी या वो असली यूनिट थी. अगर मैं एप्पल में जाके एक डेमो लैपटॉप चुरा लूँ, मैंने तो तब भी लैपटॉप ही चुराया ना. चैट सेज एनएम बेरोज़गार की कोई जात नहीं होती. जस्ट शायद तुम कभी एक बार गलत हुए होगे, तब से सबको लगता है तू हर चीज़ में गलत ही है, जो भी तू कहता है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जॉफरी किन लोगों को अटेंशन दे रहा है. डोंट लूज मेंटल पीस ओवर दिस, चिल. कान से बाय द वे चेस्टोस मुकुल तेरे को बोल रहा था आज दिमाग खाने नहीं आया. सेक्स फक ऑफ विवेक. डॉक्टर स्पीकर यू आर सेइंग नीलेश बेरोजगार. ट्रू मैन, सही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है. डेमो ईवीएम वाज स्टोलन फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली. वो क्रिमिनल्स को सिखा रहे थे कि वोट कैसे करते हैं. चेस्टोस नल्ला बेरोजगार. मुकुल चेस्टोस नल्ला, तुझको नल्ला बेरोजगार मुझे हो रहा. थैंक्स भाई, विल डू. नीलू भाई, हैक और चोरी में अंतर होता है. अरे भाई मेरे चोरी क्यों किया गया है, चोरी क्यों किया गया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं. ब्रेक लिया बस, मंडे से प्रेप रिज्यूम कर देंगे. ऑलराइट, नाइस मैन, गुड लक. मेरे को तो चेस्ट डोज भाई मेरे साहित्य में ये कह रहा हूँ कि अगर वो डेमो यूनिट वर्किंग है तो भाई उसको कोई चोरी क्यों करेगा. उसको चोरी इसलिए तो करेंगे नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है पैसे की या फिर ये सारी चीज़ें. उसको कोई चोरी करेगा तो इसलिए करेगा ना, टू फिगर आउट हाउ यू कैन मैनिपुलेट द रिजल्ट और समथिंग लाइक दैट. तो अगर वो चीज़ चोरी हुई है, जो अगर वो डेमो यूनिट भी है एंड उसको देख के भी यू कैन फिगर आउट हाउ दिस वर्क्स एंड हाउ यू कैन मैनिपुलेट इट, देन चोरी इज कंप्लीटली वैलिड, चाहे वो असली वाली हो चाहे वो डेमो वाली हो. राइट. लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है. ये एक्यूजेशन बहुत पुराना है. सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने ये आरोप लगाया. लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है. उनका कहना है कि उन्होंने वंस अगेन अगर वो डेमो यूनिट बिल्कुल ही बेकार थी, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो जो डेमो यूनिट है वो रिपोर्ट डाली है शायद उसी में लिखा हो सकता है, उसमें लिखा हो. लेकिन तो समझ रहे मेरी बात, ये चीज़ वीडियो में होनी ज़रूरी है, वीडियो में तो होनी ज़रूरी है नहीं चीज़. शायद तो 90% की बात कर रहा था. इफ़ यू डोंट नो, हम रिजल्ट्स वाले दिन सभी एक रोल नंबर लेंगे जो स्ट्रीम में बकचोदी करते हैं. वही तो खाली टाइम बहुत है ना, उस पर तो कुछ भी बोलता है. जस्ट उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा. इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे. इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर. मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई. एनडीटीवी ने उस वक्त ये रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस. यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए. बाद में पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा. पता है इनके साथ क्या प्ले GTA 5 तो फुकरा इंसान लिख के आया ना, तो वही है ना, शिवम ही है ना. तो शायद तो 90% की बात कर रहा था. आई जस्ट रियलाइज मैं नीलू के लिए नहीं चैट के लिए आता हूँ अब. अरे वाह, समझ नहीं आया. अच्छा मेरी बात समझ नहीं आई. ओके हाउ डू एक्सप्लेन दिस. अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ फिर समझाऊंगा. ओह आई लाइक दिस चैट. ऐसे भी है ना. पलवल भैया, आई वांट बाबा राम रहीम कैंपेन फॉर बीजेपी. ऑलराइट, स्ट्रिप क्लब जाओ GTA 5 में एंड लैप डांस लो होकर से. नहीं भाई, वो यूट्यूब से तुम चैनल डिलीट करा दो. सो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि वो डेमो यूनिट है. ये एक डेमो यूनिट है, मान लो ये एक रियल थिंग है, ठीक है. दिस इज सो फकिंग बैड लुकिंग. ये डेमो यूनिट है, ये रियल थिंग है. अगर इस डेमो यूनिट को चुरा के मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ये रियल थिंग को मैं कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ या फिर हैक कर सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ, अगर वो चीज़ होती है तो वो पॉइंट इनवैलिड है कि डेमो यूनिट चुराई थी, क्योंकि इसको तो मैं तभी मैनिपुलेट कर रहा हूँ ना इसको चुरा के. लेकिन अगर ये डेमो यूनिट एक्चुअल में ऐसे खाली रैपर की तरह है, मतलब दिखने में इसकी तरह है मान लो, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है और इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं सकती असली चीज़ के बारे में, देन ये फैक्ट कि वो डेमो यूनिट चुराई थी मेक्स नो सेंस. क्योंकि अगर तुम्हें हैक करने और उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें चाहिए चुरानी है तो इट इज़ स्टिल पॉसिबल. दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर क्लेम ये है कि डेमो यूनिट चुरा के इसी में बटन दबा दिए तो देन इट्स वैलिड कि वो डेमो यूनिट थी, अदरवाइज इट्स इनवैलिड. डोंट एवर बी अ टीचर. फक ऑफ मुकुल, फक ऑफ. यू हैव मोर पेशेंस देन मी. Alright, that's good. Patience is good, नहीं?
Don't ever be a teacher. How to delete YouTube channel in Hindi? अगर नहीं आता तो हम बता देंगे. Jay Shetty exams. Bro thinks he is Dhruv Rathi. I don't think I'm Dhruv Rathi. Fuck off. Dhruv didn't even. Dhruv तो इतना हरामी उसने तो बोला भी नहीं कि डेमो यूनिट थी. Dr. with the motivational speaking, I think Nilesh bro don't like to talk about money. I like to talk about money, and that should can be reason. And by the way, he is super rich. आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए. सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया. भाई मुझे पता है I shouldn't even engage in this. I shouldn't even engage in this. But dude, if I was super fucking rich, would I not have 10 fucking editors editing my reels and putting them on social media and running ads over it? Why would I not do that? And जो हम आज बात कर रहे थे मेरे भाई चेस, वो तो हम ये बात कर रहे हैं कि why would you bring up someone's suicide? Especially given the fact you have had this conversation, this argument with Joffrey a few days back. So it's not just sharing news randomly, right? It's just specific. That is the argument. And it's not even that I don't like to talk about money. I don't think money should be the only thing you talk about. So you don't have 10 editors because you are too lazy to hire. True, that's true. थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए. बाद में पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा. पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए. सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया. जरा सोचिए, ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? यहाँ पे भी सेम टेक्निक यूज की जा रही है. यहाँ पे भी ध्रुव राठी जी सिलेक्टिव डिस्क्लोजर कर रहा है. एनीवेज, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका इन्फ्लुएंस सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर होता ही होता है. दीपक भाई कहाँ है? दीपक से यार अभी मेरी बात नहीं हुई भाई. मैं आपको 2005 की बात बताता हूँ. 2005 में कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में थी. वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में नवीन चावला सेक्रेटरी थे. तो जब नवीन चावला 60 साल के हो जाते तो वो एज सेक्रेटरी रिटायर हो जाते हैं. रिटायर होने के बाद सोनिया गांधी उनको इलेक्शन कमिश्नर बना देती है. तो यहाँ पे गेम कुछ ऐसा चलता है कि 2005 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे बीबी टंडन, जो कि 2006 में रिटायर करते हैं. और उनके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं गोपाल स्वामी, जो कि पहले इलेक्शन कमिश्नर थे. अब क्योंकि गोपाल स्वामी सितंबर 2008 में रिटायर होने वाले थे, तो अब जो नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं वो ऑटोमेटिकली नवीन चावला बन जाते हैं. और अगले 10 महीने तक रिटायर होने से पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने रहते और कांग्रेस की 2009 के इलेक्शंस में हेल्प करते. और इसी कारण से 2005 में सोनिया गांधी गवर्नमेंट कांग्रेस ने उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया था. ये जो नवीन चावला, इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हेल्प करने वाले थे कांग्रेस पार्टी की. 2006 में जब नवीन चावला इलेक्शन कमिश्नर थे तब उनकी वाइफ को 85 लाख रुपए कांग्रेस के एमपी अंबिका सोनी से मिला था. अंबिका सोनी जी का कहना था कि ये पैसे उन्होंने सोशल कॉज के लिए दिया था. अच्छा, गोपाल स्वामी नवीन चावला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. तो गोपाल स्वामी ने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था और लेटर में ये कहा था कि जो नवीन चावला है उनकी बहुत ज्यादा नजदीकी है कांग्रेस पार्टी के साथ और इसलिए नवीन चावला को उनके ऑफिस से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए. अब सोच कर देखिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑलरेडी है वो ये बता रहे हैं कि जो अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले हैं उनकी नजदीकी बहुत ज्यादा है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, इसलिए उनको हटाया जाए. बट उनको नहीं हटाया जाता है और बाद में नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं. और चीजें खत्म नहीं हुई है, चीजें अभी और भी है. 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन अपॉइंट किया था जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेसी साहब. इस कमीशन का गोल था पता लगाना कि नवीन चावला ने इमरजेंसी के दौरान कौन से कुकर्म किए और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने पेश करना. और कमीशन ने एक रिपोर्ट बनाया और इस रिपोर्ट को पेश भी किया. और इस रिपोर्ट में जो था वो बहुत ज्यादा चिंताजनक था. ये जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट में बताया गया कि इमरजेंसी के दौरान नवीन चावला किशन जन के सेक्रेटरी थे, जो कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. तब इन्होंने अपने पावर का खूब मिसयूज किया क्योंकि इनको डायरेक्ट एक्सेस था इंदिरा गांधी के ऑफिस में, इसलिए इनके पास बहुत सारे पावर्स थे. और बताया गया कि नवीन चावला इतने करप्ट थे कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस में काम करने के लिए अनफिट और इसलिए बिना इंक्वायरी के तुरंत इनको इनके सर्विस से डिसमिस कर दिया जाए. इस रिपोर्ट में दिल्ली के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ इतने सारे नेगेटिव फाइंडिंग्स थे कि उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली. किसी व्यक्ति को अनफिट बताया जाता है और तुरंत उनके ऑफिस से डिसमिस करने की बात कही जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा हेडेड कमीशन के रिपोर्ट में. फिर भी उस व्यक्ति को सोनिया गांधी आगे चलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने में कामयाब हो जाती है. और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सेंटर में होती है उसका इंफ्लुएंस हर एक सेंट्रल एजेंसी पे होता ही होता है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो सकता है किसी का इंफ्लुएंस कम हो सकता है किसी का इंफ्लुएंस ज्यादा हो, लेकिन इंफ्लुएंस होता ही होता है. पर ध्रुव राठी आपको सिर्फ आधे फैक्ट बताएंगे. सिलेक्टिव डिस्क्लोजर, इस पॉइंट का भी आउटकम यही निकला. कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स. ओके, अबाउट दिस पॉइंट. हाँ, अगेन इसमें वट अबाउटरी तो है ही, लेकिन ये वाली वट अबाउटरी आई थिंक दिस कैन वर्क. दिस वट अबाउटरी वुड वर्क. वाई? बिकॉज इफ ध्रुव राठी इज मेकिंग द क्लेम कि भाई अब ये चीज़ होने लगी और पहले नहीं होने लगी, पहले नहीं हो रही थी ये सब चीज़ें, देन दिस आर्गुमेंट वर्क्स. फेयर इनफ. वेट कैचिंग अप विद द चैट. भाई साहब, मैं आई विल ब्लो माई हॉर्न्स. दिस इज फकिंग डिफिकल्ट टू एंगेज विद द वीडियो, टू एंगेज विद द चैट एंड देन टू होपफुली गिव माई ओन ओपिनियन आउट ऑफ इट. तो अगर मैं 20 चीज़ें गलत बोल रहा हूँ ना, आई एम सॉरी बट आई कांट हेल्प इट. इतना दिमागदार नहीं हूँ मैं. वेट गेनर और क्या कहता, डोंट हैव 10 एडिटर्स बिकॉज यूर टू लेजी टू हैव. ट्रू, मैंने ऐसे देखा एडिटर्स अच्छा आ रहा है क्या कोई. वेट गेनर कहाँ खा रहा है दीपक भाई, आके मेरे मारेगा 20 kg होकर. नीलेश ब्रो भाई तुम बहुत चालाक हो. तुम्हें पता है 10 एडिटर हायर करने से तुमको लॉस होगा, तो क्यों हायर करना. यू कैन पुट इन स्टॉक मार्केट, मेक मोर प्रॉफिट. Oh my god. Do you think putting money in stock market versus actually hiring someone to do some work to make a product, do you think, oh my god, all right, all right, okay, जॉफरी भाई समझ ले. लेकिन जॉफरी ने ऐसा क्या कहा जो इस चीज़ से उसको समझ आएगी कुछ.
पढ़ के इग्नोर किया, बिना पढ़े इग्नोर किया। शुभदीप की बात नहीं, बिना पढ़े इग्नोर करी थी, अब पढ़ लिया। डॉक्टर विवेक मोटिवेशनल स्पीकर, सी माय मैसेज, इट इज़ डिफिकल्ट देन लीव JK। साहित्य, ब्रो डू यू थिंक आई विल डिफेंड द रॉन्ग्स ऑफ कांग्रेस? हेल नो, बट आज की बात आज करेगा ना। समझ गया, मेंटालिटी बस भाई है। साहित्य प्लीज़ एक्सप्लेन दिस यार, मैं समझा नहीं। विवेक जॉफरी एंड मुकुल, मीम पेज छोड़ो, पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं यहाँ, किसी पॉलिटिशियन पार्टी के लिए इंस्टिगेशन टीम बनाते हैं। AMD पर के जजों को हायर क्यों करे एडिटर्स, या काम क्यों करेगा ना जब इतना जनरेशनल वेल्थ है। फकिंग दिलो भाई, आपको नहीं कह रहा, नहीं मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि तू मतलब जॉफरी की, बिकॉज आई पर्सनली एग्री विद व्हाट जॉफरी जस्ट सेड कि उन्होंने भी करा, वो भी गलत था, आज भी हो रहा है, वो भी गलत है। गलत चीज़ को तो पॉइंट आउट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन हाँ, ये वट अबाउट रही इसलिए ठीक है क्योंकि दैट शोज कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बदली नहीं है, पहले भी खराब थी, अभी भी खराब है, बदलनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए विदाउट अ डाउट। इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा हो। हमारे आगे चलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने में कामयाब हो जाती है, और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सेंटर में होती है उसका इन्फ्लुएंस हर एक सेंट्रल एजेंसी पे होता ही होता है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, लेकिन इन्फ्लुएंस होता ही होता है। पर ध्रुव राठी आपको सिर्फ आधे फैक्ट बताएंगे, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर, इस पॉइंट का भी आउटकम यही था, कोई बात नहीं। अब देखो, ओ ऑलराइट, जो सेलेक्टिव डिस्क्लोजर डिक, ऑलराइट। साहित्य मेरे भाई, मेरी बात सुनियो, यू सी, बट दैट इज द डिफेंस। तो आई थिंक दिस इज अ फेयर डिफेंस। अगर तुम्हारा डिफेंस ये है कि देखो कुछ चीज़ बदली नहीं है, पहले भी था अभी भी था, लेकिन इफ दैट इज द डिफेंस कि ये तो ऐसे ही होता है, दैट इज जस्ट रॉन्ग, दैट इज क्लियरली रॉन्ग। ही शुड ऑल्सो मेंशन इन हिज वीडियो कि भाई ये चीज़ गलत है, आई डोंट नो हाउ टू फिगर इट आउट, बट हाँ बेटर तो होना चाहिए। यू नो, आई एग्री विद ध्रुव ऑन दिस कि ये चीज़ गलत है, पहले हुआ था वो भी गलत था, अभी भी गलत है, लेकिन ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। बट ही इज़ ऑल्सो नॉट सेइंग कि जो अभी हो रहा है यू नो, क्योंकि एवरी टाइम he starts with agreeing with Dhruv but ends with disagreeing with him. That's how he summarizes his points. Because I think this guy probably is on the right. He probably likes BJP. So he doesn't want to say many bad things. भाई उसने कहा कि सिर्फ BJP ही ने किया है, ध्रुव ने नहीं यार, I don't think so. I don't think so ध्रुव ने वो चीज़ कही। Hold on. अच्छा ठीक है, अगर उसने कहा तो ठीक है, आई एग्री, श्योर। हाँ भाई चीते कैसा है? बढ़िया भाई टाइगर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा हो। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने देख लो, राइट, इफ यू वांट टू नो। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट में नवीन चावला सेक्रेटरी थे। तो जब नवीन चावला 60 साल के हो जाते तो वो एज अ सेक्रेटरी रिटायर हो जाते। रिटायर चोरी किया गया था ना कि असली यूनिट। तो ध्रुव राठी सही फैक्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो पूरा फैक्ट नहीं दिखा रहे, और इसे कहा जाता है ओमिशन, जिसमें एक व्यक्ति अपने हिसाब से फैक्ट का सिर्फ कुछ ही पार्ट दिखाता है, और इसे कुछ लोग सिलेक्टिव डिस्क्लोजर दिखाते हैं। खैर चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। ये एक्यूजेशन बहुत पुराना है, सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया। लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शन का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी है कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चैट भी इग्नोर करे। अरे एक सेकंड, देखो इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पॉइंट टू बी नोटेड। विच वन साहित्य, विच वन? भाई कैसे हो? बढ़िया भाई सुभाष, आप कैसे हो? कौन सा वाला पॉइंट साहित्य? अगर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई। एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस में। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? यहाँ पे भी इसने एक भी बार नहीं कहा, ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, उसने भी बार नहीं कहा। ऑलराइट, विद द चैट, भाई कैसे हो? पॉइंट टू बी नोटेड। हेलो भाई। पहली बात तो वो मोदी जी थे, वो एडिटेड थे, आप देख सकते हो क्या? समझा नहीं मैं भाई। नहीं तो जनरेशन, बट यार गाइस कम ऑन, अगर हम ये सारी बातें करने वाले ना तो वी हैव टू डू इट फेयरली, ये वीडियो एक्सटेंडेड है। एनीवेज, बट अभी मैं इसकी वीडियो देख रहा हूँ, ये वीडियो देख रहा हूँ, राइट? तो मैं इसकी वीडियो को क्रिटिसाइज करूँगा।
कट रहा है जीवन और मेरा भी। भाई जो पहले नहीं हुआ उसका एग्जांपल दूं, never ever have Supreme Court judges come out in public and said कि there is an interference in judiciary, never happened before, only in BJP government. सेम टेक्निक यूज की जा रही है यहाँ पे भी ध्रुव राठी जी सिलेक्टिव डिस्क्लोजर कर रहा है। एनीवेज ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जो भी सेंट्रल लेकिन हाँ ये आई थिंक वही इवन ही इज डूइंग द सेम थिंग बेसिकली। देखो भाई ऑलराइट आई विल गेट टू इट लेटर ऑन, पहले देख लेता हूं कि उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली। किसी व्यक्ति को अनफिट बताया जाता है और तुरंत उनके ऑफिस में डिसमिस करने की बात कही जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा हेडेड कमीशन की रिपोर्ट में। फिर भी उस व्यक्ति को सोनिया गांधी आगे चलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने में कामयाब हो जाती है। और इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सेंटर में होती है उसका इन्फ्लुएंस हर एक सेंट्रल एजेंसी पे होता ही होता है, फिर वो चाहे कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, लेकिन इन्फ्लुएंस होता ही होता है। पर ध्रुव राठी आपको सिर्फ आधे फैक्ट बताएंगे, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। इस पॉइंट का आउटकम यही निकला, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यार तुम्हारी एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि अगर मान ले मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मान ले मैं वीडियो बना रहा हूँ एक बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता हुआ, तो मैं उस टाइम पे बीजेपी को ही क्रिटिसाइज़ करूँगा, चाहे पहले वो चीज़ कांग्रेस ने करी हो, आपने करी हो, सबने करी हो। और अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो उस टाइम पे मैं कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज़ करूँगा। यू नो देयर आर ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो भी इस भाई ने इंजीनियर एक्सपीरियंस ने बोली, दे डोंट मेक व्हाट ध्रुव राठी सेड अनट्रू। समझ रहे हैं? क्योंकि हाँ तुम सेलेक्टिव फैक्ट्स तो दिखा रहे हो, बट तुम्हें सेलेक्टिव फैक्ट्स ही दिखाने पड़ेंगे ना, बिकॉज योर वीडियो इज अबाउट सर्टन थिंग्स। राइट विंग वाले ध्रुव के नाम 100 बार लेंगे वीडियो में। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर वीडियो बनाने से याद आया स्क्रिप्ट बनानी थी वीडियो की। ट्रू, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमेटी में। तो 3 मेंबर की कमेटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। ध्रुव राठी जी का कहना है कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है और इसलिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल रहे हैं उन 3 मेंबर्स की कमेटी में से जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज है, सिलेक्टिव डिस्क्लोजर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक रूलिंग गवर्नमेंट एक बिल पास नहीं कर लेती है अपॉइंट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तब तक जो 3 मेंबर्स होंगे जो कि अपॉइंट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसमें से एक सीजीआई भी होंगे। और ध्रुव राठी जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बिल लाया जिसमें उन्होंने सीजीआई को ही रिमूव कर दिया। यहाँ पे तो बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की बात ही मानी है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैसा बीजेपी ने किया। ये जो ट्वीट है इसको ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे जैसे आप रीड मोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सीजीआई थे वो टेंपरेरी बेसिस पे थे जब तक कि बिल नहीं आ जाता है। भाई साहब इससे ज्यादा मैनिपुलेशन और क्या होगा? इससे ज्यादा मैनिपुलेशन आपके आंखों। हाँ ये मैंने भी देखा है ना, आई एग्री विद दैट। एक बार श्याम शर्मा भी देखियो यार। तो मुझे रिक्रूट कर रहा है राइट विंग में। वीडियो बनाने से याद आया, हाँ कहता है लोगों को लगता है अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो लेफ्ट विंग वाले तो अपने चैनल ही बंद कर देंगे क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं क्रिटिसाइज़ करने को। लॉल नीरज ब्रो तुम 10 एडिटर हायर करके कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हो? 10 एडिटर कॉस्ट 2-3 लाख पर मंथ एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पे पीनट एंड यू विल ऑल्सो नॉट गेट स्पॉन्सर। इट काइंड लाइक रिएक्शन चैनल एंड इट will cost you 25 to 36 lakhs a year. Then how it's good? Do you understand how long-term investment works? If you're talking about stock market, you definitely understand how long-term things work. If I hire 10 fucking editors, do you really think I cannot make profit out of it? Dude, I'm already working in this industry. I'm already working in this industry. I've been shooting for people. I've been editing for people. Do you think I don't know how I can make profit out of hiring other people who can do what I do? What are you talking about? Do you not understand how investment for long term works? इन शॉर्ट यूट्यूब एंड रील वीडियो देख के ओपिनियन मत बनाओ, क्या रियल है क्या झूठ। दैट्स वाई आई लाइक थिंक स्कूल, ही प्रोवाइड्स फुल सोर्सेज इन हिज वीडियोज एंड फॉर योर ओन रिसर्च। ट्रू ट्रू क्या बीसी बनाओ, नहीं तो इधर लोग बेफालतू की डिबेट करेंगे पॉइंटलेस लाइक श्याम शर्मा देखो या टट्टी देखो एक ही बात है। अरे श्याम शर्मा विल मेक यू रिपेल द राइट नॉट रिक्रूट। लॉल श्रुति सिंह यू आर जनरेशनली गरीब ऑलराइट नॉट इफ यू आर डम एस जाफरी। भाई मेरे को तो तू ही बोलता है कि घर वालों के पैसे पर जी रहा हूँ, तो वो द फक जस्ट एक बात पर रह गरीब आदमी। ऑलराइट
अरे अब वो देखते हैं के सामने और कौन कर सकता है? सामने आपके ट्वीट पड़ा हुआ है, आधा जो रीड मोड के ऊपर तक का जो लाइन था वो ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो में बता दिया। रीड मोड क्लिक करने के बाद जो डिटेल आया उसके बारे में ध्रुव राठी जी ने कुछ बताया ही नहीं। यही सेम चीज ऑपोजिशन ने भी कहा था, सेम इसी तरीके से ऊपर का सिर्फ फैक्ट ऑपोजिशन ने भी फैलाया था। और अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स निकाले हैं ध्रुव राठी जी के, उन सभी पॉइंट्स को ऑपोजिशन ने भी उठाया था। ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में। ऑपोजिशन का काम ही होता है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसकी खामियों को निकालना, उसकी गलतियों को लोगों के सामने लाना, लेकिन इस तरीके से नहीं कि But these investments are unpredictable. So is the stock market. फैक्ट को आधा काट कर दिखाया जाए या फिर सिलेक्टिव डिस्क्लोजर किया जाए, वरना फिर ये देश के लोगों के खिलाफ ही चला जाता है। हमारे देश को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है ताकि पावर का मिसयूज ना हो। लेकिन अगर ऑपोजिशन अपना काम भूल चुका है तो हमें उन्हें उनका काम याद दिलाना पड़ेगा। ध्रुव राठी ने इस वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने के लिए एक फिल्म डायरेक्टर को हायर किया जिसका नाम है विजेता दहिया, और ये जो फिल्म डायरेक्टर है इन्होंने ही ध्रुव राठी के इस पूरे स्क्रिप्ट को लिखा है। और इसीलिए यह जो ध्रुव राठी का वीडियो है ये आपको थोड़ा अलग फील हो रहा होगा ध्रुव राठी के बाकी के वीडियो से। इस वीडियो में आपने भी गौर किया होगा कि सिनेमैटिक डायलॉग्स हैं, अलग अलग तरीके से साउंड इफेक्ट्स हैं, म्यूजिक है, अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स हैं जो कि ऐसा फील करवाते हैं कि ये कोई फिल्म है। और इस चीज के बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नो मुझे ऐसा नहीं लगा, तो मैं ध्रुव राठी का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैंने ऐसे सारी वीडियोस नहीं देखी। बट आई थिंक ध्रुव राठी की सारी वीडियोस वेल रिटन होती हैं, वेल एडिटेड होती हैं और साउंड इफेक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं। आई डिडंट फील दैट एट ऑल। देन यू डोंट नो श्याम जॉफरी। यार पर्सनली आई सीन शाम्स कंटेंट, मुझे उसके कंटेंट, शाम के कंटेंट में पता क्या इशू है कि बहुत ज़्यादा जोक्स होते हैं बीच में जो कि मुझे फनी नहीं लगते। लाइक आई डोंट माइंड दिस कंटेंट एट ऑल। इंजीनियर एक्सपीरियंस यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार-बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे पूछकर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांककर देखता नहीं हूं, लेकिन आप खुद ही सोच लो रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे। ऑब्वियसली बीजेपी एमएलए खरीदता है, सारे पार्टीज एक दूसरे पार्टी के एमएलए को खरीदते हैं। जिस पार्टी के पॉलिटिशियन को जहां पे फायदा नजर आता है वो वहां पे उधर जाता है। इस एमएलए खरीदने वाली बात को आप डिटेल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आपने ना कोई प्रूफ दिया ना कोई फैक्ट दिखा। आपने जिस पार्टी के पॉलिटिशियन को जहां पे फायदा नजर आता है वो वहां पे उधर जाता है। इस एमएलए खरीदने वाली बात को आप डिटेल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आपने ना कोई प्रूफ दिया ना कोई फैक्ट दिखा, आपने सिर्फ एक्यूजेशंस दिखा। एक्यूजेशंस को प्रूफ या फिर फैक्ट बोलना बंद कीजिए। वो आपको अक्यूज को कन्विक्टेड बताकर फैक्ट पेश कर रहा है और फिर भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सच क्या है। यही होता है ब्रेन वॉश। आपके सामने सच है पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। देखिए यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो ध्रुव राठी अपने व्यूअर्स को ब्रेन वॉश मान रहे हैं और इसलिए उन्हें एक्यूजेशन को फैक्ट बता रहे हैं, या तो ध्रुव राठी का भी खुद ढंग से स्कूल नहीं है जिन्हें ये पता हो कि अक्यूज और कन्विक्टेड में डिफरेंस क्या होता है। ध्रुव राठी के जितने व्यूअर्स उनको उनसे पूछना चाहिए कि वो एक्यूजेशंस को एज अ फैक्ट या फिर प्रूफ बताकर क्यों दिखा रहे हैं। आपकी पार्टी जिसके लिए आप काम करते हो आम आदमी पार्टी, उसने भी तो ये एक्यूजेशंस लगाए थे कि बीजेपी उनके एमएलए को खरीदना चाहती है, पर जब इस बात को प्रूफ करने की बात आई तो आम आदमी पार्टी वहां से पीछे हट गई। आम आदमी पार्टी ऐसे एक्यूजेशंस क्यों लगाती है, आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों करती है, इसका जवाब आपको मैं नहीं दूंगा। इसका जवाब आपको वो लोग देंगे जो कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ शुरुआत से काम कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी यहां से बनकर निकला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से, तो उनके जो कोर मेंबर्स हैं उनसे आप खुद सुनिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। मुझे 5 बजे फ़ोन आ गया दिल्ली से, किस शख्स का आया अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे फ़ोन आया कि आप वापस तुरंत आएँ और अपनी पूरी टीम के साथ 5-7 लोग जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको आप साथ लेकर आइए। 5 लोगों को हम गाड़ी में बैठे 4 बजे करनाल पहुँचते हैं, जीत के अगले दिन की बात है ये। वापस 5 बजे हम आ जाते हैं, हम बॉर्डर पर रुकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमें 5 बजे चल 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुँचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर। कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने, 7-7:30 का वक्त था। हमें एक शख्स मिला, उसने हमें 2 सिम कार्ड दिए, बताया गया कि फ़ोन में डाल दीजिए। हमने डाल दिया और हमें फ़ोन आया भी आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे। हमने उस नंबर से फ़ोन घुमाने शुरू किए और हमें जो बताया गया था हमने 7 रुपये कहना शुरू किया। नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो, अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मजे का वाक़या देखिए, जहाँ हम चाय कॉफ़ी पी रहे हैं सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है, तो सामने क्या आता है जो हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के अरविंद केजरीवाल टीवी पे, अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मेरे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी वाले फ़ोन कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और 35 लाख रुपए देने की ऑफर कर रहे हैं। तो पहली बार माथा ठनका, ये तो हम हमसे करवा रहे हैं और उधर टीवी पे साफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मतलब उस बार पहली बार एहसास हुआ था कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है, इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। Okay, I don't think there was much for me to say in that. Just why do you write your own name? Why then you're not doing this? What is stopping you from doing this? Nilesh bro, dude, if you listen to what I say, I think the answer is evident. ध्रुव भाई क्यों किसी की साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ऊपर लगवा रहे हो? सच में आई नो हिम, उसका सब रेडिट उड़ाया था रेडिट ने क्योंकि उसके सब रेडिट पे मुस्लिम के खिलाफ वायलेंस की बातें होती थी एंड इसको फंड्स रोक रहे हैं। शाम का चैनल फॉर पॉलिटिक्स इक्विवेलेंट टू संदीप का चैनल फॉर फिलोसफी। अरे भाई रेफरी भी गलत नहीं होता है। Those who are in the center are most clever, diplomatic and harami people mostly. मुकुल ट्रांस पीपल। जॉफरी भैया ये बंदा भी गलत है बोल दे। अरे साहित्य, यू नीड टू आर्ग्यू द पॉइंट यार, यू नीड टू आर्ग्यू द पॉइंट, यू नॉट आर्ग्यूइंग द पॉइंट। जस्ट भाई इट्स ऑल फन एंड बैंटर। जॉफरी की कम्युनिटी को ऐसे मत बोल। जॉफरी द व्हाट इज योर सिस्टर, व्हाट इज योर सिस्टर इज व्हाट यू मीन? नीलेश भाई मेरा भी मैसेज पढ़ लो भाई, एक एक करके पढ़ रहा हूँ सारे। जस्ट डोज कम ऑन मैन, यू कम ऑन। जस्ट डोज एक बजने वाला है, टाइम आउट, गो ऑल आउट।
जस्ट डोज अरे ये घर वालों पे तो सॉरी अरे चिल मोस्ट करप्टेड लायर्स एंड लॉट्स वर्ड नॉट कमिंग फ्रॉम माई माइंड इज आप अपनी बातों से मुकर जाते हैं। यार वो तो हर कोई करता है साहित्य मेरे भाई, कौन सा पॉलिटिशियन नहीं करता। मैं तुम्हें वही तो बता रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस पॉलिटिशियंस आर द सेम, दे आर नॉट द सेम, बट दे डोंट गिव अ शिट अबाउट अस, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट मी। लेकिन अगर आई डोंट थिंक एक पार्टी की तरफ लॉयल्टी होनी चाहिए। यू हैव सर्टेन आइडियाज, यू हैव सर्टेन फिलोसफी, उसकी तरफ लॉयल्टी होना ठीक है। जस्ट आई एम एंगेजिंग विद यू, इफ़ यू राइट एनीथिंग अबाउट माई फैमिली तो फ़ोन नंबर देने का गुदा भी रखना। हाँ जस्ट डोज अपना नाम क्यों टाइप कर रहा है। जस्ट रीड्स ऑफ द शुभदीप सिंह पैसेज एंड नॉट टेलिंग मी दैट कर व्हाट हैप्पी मैसेज। जब भाई आपकी मर्ज़ी, आगे मैं जा रहा हूँ, फ़ोन की बैटरी कम है, बाय। चलो भाई टेक केयर साहित्य। हाउ मेनी कॉइन्स विल फिट इनसाइड वन कॉन्डम? टेल नीलेश। Depends on the size of the condom. You know, you can get different size condoms, but like 39. भगवान तेरे फोन की बैटरी में पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने। ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है अचानक से। Is that correct what he's writing? Yes, मेरे भाई, you're asking about someone's family. अगर if I can, you know, if I say to Shubdeep के यार ऐसा मत लिख, then I need a confirmation from you. The moment I tell you to you know stop writing this, you stop writing that. I don't even believe in that. भाई लिखना है जिसको जो लिखो, लेकिन जिस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा मैं भी तो बोलूँगा ना वो चीज़। चल शुभदीप चल यार, किसी घर जा रहा है। एंड हाँ, शुभदीप इज नॉट नेसेसरीली सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। इफ ही एक्चुअली डज समथिंग लाइक दैट, हाँ, देन आई थिंक दैट वुड बी रॉन्ग। यार बातों का जवाब बातों से होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड यू आर ऑल्सो टॉकिंग, यू आर ऑल्सो राइटिंग, ही इज़ ऑल्सो राइटिंग। ये चैट एक दूसरे की मारती रहती है, वीडियोज़ में किसी को इंटरेस्ट नहीं नीलेश, ट्रू है। और मैं यार आई एम ट्राइंग टू बी फेयर, आई एम ट्राइंग टू यू नो, वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। कन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियन को जेल भेजा जा रहा है। ऑब्वियसली बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज को यूज करती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है वो सेंट्रल एजेंसीज को यूज करती है, और ये कोई भी नई बात नहीं है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब सेंट्रल एजेंसीज को कांग्रेस भी यूज किया करती थी। सीबीआई ने अमित शाह को साबुद्दीन केस में अरेस्ट किया था और वो जेल भी गए थे। और आप जो कह रहे हैं ना कि बिना कन्विक्ट प्रूफ उनको जेल भेजा जा रहा है, तो अमित शाह भी जेल गए थे बिना कन्विक्टेड प्रूफ हुए। और उसमें बीजेपी वालों का भी सेम कहना था कि कांग्रेस पार्टी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज कर रही है और हम लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। 2012 में कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल मायावती और मुलायम सिंह यादव के ऊपर किया था। यहाँ तक कि 2009 में बोफोर्स स्कैम में इटालियन मिडिलमैन को सीबीआई ने क्लीन चिट दिया था। इसके ऊपर जब उस टाइम के ऑपोजिशन लीडर ने सवाल खड़े किए तो राहुल गांधी का कहना था कि ये डेड केस है और सीबीआई को तो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है जब वो पावर में रहते हैं। और ये शब्द खुद राहुल गांधी जी के मुख से आए हुए हैं। रियलिटी है कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब अपोजिशन में होती है तब वो कहते हैं कि हम जब पावर में आएंगे तो ये जो सेंट्रल एजेंसीज है सीबीआई, ईडी, इनको हम ऑटोनोमस कर देंगे। लेकिन जैसे ही वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है वो उन सेंट्रल एजेंसीज का ही करती है। कांग्रेस पार्टी जब पावर में थी, अगर उन्होंने उस समय सेंट्रल एजेंसीज को ऑटोनमस कर दिया होता तो आज ये हंगामा उनको करना ही नहीं पड़ता। तो अभी जब बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है लेकिन वो ऑटोनमस नहीं कर रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज को, तो अगली बार जब बीजेपी ऑपोजिशन में बैठेगी तो उनका कोई हक नहीं बनता ये बोलने का कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो सेंट्रल एजेंसीज का मिस। फेयर इनफ। आई थिंक हर बात पे इसका पॉइंट ये है कि भैया कुछ अलग चीज़ नहीं हो रहा। जो पहले भी पार्टीज थी उन्होंने भी ऐसे कंट्रोल करी थी चीज़ें, जो अब की हैं वो भी चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं, एक्सेप्ट फॉर दी वो क्या कहते हैं ईवीएम मशीन वाले पॉइंट से। आई थिंक इफ दैट्स हिज पॉइंट देन ही इज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग द्रविड़ इन द सेंस कि भैया हम कोई अलग सी गवर्नमेंट में नहीं आ गए हैं। अगर पहले वाली डेमोक्रेसी थी तो ये भी डेमोक्रेसी, अगर पहले वाली डिक्टेटरशिप थी तो ये भी डिक्टेटरशिप है, बट ही इज़ नॉट मेंशनिंग इट क्लियरली। साहित्य गया, अब ये वीडियो बंद कर दो। वीडियो में भी तो किसी की मार ही रहे हैं, ट्रू। क्यों माहौल गर्म है? मलिका हिंद आप नहीं थे ना यहाँ, अब ठंड हो रहा है। मलिका मैं भी हो गया इतनी गर्मी में हैं। MB फक ऑफ, समझा नहीं। ही इज राइटिंग अबाउट माई मदर, आई विल लीव हिम। हु इज राइटिंग अबाउट योर मदर? नीलेश भाई आजकल बहुत बोरिंग वीडियो लंबी चलाता है तू। यार वी आर डिस्कसिंग समथिंग ना मुकुल। डेंगू हो गया मुकुल को, अरे नॉट शी इज will not leave him. Actually, you will not leave him. Okay. But you're also talking about someone's... एक second, just hold on. No. Hold on. What are you talking about? The moment you came on, Shubdeep ने कुछ लिखा and you wrote Shubdeep Mitra Babu. So don't.
डोंट डू दैट. अरे बेस्ती मार दी, मलिका हिंद की कोल्ड बोल दी. ऑलराइट. वाह. भी तेरे दिमाग के ऊपर है, फिल इन द ब्लैंक्स. ऑलराइट. ठीक है. Sahit is not here, there's no point. मतलब तुम लोग तो already, I guess, don't like the guy, so what difference does it make? भाई RCB फाइनल व्हाट से, इन फाइनल व्हाट से. अरे देखते हैं, लेट्स सी. मुझे बड़ा मजा आता है जो RCB के फैंस होते हैं ना, वो इस बार जीतेंगे, and they're like, ah shit, here we go again. India, I never expected this. Who is this? Just you need counseling. Mahak Mangal explained Aurangzeb. जय भीम, जय हिंद. यार मुझे खाना ऑर्डर करना था बड़ी देर से. Just you need alright. I'm hungry as fuck right now. नीलेश, अब मेरी तरफ से कोई टेक्स्ट नहीं होगा किसी के अगेंस्ट जब तक फैमिली इंक्लूड नहीं होती है. Fuck off. भाई ए साला कप नेम. Shubdeep Singh, he's writing about Madurai will come Sonipat, will see their G में कितना दम है, and I never said anything about his mom. Dude, the moment you came in, Jess, dude, why are you making it up? Hold on, I'll look it up actually. हाँ ये बात हुई थी, in their village they can't control, and then you talked about this is the latest news. उसके बाद gentlemen one quarter suicide because of this. ठीक है. then शुभदीप सुन एक चेस वाला भी कर लेगा इंस्टिगेट होकर. ठीक है, ये बात करी शुभदीप ने. एंड जफरी गॉट योर बैक ब्रदर. एंड देन लेट्स ब्रो इट्स देन यू सेड इट्स नेटेड यूज. मैं उसको बोल रहा हूँ शुभदीप सिंह मैं तेरा बाप हूँ. सो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू स्टार्टेड दिस चेस. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? डोंट लाई मैन. You started this. उसने तो बोला you are the one who went on the family first. Jess is messing up the chat. Sudeep is writing one mama. बिंद्रा फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी 16 मार्च. अबे मैंने बोला किसी को गलती नहीं, किसी को गाली नहीं दूंगा. अच्छा ठीक है. रिलेशन इज पर्सनल बिग बॉस. शुद्ध सिंह तेरा बच्चा किडनैप कर लिया, क्या कर लेगा? जस्ट जोज में एक ही बात सही है, वो अकेला सबसे लड़ता है, बाकी कुछ सही नहीं है. जस्ट इज मिसिंग अप द चैट. बच्चा डोनेट. अच्छा शुभदीप, नाउ गॉट इट. शुभदीप के बच्चे फ्लैश में फ्लश आ रहे. See his message also. You are becoming partial to him. I am not becoming partial to him. उसने बोला था, उसने तुझे बोला. I already said it. उसने जो तुझे बोला I already saw it and I even said it. But you are the first one who started talking about family. So don't say that he's talking about my mother now. You started that. He started talking about you. You can say whatever you want back to him. Now I don't even care. You can write whatever you want, right? But don't tell me, okay, look, he's talking about my family. You are the one who started talking about people's family, man. चेस भाई तू आजा सोनीपत, अकेला नहीं है चेस डोज, मैं हूँ अपने डैडी के साथ. ऑलराइट. सो डोंट लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग. एंड मेरे मदर की भी बोला था. देख देंगे क्या पर है. वैसे तो यू नो. Wait, hold on. Was I wrong? Was I wrong? ऐसा ही तो तेरे को stopping rape करता है. कहाँ पर था? Latest news. I got your back, brother. हाँ देंगे. मुझे मार दूँगा. हाँ तो bro, even यहाँ पर भी like he's talking about you. He's not talking about your family, man. ऐसा नीचे सारा भी. हाँ, you started talking about family. So at least don't come with a victim card about this. passion होता है. What are you? Don't join. अरे सब मुझे गाली दे दो, आपसी में मत लड़ो. मैंने
बाद में बोला था. I know. Alright. Saw it. He said, I will fuck your mother. I never said that to him. तेरे जीवन तो मैं तेरा नंबर सेंड कर दे. What are you talking about, man? थोड़ी हो गई चार्जिंग. अब तो हटा दी भाई वीडियो. अब हटा दी. 1 week too excited. क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है यार. फालतू की चीज़ें चल रही हैं. Nothing really of interesting. कोई इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर देखते हैं ना. Arguments for God's existence. अर्पित पाला. अरे I pretended to be a girl in public at night. भाई साहब हद्दी है इन लोगों की भी. ये तो गाड़ी में भूत बैठी है. ब्रो राठी देख ले. यार राठी की भी देख लियो वीडियो. इवन उसके टाइटल में भी है, इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप. क्वेश्चन लाइक तो बोला ही नहीं मैंने. ब्रो राठी देख ले. इंडिया अनट्रैवल्ड सर्च करो. देखता हूँ चैनल इंडिया अनट्रैवल्ड. The untraveled forgotten border village. नरेश बेकेल की जान के मेरा ही कमेंट स्किप करता है. नोटिस कर रहा हूँ कई दिनों से. चुप रहे तू. 1v2 एक्साइटेड भी पड़ा था मैंने. हर बात पे ये 1v1 आ जाते हैं. बॉक्सिंग करना है तो क्या इनको भी अपने लेवल पे भाई. आपने इस बार कुलचा तो खाया लेकिन मट्ठी कुलचा. चाट भी खाई लेकिन आम पापड़ चाट. बॉर्डर भी गया लेकिन हुसैनी वाला बॉर्डर. और होमस्टे में भी रहा लेकिन खेतों के बीचों बीच. तो अगर इस बार आप मेरे साथ पंजाब के कुछ अलग जायके चखने और एक टिपिकल अमृतसर आइटनरी को साइड में रख. Send me your address and number and just see what will happen to you, Shubdeep. What are you talking about, Shubdeep? What? Oh, sorry, Shubdeep. Just what the fuck are you talking about, man? इससे ऊपर वाले नहीं बोले. ओके ये नहीं कोई और है पर ये भी सही है. ऑलराइट. इससे मुझको क्या नहीं पड़ा. पार्शल होता है. हाँ ये पढ़ा था मैंने सब. लेकिन मैं भैया वहाँ लड़ाई कर को आ रहा हूँ. रखने के लिए तैयार है तो चलते हैं फिर. पंजाब जहाँ का हार्ट और सोल बसता है यहाँ के खेतों में. और खेतों की बात करते ही सीधा जहन में आते हैं वो हरे भरे गन्ने, लहलहाती पीली सरसों और वेरांडों में बिछी हुई मंजियां. बस इन्हीं सब की चाह और यहाँ की मिट्टी की खुशबू मुझे फिर से खींच लाई पंजाब की रस्टिक कंट्री साइड में. If you're someone who has always craved the experience of village life and wants to get a peek into the idea of self-sustainability, you must visit rural Punjab. और अगर गांव में आ ही रहे हैं तो एक फार्म स्टे में रहना किसी भी होटल, रिजॉर्ट या गेस्ट हाउस से बेटर एक्सपीरियंस रहेगा. अमृतसर से 1.5 घंटा दूर. शिवदीप चल मार मेरे भाई. मुझे लग रहा है जैसे स्टोर कर रहा है सबको चुकी बना रहा है हमारा. अरे I feel like my soul is from Pakistan. What should I do? अच्छी बात है. गांव में है one of my favorite farm stays that offers traditional mud houses amidst lush green fields and promises a secluded countryside experience but with the comfort of modern luxury. The beauty of this farm stay is the fact that there are only 4 cottages, so there can never be too many people to disturb the peace and quiet of your stay here. कुछ इंटरेस्टिंग है क्या? I want to see something else. अरे आई एम चल. फिर ठीक है. फिर एड्रेस मत भेजा कर हर किसी को. 10वां ऐसा. I will beat Jake Paul. जेक पॉल माइक टाइसन से लड़ रहा है. जेक पॉल तो मेरा पंजा नहीं मार सकता. ये को नहीं तो अपना एटीट्यूड है. भाई अपने अंदर रहेगा. गुड फॉर दिस गाय मैन. गुड फॉर दिस गाय. लिटरली फ्लाइट में गए पोर्टो रिको पहुंच गए. जेक पॉल के सामने उससे भिड़ गए जाके. ओए जेक पॉल. और जो सेरानो बॉक्सर है कौन सी है? अमेंडा सेरानो. आपको रिस्पेक्ट करता हूं. चेक में छोड़ो. फेस ऑफ करना ना बहुत चीज हमने रियलाइज हो जाएंगी सामने वाले की. अगला क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है. एक दूसरे की वो क्या करना है जी में वाइब्स मुझे सारी पता लगी. तो जब मेरे सामने था ना मेरे को लग रहा था कि वो डर रहा है मेरे से. और आपको लगता है कि माइक टाइसन जेक पॉल को हरा देगा? देखो भाई माइक टाइसन बॉक्सिंग छोड़ के बेचारे ने बहुत सारे दिन हो गए. माइक टाइसन की स्किल ना कोई बीट नहीं कर सकता. लेकिन अब दोनों की फाइट है भाई. जेक पॉल भी अपना फेक. मैं अकेला इंडियन हूं जो 12 राउंड तक की फाइटें खेला है. मुश्किल है 12 राउंड तक झेलना. यार 12 राउंड का मतलब पौना घंटा आपको खड़े रहना और पिटना है. ऑलराइट ठीक है. ऐसा लग रहा था मैंने रस्टी के घर जा रहा है. शादी मैं आ जाऊंगी चोरी करने. अरे अरे क्या बात चल रही है. अच्छा ओके.
भाई आई फील लाइक माई सोल इज रॉन्ग दैट. अरे आई एम चिल. शिवदीप भाई बस रजवीर तेरे घर रखी. लव जिहाद. अरे दीपक वगैरह किधर हैं आज? घर पे होंगे यार होपफुली. शिवदीप में आ जाएंगे चोरी करने. वेलकम. घर आकर पूछ लेना अलमीरा किधर है. अरे श्याम शर्मा. सो तेरा अपना हनुमानी घर है. इट्स गुड. थैंक यू फॉर योर लोकेशन. What is this? ये क्या है? How to resolve a conflict in 5 seconds. Dude, how do you have 16 fucking views? Gotcha, Nilesh. You have a fucking description. Gotcha, Nilesh. How do you have 16 views on it? I like the video, man. 16 लोगों ने देखे, like नहीं करे, कोई बात है? Dude. अच्छा ये वही वाली ना उस दिन भी. हाय. लड़ाई रुकवा दी बताओ. एंड डिस्कॉर्ड पर टेक्स्ट कर दियो. मोस्ट वेलकम ब्रदर. डिस्कॉर्ड पर टेक्स्ट कर दियो. नंबर सेंड. I have more than 10 million views on my channel. All right, man. I don't know why people use it to recruit others. All right. भाई प्रखर ने का हाइप किया था विनम्र पॉडकास्ट लॉन्च से पहले अबाउट हिज कॉन्वर्सेशन स्किल्स. बेस्ट बंदा एवर एटसेट्रा एटसेट्रा. मुझे तो ठीक लगा. हाँ मतलब मैंने ज़रा देखा नहीं. आई एम श्योर देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. शुद्धि 24 नीलेश के ग्रुप में ही है. अरे विनम्र बहुत चूतिया लगता है कसम से. क्यों? Like why do you not like Vinamra? Is there anyone else who doesn't like him? Well, I doubt. I don't think Vinamra has many controversial takes, right? So why would you hate him? Because he doesn't have controversial takes. यार मैं ना कुछ खाने का ऑर्डर करना है. बहुत भूख लग रही है मुझे. Hold on. विनम्र चूतिया है मुझे भी नहीं पसंद. क्यों भाई? लेकिन कोई कारण तो होगा. ओ भाई मुझे एक बात बताओ. ये क्या पागल है? ये जोमेटो है. ये जोमेटो ने ये हो भाई साहब ये देखो. जोमेटो ने ये फीचर डाला है 3 feet away from a टेबल टॉप. जोमेटो ने ये फीचर डाला है व्यू इन VR के. मतलब मैं पिज़्ज़ा मंगवाना है तो मुझे यहाँ घर में बड़ा दिख जाएगा पिज़्ज़ा अपना टेबल पे. ये क्या है? बकचोदी है. अगर तुम्हें पता नहीं ना पिज़्ज़ा कैसा दिखेगा तुम्हारे टेबल पे तो ये करो जो सोच. भाई साहब क्या आप है. मतलब टेक्नोलॉजी आ रही है तो मार लो डाल लो. चले ना चले वो कोई बात नहीं. फ़र्क नहीं पड़ता. अरे भैया क्या हाल है ऋषिराज? Because he tries to silence critiques on Twitter. Okay. हाँ, that's a good reason. That's a good reason not to like someone. That's a good reason. But एक सिंह जॉफरी तुझे तो सही लगा ना? तूने कहा था बेस्ट बंदा. मुझे तो ठीक लगा. अरे ठीक लगा. You mean कि he's okay. Hind is my gang. All right. Now no बकचोदी with chess. अब तेरे को कोई engagement नहीं मिलेगा मेरी तरफ से YD chat में. कोई दिक्कत हो तो Discord पर मैसेज कर दियो. All right. Remember me. What did we talk about, Rishiraj? All right, let me order the fucking pizza, guys. पहले मैं देख तो लूँ मेरे कमरे में दिखेगा कैसा. How stupid is that? शो ऑफ भी तो करना है पॉडकास्ट पे. वी द फर्स्ट बोल के. यार वही वाली बात है ना. जो दिखता है वो बिकता है. मेरे उम्र में I don't remember any of you. मैं भूल चुका हूँ सब कुछ. All videos you did with Daksh and Love भैया. हमारी बात हुई है कभी ऋषिराज? अमन क्या हाल चाल मेरे भाई? अरे अमन अच्छा शिट मैंने वो नहीं करा स्क्रीन. Alright. अरे अमन तेरी वजह से एक वीडियो नहीं देख रहे हो. ओ भाई सब सही में. ओ तेरी ट्रू.
अपना घर सेल कर रहे थे और राइट भैया मैं आपकी स्ट्रीम पे आता था रिमेंबर कैन नॉट स्ट्रीम पे हुई थी 2 दिन पहले ऑलराइट वो एलिशा वाले टाइम के आसपास हुई थी क्या? अरे जॉफरी इतनी एलिजिबल भी नहीं हूँ. हाँ इस माई गैंग एलिजिबल भी नहीं हूँ. राइट कौन सी वीडियो नहीं देखी रहे जॉफरी? अभी देखते हैं यार, अभी देखते हैं ये क्या सीन है. बहुत बढ़िया भाई. बस पीरियड स्पेन में हम सिमुलेटर वाले यार मुझे 2 मिनट दो, मुझे बस ऑर्डर करने दो यार जो ऑर्डर करना है. मेरा दिमाग ख़राब हो गया. घनी देर आएगी. Fucking hell. भाई इसमें वो क्यों नहीं आ रहा? Like I don't see the option for cheese burst. ये तुम्हारा ज़ोमैटो ख़राब हो रखा है. Domino's. अरे पहले यार ये बताओ मेरी वजह से क्यों? अरे क्योंकि जॉफरी ने लिख के भेजा था कि जब अमन आएगा तब देखना वो वीडियो. ये है ना अमन भाई होंगे तब देखना ये टॉपिक डिस्कस करेंगे. ह्यूमंस नीड नॉट अप्लाई. ओके गुड नाइट टेक केयर एवरीवन. नीलेश जॉफरी मुकुल एंड नीलेश गुड नाइट विवेक टेक केयर मैन. मलिका लड़की है क्या? फेलू गुड नाइट विवेक ब्रदर. अरे पहले ये बताओ मेरी वजह से क्यों? अमन इज रिलेटेड to the scene of jobs due to advancement in AI. अपने को तो बाय करते हुए लड़की लड़का all is a spectrum. Good night. I'm glad to see that you bounced back today after so long. Oh हाँ चलो 1 मिनट दो मुझे बस ये ऑर्डर करना है. Let me order the fucking thing. Okay, hold on guys, hold on. Almost done. भाई साहब मुझे ड्रिंक नहीं मिल रही यार. Beverages right here. हो जा. All right, done. मुकुल का कॉमन क्वेश्चन है. Good night bro, glad to see that you bounced back today. All right, with motivation is good night. Oh मुकुल का कॉमन क्वेश्चन है. डबल चीज मार्गरेटा एंड 1 अल्फ्रेडो पास्ता प्लीज विद कोक. पास्ता नहीं करी मैंने, बाकी तो सेम है. पॉल आप लड़के हो ना? राइट मलिका हिंद पॉलिटिकल लीनिंग की वजह से बोला था. डू वी नो मलिका हिंद पॉलिटिकल लीनिंग और डू आई नो और डू यू नो सेपरेटली? आई थिंक no one like me here. I will not come to stream anymore. Bye Nilesh. Take care chess dose. Good luck with everything you got going on. Good luck with your chess thing and everything else. Take care man. I love you chess dose. chess dose क्या हो गया मेरे भाई? क्या चल रहा है? तू सोनी बता. Exactly. All right. Let's watch this. Every human used to have to hunt or gather to survive, but humans are smartly lazy, so we made tools to make our work easier. From sticks to plows to tractors, we've gone from everyone needing to make food to modern agriculture with almost no one needing to make food. And yet, we still have abundance. Of course, it's not just farming, it's everything. We've spent the last several thousand years building tools to reduce physical labor of all kinds. These are mechanical muscles. Nilesh X who? Wait, what? ऐसे भाई नहीं बोलते नीलेश. वो चला गया तो मज़े कैसे लेंगे? Dude, come on. चैट में भी दलाल वर्सेस राजपूत हो गया है. आज सिद्धू एंड अमन ने मिस कर दिया. मिक्स लेफ्ट रहे हैं ब्रो. नहीं नॉट रियली, नथिंग रियली हैपेंड. दिस वीडियो इज 9 years old. तो थोड़ा सा लीवे देना. श्योर मैन श्योर.
नहीं एल्विश मैक्सन के बाद. ओके उसके बाद ही थी बात. Stronger, more reliable, and more tireless than human muscles ever could be. And that's a good thing. Replacing human labor with mechanical muscles frees people to specialize, and that leaves everyone better off, even those still doing physical labor. This is how economies Just those के हो गए सबसे एक तो. grow and standards of living rise. Some people have specialized to be programmers and engineers whose job is to build mechanical minds. Just as mechanical muscles made human labor less in demand, so are mechanical minds making human brain labor less in demand. This is an economic revolution. You may think we've been here before, but we haven't. This time is different. When you think of automation, you probably think of this giant, custom-built, expensive. अरे मीटअप कहाँ करूँ यार. मीटअप के लिए ऑडियंस ही होती है एक अच्छी कि फिर पुलिस आए लेके जाए, राइट. I mean, they're saying bad thing about my mom. That is extreme. Just those again, you can try to twist the narrative as you like, but जैसे तू आया तूने शुभदीप को बोला उल्टा, राइट. You said शुभदीप को मैं तेरा बाप हूँ. उसके बहुत देर बाद शुभदीप ने भी तुझे कुछ बोला, and now you are again twisting the narrative as if people are talking to you this way without any reason. So you can keep doing that. That's fine. You can stay here if you like. That's fine. Delicious supporting them. Exactly. I'm speaking the truth, actually. Either way, if you don't come here, that's fine as well. I just wish you the best of luck. I hope you take care and yeah. भैया आप मीटअप हो गया. सिंपैथी जस्ट डोज नाम ले कौन दे रहा है. लाशें बिछा देंगे लाशें. मेरे पॉलिटिकल लीनिंग्स बिलीविंग इन सेंसेशनल बुलशिट. कार्ल मार्क्स की सस्ती रखे लेफ्टी निब्बी. ऑलराइट. 10 जने तो संभाल ले. ऑडियंस चाहिए. कहाँ चाहिए मेरे को? क्या चाहिए मेरे को? मीटअप के लिए चाहिए होती है. मैं मीटअप इसलिए तो नहीं कर रहा. अमन मैं था बिछा दे. Efficient but really dumb robots blind to the world and their own work. They were a scary kind of automation, but भाई प्यार बना के रखो. समाज में प्यार बना के रखो भाई. they haven't taken over the world because they're only cost effective in narrow situations. But they're the old kind of automation. This is the new kind. Meet Baxter. Unlike these things which require skilled operators and technicians and millions of dollars, Baxter has vision and can learn what you want him to do by watching you do it. And he costs less than the average annual salary of a human worker. Unlike his older brothers, he isn't pre-programmed for one specific job. He can do whatever work is within the reach of his arms. Baxter is what might be thought of as a general purpose robot, and general purpose is a big deal. Think computers. They too start out as highly custom and highly expensive, but when cheap-ish general purpose computers appeared, they quickly became vital to everything. A general purpose computer can just as easily calculate change or assign seats on an airplane or play a game or do anything just by swapping its software. And this huge demand for computers of all kinds is what makes them both more powerful and cheaper every year. All right. मुकुल भाई अटैक नहीं. हाँ. बिच जावे श्रुति प्लीज. नहीं पहले तो आ रहा दोनों साथ में. 10 जने मीटअप में संभाल ले. आई मेंट फक ऑफ. खाने का इंतजाम कर लियो. अबे तुम गिलाओ. Baxter today is the computer of the पिज़्ज़ा मंगवाया मैंने. सुपर चैट भेजा. 1980s. He's not the apex, but the beginning. Even if Baxter is slow, his hourly cost is pennies worth of electricity, while his meat-based competition costs minimum wage. A tenth of the speed is still cost-effective when it. और मुकुल हगेड़े 14 लोग देख रहे हैं, 10 नहीं देख रहे. फाकी हो. डायग्राम चलते हैं. ये क्या था? क्या था? अरे वो डॉग की आवाज थी. वही. And I was like, wait, what the fuck? It's 100th the price. And while Baxter isn't as smart as some of the other things we will talk about, he's smart enough to take over many low-skilled jobs. And we've already seen how dumber robots than Baxter can replace jobs. In new supermarkets, what used to be 30 humans is now 1 human overseeing 30 cashier robots. Or take the hundreds of thousands of baristas employed worldwide. There's a barista robot coming for them. Sure, maybe. Aman, any comment so far? मतलब देख रहा तू ये? Pranjal missing you, bro. अरे मैंने कहा एनिलेश लेफ्ट का नियो बनेगा. लाइक दो बहुत ना अलग एक्सट्रीम चीज़ें हैं that it can mean. But anyways, I'll leave it at that. Baxter मुझे गांजा बेचता है. Baxter कौन है? Your guy makes the double mocha whatever just perfect and you'd never trust anyone else, but millions of people don't care and just want a decent cup of coffee. Oh, and by the way, this robot is actually a giant network of robots that remembers who you are and how you like your coffee no matter where you are. Pretty convenient. We think of technological change as the fancy new expensive stuff, but the real change comes from last decade's stuff getting cheaper and faster. That's what's happening to robots now. And because their mechanical minds are capable of Good night भाइयों और बहनों. Good night ध्रुव मेरे भाई. Take care man. मैं 5 अलग आईडी से आता हूँ. Just support. 10 ही है मेरे भाई. अरे रोबोट वीडियो का. अच्छा ओके. ये मजदूर की तरह तसला सर पे उठा के सीढ़ियाँ चढ़ सकता है क्या? Fuck off, man. You know the answer to that. decision making, they are out competing humans for jobs in a way no pure mechanical muscle ever could.
सॉन्ग का भी अपडेट देता है यार, तुम क्यों उस पे नमक छिड़कते रहते हो, उस बेचारे के पास जब डेट आएगा वो दे देगा। ये पोस्टर सारा करता है, हाँ पता है अमन को जॉफरी, तभी तो मुझे। Imagine a pair of horses in the early 1900s talking about technology. One worries all these new mechanical muscles will make horses unnecessary. The other reminds him that everything so far has made their lives easier. Remember all that farm work? Remember running from coast to coast delivering mail? Remember riding into battle? All terrible. These new city jobs are pretty cushy, and with so many humans in the cities, there will be more jobs for horses than ever. Even if this car thingy takes off, he might say, there will be new jobs for horses we can't imagine. But you, dear viewer from beyond 2000, know what happened. There are... short film तभी तो मैं कह रहा हूँ तेरे को परेशान मत करिए मेरे साथ। You am feeling the same thing ना। अरे यार जिन लोगों से भी बात चल रही थी ना वो उसके लिए OTT वाले के लिए, तो वो लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए वो लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। खुशी चिडरी सिंगल है क्या है? मैंने क्या हिंद मैं मैट्रिक्स का नहीं हो बोला था। मुझे मैं जो कह रहा था कि दो चीज़ हो सकती है या तो मैट्रिक्स वाला नहीं हो या फिर वो जो नियो नाजी। I'm like, what the fuck does he mean? But I'm like, okay, let it go. Still working horses, but nothing like before. The horse population peaked in 1915. From that point on, it was nothing but down. There isn't a rule of economics that says better technology makes more better jobs for horses. Dude, अच्छा ठीक है, मैं खुशी तिवारी. All right, I think so. I'm not sure. But here's the thing. Fuck, मैं बहुत dumb हूँ. अरे but नहीं, this is my legit question to you guys. What do you think I am? Where do you think I am on the spectrum? Am I a hardcore male or a female? नहीं. Like according to you guys, like this is a legit question. Please, hold on, मैं ये पोल डालूंगा. Fuck off. पर पोल डालने का फायदा नहीं होगा क्योंकि मैं तुमसे फिर से पूछूंगा इंडिविजुअली किसने क्या बोला था वैसे. Fuck. क्या ही था तुम्हारी फिल्म में जो स्ट्राइक पर चले गए? अरे मेरी फिल्म के चक्कर में थोड़ी स्ट्राइक पे गए हैं। जॉफरी ने सबसे पहले राइट पे कर दिया अगले। Oh, this would be interesting to watch. This would be very interesting, man. Center left. All right, you think I'm center left? Now you have blocked me. No one has blocked you. अरे कोके पैसा आ गया। Not my podcast, guys. Go subscribe. Obvio left. शिवदीप कह रहा है obvio left. ऋषि राज कह रहा है left. I think सिद्धू right बोलेगा, right सिद्धू? All right. That's very interesting. कॉक तो yes, सबसे पहला और right पे देखा. Fucking knew it. पहले left and right को define करो. ये left होता है, ये right होता है. Yes, right. देखा. Oh my god, that's fucking awesome, man. Dude, most people think I'm on the left. अब से मैं अपने को लेफ्टिस्ट कहना शुरू कर दूँ क्या? Nilesh first he said about my dad, then I said माँ तेरा बाप हूँ, and then he said about my mother. If he said same thing about your mother, sister, Nilesh, then how you will feel? First of all, I don't care whatever anyone says. बाकी I could be wrong. Okay, just I'll give you this. मैं यहाँ पर देख रहा हूँ. You are seeing it as well, and I could be wrong, and you know, I wouldn't intentionally want to be wrong, but let's see. ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा इससे? भाई कैसे हो? यही था क्या? भाई जो पहले नहीं हुआ था उसका एग्जाम नहीं, ये और ऊपर नहीं जा पा रही है चैट. नाउ देयर इज नो वे फॉर मी टू सी. व्हाट द फक? होल्ड ऑन, लेट मी सी इफ इट्स पॉसिबल. ओह डूड, एवरीवन थिंक्स आई एम फकिंग लेफ्ट. होल्ड ऑन, व्हाट द फक? व्हाई डज एवरीवन थिंक आई एम लेफ्ट? 8 लोगों ने वोट किया, 12 लोग देख रहे हैं यार. मुकुल बाकी 4 से भी कर. और ऊपर नहीं जा रहा है मुकुल का क्वेश्चन. नहीं, और ऊपर नहीं जा रही चैट. जॉफरी देयर इज नो. ओके, यू नो व्हाट, जस्ट आई एक्चुअली केयर अबाउट दिस. Because you know, I said what I said. If मैं just research कर रहा हूँ. If I'm wrong about it, then I'm wrong, and I'll apologize for my ignorance. But I think तूने पहले बोला था. And if I'm wrong, then I'm wrong, and I'll apologize for my ignorance. But I think तूने पहले बोला. Shut the fuck up, ठीक आदमी. All right, यहाँ से होती ना शुरू. Stream. So I'm watching my own chat now. I'm watching my own stream. Nilesh won't have given me a duck. Conservative कामों तो नहीं है आप हैं? Okay, I think I'm liberal. Eating my dinner. just यहाँ पर हमारी बात हुई थी, उसके बाद you came back थोड़ी देर बाद. इस सब के बाद आया था. I know. Hold on. Just this better not be a waste of time, man.
If it is, if I'm wrong, I'll apologize to you. That's for sure. कहाँ गया? Nobody knows? Does anyone know around किस time पे हुई थी बात? Fuck you. Alright. Okay, we are getting closer, I think. Hold on, chat. I apologize, man. एक second दो मुझे. What do you mean? Obviously, it's a waste of time. है नीलेश यार, नाम डुबा दिया. Rightist है तू, rightist. 75% of the people think I'm leftist, man. पैसे पूरा दिखाना. I don't want to miss anything. मैं पॉपकॉर्न ला. अरे नहीं, पूरा नहीं दिखाऊंगा यार. ये ऐसे नहीं भाई, यार टाइम से ज्वाइन करनी पड़ती है स्ट्रीम अगर पूरी एंटरटेनमेंट चाहिए तो. Alright, where is it? I'm really sorry, but you know I don't want to be unfair to Jess if I'm being that. I would अरे सुसाइड की बात की थी मैंने, ये बोला कि तेरा बाप हूँ, आगे हुआ ये सब. मुझे भी ये लगता है, that's what I think, but Jess is saying कि that's not what happened. Then and you know I'll give him the benefit of the doubt as well. That's what I think happened. That's what you think happened. But the best thing is right now we don't need hearsay. We have proofs. We have proof. We have recorded proof. Yo, Sidhu. Oh, yo, मेरे जिगर का चल लो. Where are you, Jess? Where are you, man? $180 left. चलो बाय. जयराम चला गया, ध्रुव आ गया. हाँ, ध्रुव के आते हुए इतनी सारी बात. भाई देख कैसे स्किप कर रहा है, खुद की स्ट्रीम भी नहीं देखी जा रही. बोरिंग. डू यू वांट मी टू स्ट्रीम माय एंटायर स्ट्रीम? अभी 2 घंटे की हो गया तो 4 घंटे ही कर देता हूँ, और ये शुरू से चलाया तो है ना. भाई ट्रू, मैं नहीं देखता खुद की स्ट्रीम, ऑफ कोर्स नहीं देखता मैं. जैसे भाई अगर मैं गलत हूँ तो मैं सॉरी बोलूँगा. अगर तू निकला चुपचाप चला जाइयो, मैं गाली फिर भी नहीं दूंगा तेरे को. राइट, फेयर इनफ. ओ माय गॉड भाई, कहाँ रह गई यार ये सारी चीज़ें. फकिंग हेल यार, I hate having to do this too. I personally don't care. You guys can say whatever you want, but at least you know if you bring it up to me, then don't lie. That's all. Just नहीं आया अभी भी, नहीं आया. Yeah, just Geoffrey. So there you go. Just those said, Geoffrey the gentleman. One coder suicide because of job pressure. You wrote it here. This was your first comment, which was weird because, by the way, you were instigating here, Geoffrey go, because you just had this argument with Geoffrey a few days ago. So it was not a random news that you were saying. Okay, this is your comment. All right. उसके बाद शुभदीप का ये कमेंट आया. सुन, एक चेस वाला भी करेगा इंस्टिगेट होकर. आई डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑलराइट, सो ही इज टॉकिंग अबाउट यू. ही इज नॉट सेइंग गुड थिंग्स, बट ही इज टॉकिंग अबाउट यू. ठीक है, शुभदीप ने बोला. चेस, आई होप यू आर वॉचिंग. देन शुभदीप ने बोला, जॉफ्री आई गॉट योर बैक, एफ चेस. ऑलराइट, ठीक है. अगेन ही इज टॉकिंग अगेंस्ट यू बट नॉट योर फैमिली. राइट. उसके बाद नीलेश ब्रो, इट्स लेटेस्ट न्यूज़, क्योंकि मैंने तो बोला था व्हाई आर यू ब्रिंगिंग इट अप, बिकॉज आई न्यू. उसके बाद शुभदीप सर, तेरी कान में हाथ दे के मुद्दा मार दूंगा. शैता, ये क्या है मुझे पता भी नहीं. ये चेस के रिगार्डिंग है भी या नहीं है मुझे नहीं पता, बट और वैसे भी क्या मुझे नहीं पता. एंड चेस डोज, यू सेड शुभदीप सिंह तेरा बाप हूँ मैं. चेस डोज, यू क्लियरली स्टार्टेड इट. And you also wasted everyone's time just for us to go back here. Again, I won't be pissed, I won't yell, I won't do anything like that. But you're clearly lying, bro. That's fine too. I don't even care. That's fine. And if you don't want to watch the stream, that's fine too, mere bhai. I still wish you well. Take care and good luck with everything you got going on. If you still want to watch them and still you want to come here and comment, that's fine too. Hey. अभी आया था मैं ऑफिस से. प्लीज डोंट लेट मी ओपन दैट डोर. अरे सॉरी अमन, एक पिज़्ज़ा भिजवा दो इधर भी यार. ऋषिराज क्या बताऊँ, यहाँ तो आ नहीं रहा. जस्ट भाई अगर मैं गलत हूँ तो मैं सॉरी बोलूँगा. ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं. क्या चद्दर मोहल्ले के वो हैं. Nilesh, but we don't know about your opinion on economic structure. Yes, you do not, and you'll never find out because you think I'm leftist.
I don't have an educated opinion on that, to be very honest. My impulse decision will tell. Actually, मैं दूंगा please. अरे भाई है तू खुल के दे अमन. नहीं ये मदान के साथ हो रहा है मजाक मजाक में मैं हाथ वाला. Alright. Now my impulse are saying तू गाली दे. Thanks, yes, those. तेरी वजह से मेरे को repeat telecast मिला. Just see what he writes after this. Check that also. I don't care about that. You have lied many times now. You said he started it. You started the family thing. What do you say, Aman? दूँ क्या? चल guys. निशुद्धि सिंह जैसा दोस्त हो तो रजत से भी पंगा ले लेंगे. अरे भैया आप इतना सीरियस नहीं बन जाओ. हंसी खुशी से अच्छे हो. नहीं यार, I don't mind it. I don't want to be unfair. If I'm being unfair to chess I don't want to do that either, right? I want to be careful with that. अभी भी मैं देख रहा हूँ कि जो ऊपर जो पॉलिटिकल वाली चीज़ है ना, उस पर भाई अभी भी 12 लोग देख रहे हैं और 8 वोट हैं. जो भी मल्टीपल आइडिया बना के देख रहे हैं ना यूट्यूब को बेवकूफ़ बनाने के लिए. अरे किसी और अच्छा से तूने भी था. मेरे जैसा दोस्त तो फिर भी कहेगा कि हाँ से बना लियो. ट्रू. ये बात में हाथ देने का क्या शौक है बे. ट्रू. अबे डायलॉग है ये पता लोग का. अच्छा चलो, getting back to it. It sounds shockingly dumb to even say that out loud, but swap horses for humans and suddenly people think it sounds about right. As mechanical muscles pushed horses out of the economy, mechanical minds will do the same to humans. Not immediately, not everywhere, but in large enough numbers and soon enough that it's going to be a huge problem if we're not prepared, and we're not prepared. You, like the second horse, may look at the state of technology now and think it can't possibly replace your job, but technology gets better, cheaper, and faster at a rate biology can't match. Just as the car was the beginning of the end for the horse, so now does the car show us the shape of things to come. Self-driving cars aren't the future. They're here and they work. Self-driving cars have traveled hundreds of thousands of miles up and down the California coast and through cities, all without human intervention. The question is not if they'll replace cars, but how quickly. They don't need to be perfect. They just need to be better than us. Human drivers, by the way, kill 40,000 people a year with cars just in the United States. Given that self-driving cars don't blink, don't text while driving, don't get sleepy or stupid, it's easy to see them being better than humans because they already are. Now, to describe self-driving cars as cars at all is like calling the first cars mechanical horses. Cars in all their forms are so much more than horses that using the name limits your thinking about what they can even do. Let's call self-driving cars what they मैं देख रहा हूँ तो कुछ खास बोल नहीं रहा. मुकुल बस तेरी यही सोच मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है. अच्छी सोच है भाई. Really are. Autos, the solution to the transport objects from point A to point B problem. Traditional cars happen to be human-sized to transport humans, but tiny autos can work in warehouses and gigantic autos can work in pit mines. Moving stuff around is who knows how many jobs, but the Fuck off, Makul, तेरा love और hate relationship जो चलता है ना, तेरा ज़्यादा bounce होता है. Baby की तरफ से ज़्यादा bounce back तेरा love-hate relationship होता है. The transportation industry in the United States employs about 3 million people. Extrapolating worldwide, that's something like 70 million jobs at a minimum. These jobs are over. The usual argument is that the unions will prevent it, but history is filled with workers who fought technology that would replace them, and the workers... ये तरह फरीदाबाद और वेस्ट दिल्ली में सेल्फ ड्राइविंग कार्स मज़ा आ जाएगा. अरे आगे मौत हो तो मत ही बढ़ो आगे. मेरी चैट तो ऑटो म्यूट हो जाती है कई बार. Oh, I think my pizza is here. Hold on. Hello. हाँ जी, आ गए आप? जी 1 मिनट आया. Alright guys, 1 मिनट में आ रहा हूँ. ठीक है, चल मारो बस 1 मिनट आ रहा हूँ. Chat, go fucking crazy. नहीं, don't go crazy at each other. Come on guys. Just once again, whatever happened, you're still welcome here all the time. I wish you luck. I wish you the best. Everything, man. Alright, I'll be back in a second.
I'm sorry guys, I'm sorry, I'm so sorry. मुबारक हो मुकुल भाई. क्या हुआ? Johnny Sins पे Go crazy. आई fucking hell. भाई मेरे घुटने खराब होते जा रहे हैं. पता 3 देर तक मैं बैठे रहता हूँ ना, ऐसे पैर मोड़ के. मजाक नहीं कर रहा. क्या मस्त डैडी वॉइस में बात करी, लगता है पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला लड़की. ऑलराइट, आ गए आप जी. किससे बात हो रही है? आ गया मुकुल. अब मेरे को डाउट लग रहा है. क्या बात हो गई? ये चलाओ फरीदाबाद और वेस्ट दिल्ली में सेल्फ ड्राइविंग कार्स. हाँ गॉट दैट. मेरी चैट्स तो ऑटो म्यूट हो रही थी कई बार. गॉट दैट. भाई मुझे पॉपकॉर्न माइंड सिंड्रोम है. ADHD है. पॉपकॉर्न माइंड सिंड्रोम तो परिवार सिंड्रोम है. गो क्रेजी किया अरे. जॉनी सिंस पिज़्ज़ेरिया. अरे मेरे का तो लड़की है क्या ये बता पहले बहन. एजुकेट डिलीवरी गाय अबाउट मिनिमम वेज. अमन भाई इतनी देर माशाल्लाह. मलिका आई लाइक यू. आप मेरी कज़न सिस्टर. कबूल. ओके. शुभदीप ऑफिस में बिजी चल रहा था थोड़ा. ऑलराइट. पीपल हैव लाइव्स. हर कोई मेरी तरह नहीं होता. राइट. अमन ओए यार मैंने सोचा था मैंने मार्गरीटा करा. इट्स नॉट फकिंग मार्गरीटा. मैंने सोचा था मैंने मार्गरीटा करा. इट्स नॉट फकिंग मार्गरीटा. मैंने सोचा था मैंने मार्गरीटा करा. इट्स नॉट फकिंग मार्गरीटा. ओ नहीं. नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, मैंने मार्गरीटा नहीं करा था. बताऊँ क्यों? जो चीज़ बर्स्ट में फ़र्क होता है. राइट. यू गाइस हैव नोटिस्ड इट. जो मार्गरीटा में चीज़ बर्स्ट होता है वर्सेस जो फार्म हाउस वगैरह में चीज़ बर्स्ट होता है, दैट इज़ डिफरेंट. राइट. यू गाइस फील दैट डिफरेंस. राइट. मुबारक हो मुकुल भाई. मुबारक किस बात की? लेकिन अच्छा उसकी कबूल. ओके. मलिका लड़का है. लड़की होता तो कभी रिप्लाई ना करता मुझे. हेंस प्रूव्ड. टारू. मुकुल एक टाइम पर एक क्वेश्चन. ऑलराइट. अमन 11 करके बता दो भाई. आप हैं समथिंग न्यू. पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम. सॉ इट ऑन इन शॉर्ट्स. ऑलराइट. I'll look it up. Basically lower attention span and jumping topics I guess. But isn't that ADHD? Chi bhai. Sorry Shubdeep yaar. Sorry that I let you down. हाँ जला. डबल चीज़ मार्गरीटा इज़ बेटर. यार नहीं मैंने इतना ज़्यादा खा लिया ना वो. समझ रहे हैं? अब मैं इसको मार्गरीटा बनाऊंगा मैं. दैट्स द इशू. मुझे इसको मार्गरीटा बनाना पड़ेगा और फिर कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ेगा. अरे मैं लड़की हूँ ये क्या बात हुई? भाई हम जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते. मलिका हिंद. अब लड़की हो अब लड़का हो, इट्स ऑल वेल एंड गुड. नॉट नाउ यू थिंक अबाउट इट, नाउ यू कैन सी इट. इट्स नॉट ना कुछ एक्सप्लेन करना. ठीक है मैं समझ नहीं पा रहा चैट. जिद भाई आई ऑल्सो यूज इन शॉर्ट्स. मे बी just finding new ways to normalize ADHD. Maybe ADHD finds the word ADHD offensive. So maybe that's why they're changing it. Always lose. Economics always wins, and there are huge incentives across wildly diverse industries to adopt autos. For many transportation companies, humans are about a third their total costs. That's just the straight salaries. Humans sleeping in their long-haul trucks cost time and money. Accidents cost money. Carelessness costs money. If you think insurance companies will be against it, guess what? Their perfect driver is one who pays their small premiums and never gets into an accident. The autos are coming, and they're the first place where most people will really see the robots changing society. But there are many other places in the economy where the same thing is happening, just less visibly. So it goes with autos, so it goes for everything. Oh हाँ गाड़ी की इंश्योरेंस. Technology has always gotten rid. गाड़ी की इंश्योरेंस तो तब भी कराओगे ना चाहे तुम सेल्फ ड्राइविंग ऐसा कुछ हो. Of course that makes total sense. Maybe there's a finding new ways to commercialize. I respect untouchable. Do you also respect untouchables? I don't think there are people who are untouchables. I think you can touch everyone as long as you do it safely and as long as they consent to it. Rid of low-skilled jobs we don't want people doing anyway. They'll get more skilled and do better educated jobs like they've always done. Even ignoring the problem of pushing 100 million additional people through higher education, white-collar work is no safe haven either. If your job is sitting in front of a screen and typing and clicking, like maybe you're supposed to be doing right now, the bots are coming for you too, buddy. Software bots are both intangible and way faster and cheaper than physical robots. Given that white-collar workers are, from a company's perspective, both more expensive and more numerous, the incentive to automate their work is greater than low-skilled work. And that's just what automation engineers are for. These are skilled programmers whose entire job is to replace your job with a software bot. You may think even the world's smartest automation engineer could never make a bot to do your job, and you may be right, but the cutting edge of programming. Joffrey, have you never watched Destiny? You must have.
सिद्धू भाई आई लव यू. जॉफरी भी बोलो नहीं तो स्ट्रीम समाज बुरा मान लेगा. एंड हुक्का पानी बंद कर. भाई इतना प्यार देख के मुझे मेरी मोहब्बत की याद आ गई. शी डिडंट लव मी बैक. इट वाज वन साइडेड. आई क्राइड फॉर इयर्स. बस तब से ही बदल गया. हियर्स माई स्टोरी इन शॉर्ट गाइस. हियर्स एवरीवन्स स्टोरी मेरे भाई. निलेश ररत को हाथ लगा दिखा दो फिर. मैंने कहा इफ़ देयर इज कंसेंट. भाई अगर कल को मैं मिलता हूँ, कल को हाथ मिला तो मैं हाथ मिलाऊंगा. दैट वुड बी टचिंग राइट. ये वाई टी लहन का बोड़ा मेरी चैट्स म्यूट कर रहा. क्या बोला था? टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज क्रिएटेड जॉब्स. इट हैज़ एजुकेटेड एंड भाई लेकिन डिस्पैरिटी भी तो बढ़ गई ना. बट द मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी इवॉल्व द मोर जॉब्स इवॉल्व. द इशू इज यार अगर जॉब्स सारी ऐसे हो जाएंगे ना विच रिक्वायर ओनली हाई IQ पीपल, दैट्स जस्ट एज बैड एज जॉब्स ना होना. Programming isn't super smart programmers writing bots, it's super smart programmers writing bots that teach themselves how to do things the programmer could never teach them to do. How that works is well beyond the scope of this video, but the bottom line is there are limited ways to show a bot a bunch of stuff to do, show the bot a bunch of correctly done stuff, and it can figure out how to do the job to be done. Even with just a goal and no knowledge of how to do it, the bot can still learn. Take the stock market, which in many ways is no longer a human endeavor. It's mostly bots that taught themselves to trade stocks, trading stocks with other bots that taught themselves. As a result, the floor of the New York Stock Exchange isn't filled. जौहरी भाई लव यू भाई. मैंने पढ़ा दिया सिद्धू का. भाई जौहरी तुझे तो कितनी नफरत हो गई सिद्धू से. तू लव यू को भी रिप्लाई नहीं करे. अच्छा कर दिया. टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज क्रिएटेड मोर जॉब्स. गॉट दैट. और क्या मेरा क्या होगा? कम ऑन चिल मालिक गाइस. जौहरी भाई आप भी बोल दो लड़की वाले रोल से निकल के. Filled with traders doing their day jobs anymore. It's largely a TV set. The bots have learned the market and bots have learned to write. If you picked up a newspaper lately, you've probably already read a story written by bots. There are companies that teach bots to write anything. But why? Who likes to do unskilled labor? What do you mean? Are you responding to what I said? Hello, Joffrey and Sidhu. How come they won't love each other? True. The thing is, अमन आई वाज सेइंग कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेसिक स्किल और ऑपरेशन चीज़ों जितना जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी जितना जल्दी टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो जाएगी उतनी जल्दी ह्यूमंस ऑन एवरेज स्मार्ट नहीं होंगे ना. खैर और एवरेज के वैसे भी स्मार्ट नहीं होंगे. अडेप्टेशन के बेस पे भी नहीं होंगे. तो अगर टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर लेती है, लेट्स से 100 IQ से नीचे वाली जॉब सारी जो जनरल IQ है टेक्नोलॉजी कर सकती है. वी आर फक्ड. And we might be there soon, but I personally still don't care about it. Not saying that I have a high IQ. I don't know my IQ, but who gives a shit? Unskilled people, true. हाँ पर डिमांड तो फिर भी रहेगी. डिमांड डिस्कॉर्ड पे हूँ. आ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कोई लाइव स्ट्रीम पे डिसलाइक आया जिसमें बाहर के लोग आए उसको हटा के. कोई लाइव स्ट्रीम पे डिसलाइक आया. अच्छा पूछ रहा है. नहीं आई डोंट थिंक सो यार. आई डोंट थिंक. मैं डिसलाइक तो हटा रखा ना वैसे भी यूट्यूब ने. तो आई डोंट थिंक सो. एवरीवन थिंक्स आई एम फकिंग लेफ्ट मैन. दैट्स वियर्ड. आज ही मन मुझे थोड़ा सा वो चिल भी मिल जाएगा पिज़्ज़ा खाने के लिए. Oh. Yo. आवाज़ नहीं आ रही. अमन आवाज़ नहीं आ रही. हेलो. यार एक सेकंड मैंने कम कर रखी है क्या यहाँ से? क्योंकि तेरा वो तो हाईलाइट हो रहा है. मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही थी? ओह शिट. होल्ड ऑन. मेरी गलती है मन. मेरी गलती. मैंने डिस्कॉर्ड को वो नहीं कर रखा. हेडफोन नहीं दे रखा अपना सही. हेलो. अभी भी नहीं आ रही. एक सेकंड. लेट मी चेंज इट. ओह फक. मैंने आउटपुट का करा. आउटपुट यही चाहिए. नहीं आउटपुट ही तो करना है. आई एम सो फकिंग स्टूपिड राइट नाउ. हेडफोन्स कहाँ गया? आ देगा. YouTube पे जा रही है. भाई साहब आ गई. अरे भाई अब जा रही होगी. हाँ भैया समझाओ. एक सेकंड रुक जा. चैट पे आने. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कोई लाइव पे हाँ गॉट दैट. आज मज़ा आएगा डिस्कॉर्ड पर. अरे फॉर लेफ्ट का दल्ला तू भी मार्क्स की रखेल है.
ये मैं भाई इसके साथ साथ कमेंट्स नहीं पढ़ सकता ना? स्टीम पे हाँ, पढ़ सकता होगा, फोन पे। आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से होता होगा। अच्छा, वीडियो नहीं चला सकता बट कमेंट्स पढ़ सकता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। तो चलिए वीडियो में कुछ सोच कर रहा हूँ, बताओ भैया समझाओ। तो बेसिकली यार क्या सीन है, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। जब जब मैंने शायद पिछली बार भी बोला था कि जब जब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है तब तक जॉब बढ़ी ही है। मतलब तुम ये सोच लो, पहले फार्म पे हल जोतते थे फार्मर्स, है ना? टेक्नोलॉजी आई, ट्रैक्टर्स आए और वो सब आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हल जोतने वाले लेबर की कमी हुई, बट जॉब क्या इवॉल्व हुई उसमें, ट्रैक्टर चलाने वाले की, है ना? उसके बाद मशीनरी आई। पहले खुद हथौड़े और छेनी से बनाते थे, फिर मशीन्स आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। तो क्या हुआ, जॉब इवॉल्व हुई, लेबर की जगह मशीन ऑपरेटर्स की जॉब बनी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब कंप्यूटर्स आए तो कंप्यूटर्स में क्या हुआ, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह इजी कर दी। तो क्या हो गया, जो लोग वैसे कैलकुलेट करते थे, पहले टाइपराइटर्स आए, तो जो राइटर्स थे वो टाइपर वाली जॉब आई, जो हम हमारे ऊपर वाली जनरेशन को बोलते हैं ना, जो स्टेनो वेनो की कोर्सेज करते थे। स्टेनोग्राफर्स, हाँ। हाँ, तो वो आए। उसके बाद कंप्यूटर्स आए, तो कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो अब भी वो चल रहा है, अलग अलग इवॉल्व होते रहते हैं, बट या कंप्यूटर ऑपरेटर्स आ गए, जिनको एक्सेल यूज करना आता है, वो मेंटेन करना बही खाते से बाहर निकल के। हाँ, तो वो चीज हुआ। आई थिंक अब एआई, हाँ हाँ अब जब एआई आया तो सबसे पहले इवॉल्वेशन कहाँ पर आ रही है, एआई प्रॉम्प्टर की जॉब्स आ रही है। कि बेसिकली एआई को, मशीन को समझाने वाला तो कोई चाहिए इस टाइम पे। तो उसमें एआई प्रॉम्प्टर्स की जॉब आई है नई, एट दिस पॉइंट। आई गेट योर पॉइंट एंड आई थिंक मैं जॉफरी की बात से भी एग्री करता हूँ। तूने पढ़ा जॉफरी? अच्छा, तो पढ़ नहीं पाया, वो बोल रहा था। तो लाइक ही गोज, बट जॉब्स बढ़ी नहीं, jobs evolved, productivity also increased, so less people also do the jobs, right? Like similar jobs. I agree with that as well. मेरा दूसरी एक चीज़ ये है कि जो टेक्नोलॉजी की एवोल्यूशन है ना, that is much faster than the collective intelligence of humans. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं You don't है। think so? क्यों? नहीं, अभी इतने सारे जो मैंने एग्जांपल दिए, इसके साथ साथ हम इवॉल्व करते गए हैं ना। और यार एक तरीके से ये भी हो जाता है, इसको बनाने वाले भी तो ह्यूमंस ही है ना। ट्रू, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें, हम इंसान, देर इज ऑलरेडी सो मच टेक्नोलॉजी जो कि हम इंसानों से काफ़ी चीज़ों में बेटर है, इवन इन यूजिंग योर माइंड। एंड हम इवॉल्व करके यहाँ तक पहुँचे, आई डोंट नो, लाखों करोड़ों साल तक। एंड टेक्नोलॉजी को कितना टाइम मिला है इवॉल्व होने के लिए? यार ये नहीं बोल सकते कि कितना टाइम मिला, बहुत ही टाइम मिला है वैसे तो। हम नहीं जानते कि कब से चीजें बन रही हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद में, हाँ, बट 200 साल पहले आया। ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल नहीं। अब आप ये देखो यार, स्टोन एज जो थी, जहाँ फायर बनी, अब वहीं से तो टेक्नोलॉजी शुरू हो रही है ना, स्टोन एज। श्योर, बल्कि वहाँ से तो मैं ये कहूँगा, वहाँ से तो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो ग्रेजुअल प्रोसेस, हाँ, ग्रेजुअल प्रोग्रेस। अब जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी ना, उतनी जल्दी ह्यूमंस भी इवॉल्व करेंगे। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट, तुझे ये लगता है जैसे टेक्नोलॉजी की स्मार्टनेस में, इंटेलिजेंस में जो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आ रहा है, तुझे लगता है वो ह्यूमन की इंटेलिजेंस में भी आएगा? हाँ, आई डाउट। जैसे आप ये देखो, हमारी जो जनरेशन है ना, वी हैव सीन एंड वी हैव इवॉल्व विद द टेक्नोलॉजी। मतलब हमारी जनरेशन ने लैंडलाइन से लेकर कीपैड वाला फोन से लेकर अब स्मार्टफोन, अब ईयरफोन से ही, वॉच से ही सब हो जाता है, राइट? एंड वी हैव gathered that knowledge and we are using this knowledge, right? हम उसके साथ इवॉल्व हुए हैं और इन फ्यूचर भी होते रहेंगे। कुछ भी आएगा। अभी एप्पल का विजन प्रो आया ना, धीरे धीरे देखना एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट आई डोंट थिंक जो ह्यूमंस की, जो आई पर्सनली थिंक जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो तो रहेगी कि ह्यूमंस कंपैटिबल हैं उन डिवाइसेस के साथ। आई डोंट थिंक जो इंटेलिजेंस है उतनी स्पीड से बढ़ेगी। एंड पार्ट आई ऑल्सो थिंक, क्योंकि जो जनरली हम लोग इवॉल्व करते हैं ना, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ कल्चर। जो अलग अलग जगह पे कल्चर होते हैं ना, तो हम लोगों को क्या लगता है कि ये कल्चर वगैरह क्यों? बिकॉज स्पेशली यू नो पीपल हु आर जो लेफ्टिस्ट होते हैं, राइट? तो दे हेट कल्चर, क्योंकि कल्चर हाउ कल्चर बिगैन, इट वॉज अ कलेक्टिव सोल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स,
एंड यू नीडेड कल्चर बिकॉज जो प्रॉब्लम्स थी वो इतना रैपिडली चेंज हो रही थी, लेकिन जो अपनी ह्यूमन एवोल्यूशन है वो इतना रैपिडली चेंज नहीं हो सकती. तो कल्चर ज़्यादा रैपिडली चेंज हो सकता है, बट वी ऑल्सो सी जो कल्चर का चेंज होने का है वो कितना ज़्यादा स्लो है आजकल के हिसाब से. नाउ आई गेट योर पॉइंट. आई थिंक तेरा जो मेन पॉइंट है वो उस टाइम पे एवरेज IQ ही इतना हो जाएगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी कि लोग पीपल वुड बी एबल टू यूज़ इट. आई समवट डाउट दैट, बट आई थिंक हाँ फिर आई गेस वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात है, राइट? मतलब मैं तो और पास्ट स्टडीज के हिसाब से देख रहा हूँ कि वी आर एबल टू एक्नॉलेज दैट चेंज ना, और जॉब्स उसी हिसाब से बढ़ रही हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं यार. कई लोग आप देख लो प्रोग्रामिंग में जाते हैं, सीखते हैं ना, और IQ बेसिकली जैसे आप उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि IQ से लेस वाली चीजें, IQ बढ़ता है यार, वो प्रैक्टिस से भी बढ़ता है. जो आप कह रहे थे ना कि एक तो बाय बर्थ होता है IQ, एक फ्लूइड IQ होता है और जो क्रिस्टलाइज होता है. तो जो फ्लूइड वाला होता है वो नहीं बढ़ता, क्रिस्टलाइज बढ़ा सकते हैं. यस. अब टेक्नोलॉजी कहीं से भी शुरू हो ना, शुरू तो मैथ से ही होती है. अब जिसका मैथ्स जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा करेगा. ये मेंटल चीज हो गई. बेसिकली टेक्नोलॉजी इस टाइम पर क्या कर रही है, फिजिकल चीजें कम करती जा रही है, मेंटल चीजें ज्यादा होती जा रही है. तो ऑफ कोर्स वो कोप अप होगा. हो सकता है अभी थोड़े बहुत जिनके IQ अच्छा है वो इस तरफ होंगे, कोप अप कर रहे होंगे, है ना, थोड़े वो कर रहे होंगे. बट हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये वाली जॉब्स चाहिए. क्रिएटिविटी अलग चीज है, एंटरटेनमेंट अलग चीज है, वो अलग स्कोप है. वहां पर AI नहीं आ रहा है. वो वाली जॉब्स अलग है. आई गॉट इट. हाँ बस वही आई थिंक योर आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली अगर तुम सीधा केवमैन को उठा के यहाँ पर ले आओगे तो ये कंप्यूटर यूज़ करके स्ट्रीम नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है हम भी बढ़े हैं, राइट? हाँ आई अंडरस्टैंड दैट. वही आई थिंक इट विल बी टू स्मार्ट टू फास्ट. मतलब यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस. हाँ गॉट इट. क्योंकि यार बनाने वाले ही हम है ना. अब मेन बात ये होती है, अगर हम बोले वैसे तो मैं हाफ एथिस्ट बोल सकते हो, लेकिन आप ये कहते हो अगर भगवान ने हमें बनाया तो हम में से कोई भगवान से आगे या उससे बड़ा तो बन नहीं सकता. तो अगर AI इंसान बना रहा है तो AI इंसान से आगे तो बढ़ नहीं सकता. देखो जो चीज इंसान कर सकता है वो AI तो नहीं कर सकता. अगर इतनी जनरलिटी में बोले तो शायद दैट माइट बी ट्रू, लेकिन अगर जनरलिटी की जगह अगर हम एक चीज़ को स्पेसिफिक पर्पस देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंसान हूँ, मैंने दिमाग जो लगा के तलवार बनाई चीज़ों को काटने के लिए, तो तलवार इज़ बेटर फॉर कटिंग थिंग्स देन आई एम. तो मैंने ही बनाई चीज़. तो अगर वही अगर चीज़ों को हम पर्पसफुल बना दें, एक चीज़ कर सकती है. हाँ ट्रू. बट वो दैट्स द पॉइंट ना, वो एक चीज़ जो है वो मल्टीपल चीज़ों में जाके हो सकती है. और वो तलवार चलाने के लिए भी एक बंदा चाहिए. तलवार अपने आप नहीं चलेगी. ट्रू. बट हेयर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, जो अलग अलग एनिमल्स वगैरह देखेंगे ना तो हर किसी की बायोलॉजिकल निच होती है, नीश वगैरह जो भी कहते हैं. जो ह्यूमन नीश है दैट इज निच स्विचिंग व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. क्योंकि ह्यूमन्स क्या कर सकते हैं, ह्यूमन्स एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें से अलग अलग इंसान अलग अलग चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, जो कि कुत्ते बिल्लों में इन सब में नहीं होता, राइट? इनकी एक स्पेसिफिक चीज़ है कि इसमें हम अच्छे हैं, इसमें हम अच्छे नहीं हैं. बट ह्यूमन्स कैन निच स्विच. सिमिलरली जेंडर जस्ट किडिंग. सिमिलरली हम लोग जो AI है दैट कैन ऑल्सो स्विच इट्स ओन निच. सो दैट्स वाई आई ब्रॉट द तलवार वाला कंपेरिजन, क्योंकि तलवार कैन ऑलवेज स्टे अंडर ह्यूमन्स क्योंकि इट कैन नॉट निच स्विच, बट AI कैन, है ना. अलग अलग AI को अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है. एक सेकंड मुझे मन यार, मैं चैट पे थोड़ा सा ध्यान दूँ. राज क्या हाल है भाई? भाई भूल नहीं पा रहा उसे डे 82. अब दिन गिनेगा तो कहाँ से भूलेगा मेरे भाई? नॉट इन प्रीवियस रेवोल्यूशंस. शेट यार मैं भूल गया किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी. भाई विजन प्रो ही 2008 से बन रहा है. ऑलराइट, प्रोडक्शन ऑफ टू मेनी. क्या हुआ? मुझे डे 82 पे ना वो वाला मीम याद आ गया. कौन सा? डेज नॉट रिमेम्बरिंग हर 80085. That's exactly what he did, Raj, मेरे भाई. Production of too many useless things leads to many useless people. मेरे मीठे पिताजी कार्ल मार्क्स. Alright. बच्चे भी हो गए उसके तो. अरे कोई बात नहीं मुकुल, कोई बात नहीं. हमारा स्टैम्प लगने का बिजनेस था, ऑफ सेट प्रिंटर्स आ गए. मेरा कैमरा मर गया, अभी आ रहा हूँ मैं. कैमरा 1 मिनट रुक रहा. हमारा बिजनेस ख़त्म. ये सब बकवास है इवॉल्व का कॉन्सेप्ट. ऑलराइट ठीक है, तेरा एक बहुत ही ज़्यादा पर्सनल वो है यार, तो
चेस इंजन प्रिंटर आ गए तो प्रिंटर की दुकान खोल लो ना. अरे तो फोटोशॉप की दुकान खुल गई है. अरे उसका पर्सनल हुआ है ना, लेकिन तो इसलिए कैन नॉट एक्सपेक्ट कम्प्लीटली अनबायस हो. चेस इंजन बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकता है 4 घंटे की ट्रेनिंग से कम में. ट्रू. मिसिंग समवन. जॉफरी तेरे ऊपर शॉट्स थे. रजत दलाल स्पीड डायल पे कहाँ फाड़ देंगे नरेश भाई हैं. ईटिंग एस हमारा, हाँ ये देखा था मैंने. ऑलराइट, ठीक है, आई गॉट इट. अल्हम्दुलिल्लाह. अरे जय श्री राम. वी आर कौन के बारे में कुछ पूछो. अमन वी आर कौन देखता भाई? नहीं. नहीं, पूछ लिया. डू यू हैव एनी इंटरेस्टिंग टेक ऑन वी आर कौन? नो इंटरेस्ट. ओके भाई, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने को एक बंदे को पीएचडी करना पड़ता है, एंड देन इट टेक्स एटलीस्ट 5 years ऑफ द पीएचडी पर्सन टू मेक इट. एआई ने 1000 lakhs चेक कर दिए थे एक दिन में. ओह सुनो, थिंग्स मैंने अभी जो जितने भी चीजें समझाई थी, जो भी एग्जांपल्स दिए थे, दोस थिंग्स took different jobs but created more jobs. तो मैं ये नहीं बोल रहा AI won't take your job, but AI would be creating more jobs. अच्छा, एक सेकंड में बैटरी चेंज कर रहा हूं कैमरा की, अगर मेरी आवाज आ रही तो. अच्छा, तो बेसिकली जॉफरी यही सीन है कि हाँ, एंड ऑल्सो द ओनली कांस्टेंट इज चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. तो इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा. ये नहीं है कि जॉब चली गई तो फिर बैठ जाएंगे, कुछ और सीखेंगे. मेरा कैमरा इज रिफ्यूजिंग टू टर्न ऑन जस्ट लाइक हर. तो 14 वोट हो गए भाई दबे उस पर भी. मैं एक बार कैमरा के वो स्क्रीन ही हटाया तो एक सेकंड दे मुझे ब्रो. एनीवेज, गाली दे दे मन भाई. ना गाली वाली नहीं देता मैं. AI will not take your job. A person who knows how to use AI will take your job. Well, given a long enough timeline, Sidhu, I think it might. I don't agree with more, but I agree new jobs will be created. I think I'm more with Joffrey on this. Fuck man, shit. Joffrey के साथ नहीं होना मुझे. हाँ, but ठीक है. Is there any different? क्योंकि I think वही ना, ऐसे stand still पे आके जैसे बात है कि it's basically you are more optimistic about human intelligence than I am. The evolutionary speed of human intelligence. देखो भाई, मेरे को साइड लेनी पड़ेगी, मेरी कंपनी के नाम में है. तो ये बात मत बोल, फिर तेरे आर्गुमेंट्स इनवैलिड हो जाएंगे. बट हाँ चल, तू अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, जॉब अच्छी है, बहुत बढ़िया. करते रहो. चल मैं एक दो चीज़ देखता हूँ, बंद करता हूँ. ठीक है, ओके ब्रो, सी या, बाय बाय, टेक केयर. राइट. हाँ, सेक्स तो नहीं कर सकता एआई के साथ, बात खत्म. ट्रू. Sports stories, TPS reports, even say those quarterly reports that you write at work. Paperwork. अमन की कौन कंपनी है क्या? Let's share each other's most controversial opinion. Chat first. Decision-making, writing, a lot of human work falls into that category, and the demand for human mental labor in these areas is on the way down. But surely the professions are still safe from bots, yes? When you think lawyer, it's easy to think of trials, but the bulk of lawyering is actually drafting legal documents, predicting the likely outcome and impact of lawsuits, and something called discovery, which is where boxes of paperwork gets dumped on the... की करें से तो भैया कैमरा ऑन ही नहीं होता. अल्लाहू अकबर. मेरे से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्या होगा मलिका? lawyers, and they need to find the pattern or the one out-of-place transaction among it all. This can be bot work. Discovery, in particular, is already not a human job in many law firms. Not because there isn't paperwork to go through, there's more of it than ever, but because clever research bots shift through millions of emails and memos and accounts in hours, not weeks, crushing human researchers in terms of not just cost and time, but most importantly, accuracy. Bots don't get sleepy reading through a million emails. But that's the simple stuff. IBM... That's a good one, Shubdeep. मतलब I can see so many people falling into that trap जो तूने ये रखा है. Should I spell it out? Shubdeep कहता है untouchables do exist. Now you might be inclined to say नहीं.
or you might be inclined to say, huh. Both are lose-lose situations. If you're saying nahi, then it's like you're denying the, people जो कि उस again quote-unquote caste में थे. मैं literally हाथ से कर रहा था, but I realized मेरा कैमरा नहीं है, जो कि उन quote-unquote lower caste से हैं. You're saying कि वो exist नहीं करते. But if you're saying हाँ, then it's implying कि you believe there are people who should be untouchable. You believe in casteism. दिलेश भाई, सेक्स करते हुए आँखों में जलन होती है, क्या करूँ? मिर्च वाले स्प्रे से बचने की टिप्स प्लीज. चश्मे लगा के रहो भाई. समझ कैसे गया भाई? मैं तो पहली बार में ही समझ गया था. What are you talking about? M has a bot named Watson. जब तू कह रहा था ना untouchable representation, मैं तब से ही समझ पड़ा हूँ. You may have seen him on TV destroy humans at Jeopardy, but that was just a fun side project for him. Watson's day job is to be the best doctor in the world, to understand what people say in their own words and give back accurate diagnoses. He's already doing that at Sloan Kettering, giving guidance on lung cancer treatments. Just as autos don't need to be perfect, they just need to make fewer mistakes than humans, the same goes for doctor bots. Human doctors are by no means perfect. The frequency and severity of misdiagnoses are terrifying, and human doctors are severely limited in dealing with a human's complicated medical history. Understanding every drug and every drug's interaction with every other drug is beyond the scope of human knowability, especially when there are research robots whose whole job it is to test thousands of new drugs at a time. And human doctors can only improve through their own experiences. Doctor bots can learn from the experience of every doctor bot, can read the latest in medical research and keep track of everything that happens हाशिम खान नहीं आया ना आज, बताते उसको. To all their patients worldwide and make correlations that would be impossible to find otherwise. Not all doctors will go away, but when the doctor bots are comparable to humans and they're only as far away as your phone, the need for general doctors will be less. So professionals, white-collar workers, and low-skill workers all have things... True, Joffrey, true. Dude, all right, that's a joke I can't say. All right. ...to worry about from automation. But perhaps you are unfazed because you're a special creative snowflake. Well, guess what? You're not that special. Creativity may feel like magic, but it isn't. The brain is a complicated machine. Perhaps... I, as in, believe that Ramayana is a story of Vedic colonial clans trying to colonize India, Indian indigenous, non-Vedic and non-ritualistic tribe. All right. I'll have to think about it. I, as in, believe that Ramayana is a story of Vedic colonial clans trying to colonize India's indigenous, non-Vedic and non-ritualistic tribes. How so? The most complicated machine in the whole universe, but that hasn't stopped us from trying to simulate it. There is this notion that just... Dude, I have to say, so basically I was talking to this girl, right? And like I had fun talking to her because there were a lot of verbal jabs going on, right? Usne bola, there were like, keeping each other at their toes kind of thing. So, and out of the blue, I threw out, I don't know, something like, something sexual, right? Like for us to be involved in something sexual. And she went like, you know. And I'm like, well, wait, I talked about sex, not consent. And then she went with necro. Again, I think that was a good comeback. So, but that's मैंने पहले बोला ना, I cannot tell you that joke. I just found it weird because I had that inside joke with a girl, and I cannot share it with a bunch of guys. She was comfortable with it, so what's wrong with that? I know my dynamic with someone. I know if I'm making someone comfortable enough or not before I make a joke like that. मर जाऊँ मतलब? अबे नहीं मुक्कुल उल्टा. It could be linked with the audience moving southwards. All right. Just mechanical muscles allowed us to move into thinking jobs, that mechanical minds will allow us to move into creative work. But even if we assume the human mind is magically creative, it's not, but just for the sake of argument, artistic creativity isn't what the majority of jobs depend on. The number of writers and poets and directors and actors and artists who actually make that is so fucking, oh my god, this is so fucking true. Because I hate it when I, get some shitty, I get some shitty job and you're like, oh, you're a writer, you want to do this? And I'm like, what the fuck, that is not writing, that's stenography. For the sake of argument, artistic creativity isn't what the majority of jobs depend on. The number of writers and poets and directors and actors and artists who actually make a living doing their work is a tiny, tiny portion of the labor force. And given that these are professions dependent on popularity, they'll always be a very small portion of the population. There can't be such a thing as a... एक सेकंड, मुकुल तुझे जब मैंने स्टोरी बताई उससे समझ नहीं आया था, the girl I was talking to. Like I thought she had a really good comeback to that. By the way, Malika Hindre अपना controversial take बताया, कोई और नहीं बताएगा क्या? I think this joke was extremely controversial. So, I think I did my due diligence. Poem and painting-based economy.
Oh, by the way, this music in the background that you're listening to, it was written by a bot. Her name is Emily Howell, and she can write an infinite amount of new music all day for free. And people can't tell the difference between her and human composers when put to a blind test. Talking about artificial creativity gets... Why my message gets filtered when I put my religious view? I'm not sure this. I have no idea, man. But like, thank God the invention nahi bola. Weird fast. What does that even mean? But nonetheless, it's a developing field. People used to think that playing chess was a uniquely creative human skill that machines could never do, right up until the point they beat the best of us. And so it will go for all human talents. Right. This may have been a lot to take in, and you might want to reject it. It's easy to be cynical of the endless and idiotic predictions of futures that never are. So that's why it's important to emphasize again that this stuff isn't science fiction. The robots are here right now. There is a terrifying amount of working automation in labs and warehouses around the world. We have been through economic revolutions before, but the robot revolution is different. Horses aren't unemployed now because they got lazy as a species. They're unemployable. There's little work that a horse can do to pay for its housing and hay. And many bright, perfectly capable humans will find themselves the new horse, unemployable through no fault of their own. But if you still think new jobs will save us, here's one final point to consider. The US Census in 1770. मेरी सुनी होती तो पता लग जाता ना कुछ समझ आ रहा था कुछ ये तो लुकअप नहीं करना पड़ता पहले समझ आ रहा था. And I'm just asking for appreciation of a really nice comeback a girl had. Man, you fucking misogynists out there did not appreciate good humor from a girl. Jeffrey, even the NCRTs I have to study for class 12th history have very intelligently avoided any mention of the Aryan migration. It's crazy. Like the books just jump from 1700 BC to 600 BC with no mention of what happened in between. Come back to tha. Yep. Ask Nilesh, and there was a discussion about NCRTs not giving due to the right. I think Jeffrey was kind of involved in that discussion. जब वो हो रहे थे ना राम मंदिर वाले research day की बात नहीं. D6 tracked only a few kinds of jobs. Now, there are hundreds of kinds of jobs, but the new ones are not a significant part of the labor force. Here's the list of jobs ranked by the number of people who perform them. It's a sobering list with the transportation industry at the top. Continuing downward, all of this work existed in some form 100 years ago, and almost all of them are easy targets for automation. Only when we get to number 33 on the list is there finally something new. Don't think that every barista or white-collar worker need lose their job before things are a problem. The unemployment rate during the Great Depression was 25%. The list above is 45% of the workforce. Just what we've talked about today, the stuff that already works, can push us over that number pretty soon. And given that even in our modern technology... Politics, man. And I say we have given enough attention to the right. Bhaiya. S क्या बोल रहा था भाई बोल दे फिर से. Wonderland, new... I think S hated Malika Hind, basically. Kinds of work are a significant portion of the economy. This is a big problem. This video isn't about how automation is bad, rather that automation is inevitable. It's a tool to produce abundance for little effort. We need to start thinking now about what to do when large sections of the population are unemployable through no fault of their own. What to do in a future where, for most jobs, humans need not apply. In the textbooks, at least. अरद दलाल को कुछ काम नहीं किया. I support राजवीर भाई. अच्छा ये बात थी तेरी. अरे तो गाइस मैं चलता हूँ. अब कैमरा तो चल नहीं रहा है. The worst things about not having... Oh my god, this is interesting. Sorry. Good morning, John. The worst things about not having cancer. इससे अच्छा तो ना ही repeat करता. Good morning, John. It's now been more than 4 months since I had my last scan and was declared to be in remission from Hodgkin lymphoma. This is obviously much better than the alternative, but also there are some things about it that I don't like. My friend Grace, who also has been going through cancer treatment, just uploaded a video about this. Gotta make up for lost time. Let's get creative. Let's get a schedule. Let's work out our peak physical self. How do I get on a good sleep schedule? Let's get a 5-year plan. What's gonna happen? And of course, every experience is going to be different, with me being unrepresentative, both in terms of the amount of support that I have, which is a lot, and the amount of treatment that I've had, which is comparatively not that much. But there have been parts of the transition out of treatment that have been very surprising for me, and I think that this is a thing that is not discussed as much as it should be, and as treatments are getting more powerful, it's more relevant than ever. So, what are the worst parts of not having cancer anymore? Because we know the best parts, which is that you don't have cancer anymore. I'm going to start out with the one that I think is most counterintuitive. Having cancer is very bad, but there is something actually quite nice about a bunch of hard-working, well-paid, high-status people constantly fretting over you. Here in Missoula, anyway, I was extremely well taken care of. Never for a moment did I feel left behind. I saw my doctor at least twice a month, and he was amazing. You're getting scans, you're getting chemo, you're getting radiation. Even if there's not a ton of outward activity, like you're on the couch or in the bed most of the time, you are surrounded by people working very hard to save your life.
which makes you feel valued. And then you finish your treatment and you're in remission and they're like, all right, well, nice to meet you. You're not regularly talking to anyone at the cancer center anymore. You're not doing extremely hard things to preserve your life. You've been sucked out of normality and it felt like care. And then you get plopped back into normality and that feels like being ignored. This is so weird. So that's the thing that This is so interesting, guys. मुझे नहीं पता तुम वीडियो देख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम अपनी आपस में बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो. I love this. By the way, पोल एंड हो चुका है. Apparently मैं 71% लेफ्ट हूँ. भाई साहब, I had no fucking idea you guys would say that. Wow. What you think, Joffrey? I'm fucking with you, man. The worst thing about not having cancer. So it is so interesting to me. Having cancer is something horrible. And this guy can talk about worst thing of not getting cancer. The worst thing about not getting cancer. You can talk about the worst part of something good. It is amazing to me, but you cannot do that in politics apparently. You cannot talk about the good things of something bad, and you cannot talk about the bad things of something good. I think this is really cool, this video. Because आजकल सेंट्रिस्ट को लेफ्ट बोलते हैं. यार मैं पता है ये एक्सपेक्ट कर रहा था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ओ मतलब 45-55 हो जाएगा. मैं ऐसा कहूँगा मैं तो सेंट्रिस्ट हो गया. बट फक मैन. Alright, 71% left. Hell yeah, man. I think I still might have some scope in the film industry now. मेरे को गाली देने बोल रहा क्या है? नहीं ऐसे वो मैं बात कर रहा था भाई. चलो चलता हूँ मैं भाई हूँ. चिल मारो सारे. चलो बिकॉज आज हाँ गता है. चलो. टेक केयर एवरीवन. गुड नाइट. गुड बाय. सी यू टुमारो. मिलते हैं. ओह फक मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा. वो रैपर का परफॉर्मेंस देखो. अच्छा जो कल बताया था क्या नाम था उस रैपर का. कोई रैपर का नाम याद दिला दो. really didn't expect. And weirdly, I also didn't expect this next one. Because I felt like you get cured or you're in remission and you ring the bell and then you're done. But you're not. You might have cancer again at any moment. The big time for चल क्या रहा है. क्या नाम था मुंबई वाले का लिजर्ड वाला है. बाय जॉफरिन तो कह दे बाय. लाल सलाम. बट आई गेस आपने ऐसी कभी बहुत कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट रखा भी नहीं है. पीपल विल थिंक दैट यू आर अ लेफ्टी. That's weird. अगर तुम बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव पॉइंट ना रखो तो पीपल विल थिंक यू आर लेफ्टी. नहीं, दैट्स अ बिट वियर्ड. एंड आई थिंक आई एम नियर सेंटर टू बी ऑनेस्ट. जिस भी साइड हूँ. एनीवेज सॉरी रैपर नहीं ग्रेपिस्ट होता है वो. वेट व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट शुदीप. हॉट सैक. चलो जा रहे हैं फिर. चलो गुड बाय. relapse in my cancer is in the next year or so, and if that happens, it means I'm a trickier case than. Alright. Good night, guys. Take care. See you tomorrow. Bye bye. Mumbai Monitor Lizard. Oh, वो चार. Oh. Fuck. Open window shift की वजह से. समझा नहीं मैं. चलो सी गाइस. मैं तुमको चार्ज कर रहा हूँ. तुमको दिख नहीं रहा. बाय बाय. कल मिलते हैं. कैमरा चार्ज करके रखूँगा. गुड नाइट. टेक केयर. बाय बाय. स्प्रेड लव गाइस. थोड़ा सा प्यार फैलाओ समाज में, बिरादरियों में, हर जगह.